Okay, we'll start in a minute. Okay, just tell everybody that we are live. 1 मिनट में शुरू करेंगे अपन. We'll start in a minute. Just let me know in the comments, okay, कि like whether this voice is audible, not audible, picture is clear. The picture will be clear. Just tell me whether the voice is audible or what, very properly. Like you might be listening in your headphones or might be in a laptop, but just let me know whether it is properly audible or not. Okay, so that we can do something. We can go ahead immediately. Fast. Everyone needs to be active in the comments. Okay, everybody. Chalo. Okay, now without wasting any time, we'll start with immediate effect. Okay, because time is important, and above all, I'll also tell you how we're supposed to start and how we would go with financial management. Okay, I'll tell you everything, but before I start with the marathon, first 15-20 minutes are going to be very important. Basically, I'll talk about everything, how you should go ahead with this FM revision if you have not started yet. Okay, so now before I start all of this, today is 5th of December. Okay, your exams are in the month of Jan 25. Okay, now please pay attention. Right now, up till now, if you have started with your CA inter revision for Jan 25, let us assume one thing, that you are giving both the groups. You are giving both the groups, and everybody of you have you have to remain till the end. Okay, there will be shortcut tricks. I'll give you important questions. आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा. But सिर्फ एक ही है कि आपका पूरा मुझे ध्यान चाहिए. I want your complete concentration. Okay. Now coming back to this, let us assume you're giving both the groups in the month of Jan 25, which you were decided when you started your CA inter journey, right after your CA foundation. So what happens during the time, with the passage of time, students come from second to one, and then they eventually go from one to nothing. They will skip the attempt, and all that things are going to happen. Okay, that's the part of your journey. Now, the only thing which should keep you motivated is that when you cleared your CA foundation, you had a lot of enthusiasm, a lot of excitement. In यार इस बार अपन दोनों group track करेंगे. The same excitement should be there right now. Okay. Now, before I start with the FM, let me just give you all of these things. Okay. Next, then we will start with the FM marathon. Second, पहला, the first thing what should be there in your mind, sir, both groups see देना है. That is number one. Okay. Now, we'll assume one thing कि भाई साहब, till 30th November, you should have completed your group 1 revision. You should have completed with your group 1 revision. Listen to me very carefully, sir, but we have not met our targets. We have not achieved what we are like actually जो expect किया था. कोई बात नहीं है. Take one more week till first week of December. Try to wrap up group 1. Now if you're planning for group 2, obviously आपकी coaching खत्म हो गई, you're done with your classes and all that. Now the main point, all of this ends in the last 1 month. You might have done studies, you might have not done studies, that doesn't matter. एक महीना जो पढ़ाई करेगा ना अभी, this 1 month I'm telling you, this very upfront, I'm telling you in a very blank point answer. ये एक महीना आपने जो पढ़ाई किया ना अभी, एक month, it is more than enough. You have to do smartly, keep yourself motivated, and remember one thing: if you are planning for group 2 right now, just do one thing: attend these revision lectures which are there. Basically, see what happens is student has no idea from where to start, because when you start doing group 2, you have tons of books in front of you. For example, let us say you are doing FMS, and let us talk about this subject from you will not understand कि सर शुरू कहाँ से करूँ मैं, like FM में भी क्या करूँ, there's so many questions, there's so many this and that, what exactly I should do. Okay, so that is why we've come out with the revision lectures which will help you, which will save your time. Okay, now we'll start with this. Let us say the whole December month you will invest in group 2. पूरा group 2 आप करेंगे और आराम से करेंगे. Okay, maybe if you watch the revision lectures, or maybe you can watch anything, but keep it to the point. Okay, एकदम concise. The whole revision lectures is completely going to be exam point of view. Okay, nothing jang pang, no fancy stuff and all that. सीधा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो अभी तक आके गए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. Okay, now I'll not start from ABCDs कि भैया FM क्या है, this is the cost of capital and all that. But where I think I should go very slow, I'll go very slow. Okay. Also one more thing, the students who want to watch it afterwards, obviously जो live में नहीं बैठे, जो बाद में देखेंगे, उनके लिए भी एक suggestion है कि भाई साहब प्लीज फास्ट फॉरवर्ड मत करो. मैं ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड में रहने वाला हूँ. ठीक है. So no, मैं 1x पे देखूंगा, 1.5 पे. It will make no sense. Only you not catch even one single word. Okay, because I'm already going to be very fast. Okay.
want to go slow, I'll be very sure कि I'm very slow on that concept. Okay, so now so bhai sahab, the moral of the story is this: you need to give both the groups. That is the final point of view from my side. both groups देने का है, और group 2 का जितना भी है वो भाई साहब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? Let us say like this is FM, we're going to start with strategic management, audit is going to be there. Just do whatever PDFs I'm sending you. उतना भी तुमने किया, it is going to be more than enough. Trust me one thing, group 2 will be much more easier than group 1. Okay, it will balance you out, and it will keep you motivated. Okay, sure, every day is going to count from here. Now, can we start with this, everybody? Enough of that now. Just pay attention now. Everybody have to be very active in your comments. Okay. Now, keep this with you right now. Keep a blank book. Okay. And after the marathon, when it gets over, I'll send you the PDF, which is this only. Okay. Chalo. Now, bhai sahab, coming to the main important marathon, that is financial management. Strategic management बाद में लेने वाला हूँ. The dates are already decided. 50 marks is today's session. 50 marks is today's session. Okay. Now, so what all we are going to cover today? तो भाई साहब आप ध्यान देंगे प्लीज थोड़ा सा, ठीक है? आज के इस लेक्चर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं और कहाँ पे मेरा फोकस रहने वाला है, ठीक है? In financial management, okay, there are a few chapters. It's 50 marks. Few chapters are there. Now, I'll just write down the chapters. I'll tell you what all is there, and then we'll also start with the question papers which have just come from May 24 and September 24. Okay, भाई साहब, सबसे easy वाला और सबसे like everyone's favorite is cost of capital. We start from there. Dividend policy, that is dividend decision. Next, we'll straight jump to capital budgeting, which is the most important chapter. और भाई साहब इसमें एक ही method आपको करना है भाई साहब. Only one method you should have your hands on, and that is replacement method. You pick up any goddamn question paper in the past, you'll only find this one question only, that replacement. और उसको ही आज अपन तोड़ने वाले, ठीक है? replacement, ठीक है? अच्छा, इसके बाद सर ये हो गया ये. उसके बाद fourth ratio, very very important. Short question. Don't even think of dropping this chapter in the option, okay? Because ये bonus वाले questions है सब. सर रेशियो एक हो गया. उसके बाद भाई साहब और एक फेवरेट चैप्टर, योर वर्किंग कैपिटल. ओके भाई साहब, वर्किंग कैपिटल इज नॉट ओनली स्टेटमेंट, उससे बहुत सारे सब चैप्टर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आल्सो कम्स. अच्छा, आवाज नहीं है क्या? I'll just check one sec. Hello. I just check one sec. हाँ बोल. अरे you just tell me the voice is coming over. Huh? वॉइस में क्या प्रॉब्लम है क्या? मतलब थोड़ापन ये नहीं आहे, इट्स थोड़ा नॉट क्लियर बट आ रहा है आवाज. वन सेकंड, विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट. गिव मी वन सेक, ओके? Like, could you just give me 1 second over, please, everyone? You just sort with the mic thing, then we'll go ahead, okay? Give me 1 second. Go down some mic.
हेलो हेलो ओके अभी मुझे बताएंगे प्लीज नाउ इट इज कमिंग व्हाट and whether it is coming very properly clear. Just if this is the case, you give me a heads up, I'll go ahead immediately. First everybody let me know first if it is coming now. ठीक है now pay attention very clearly. Okay, I think we had some technical issue, the wires were messed up. Okay, chalo now so these are the chapters. First we start with COC. Now remember one thing, many students think yeah as a COC में क्या पढ़ना है वो तो बहुत easy. Okay, I have taken down some questions which are like kind of out of the box. Okay, dividend policy, capital weighting, very very important, you should have a hands on this. Ratio analysis, working capital will have a lot of sub chapters. Example, the statement, receivables management भी दो तीन concepts हैं जो करेंगे, टंडन कमेटी के norms वो सब अपन करने वाले, ठीक है, we'll do that also. Okay, next जो अपने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं which are leverage and your capital structure, which are leverage or capital structure. Now please pay attention everybody. In this the last दो चैप्टर जो है ना वो अपन एकदम लास्ट में करेंगे. ओके, बिकॉज दिस ये ऊपर वाले टॉप प्रायोरिटी में मेरे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके वर्किंग कैपिटल. ओके, और एक बात, एफएम के दो वीडियोस आएंगे, देयर विल बी टू वीडियोस ऑन एफएम. आई टेल यू व्हाई. एक में तो अभी डिस्क्रिप्टिव कवर कर रहे हैं और एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू कवर है. रिमेंबर वन थिंग, वी आल्सो हैव टू डू एमसीक्यू. इसमें एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, बट राइट नाउ विल नॉट मेस अप टू थिंग्स. पहले आराम से कंसेप्ट एंड विल कवर द क्वेश्चन आंसर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आई गो विद द एमसीक्यू पार्ट. ओके, चलो, आई होप दिस इज वेरी क्लियर इन योर हेड. नाउ starting with the very first, उसके पहले let me just give you a brief idea of this what's happening in the papers. Okay, now everybody pay attention, everyone. Now this was May 24. Okay, एक 2 मिनट में जैसे glance करेंगे अपन, then we'll go ahead. You just have an idea कि what exactly is happening and what exactly are these people asking. Okay, now MCQ छोड़ के this is your descriptive part. Yes, now in your part 2 remember one thing, question number 1 is compulsory and answer any two of the remaining 3 questions. I know all of you know this, but why am I showing you this? Because see, there will be one theory question in that. So like many students will opt out of the theory question. But if you see the theory questions now, I'll give you a PDF. I'll show you today only. आप सिर्फ उतना PDF करके जाओ. अगर आपको theory question attempt करना है, let us say one question comes bouncer. मतलब let us say एक कैपिटल वेटिंग का क्वेश्चन है वो बहुत ही बाउंसर गया, समझ में नहीं आना क्या, तो उस केस में आपको थ्योरी बचाएगा. और थ्योरी में आपको जितना मैं दे रहा हूं ना पीडीएफ उतना आप करके जाओ, ठीक है. थ्योरी विल नॉट कम वेरी बाउंस, इट्स वेरी सिंपल. यू हैव अ ट्रेंड ऑफ आस्किंग सिमिलर क्वेश्चंस, सो प्लीज रेफर दैट थिंग. ओके, नाउ दिस इज द थिंग. ये आपका रेशियो का है, ये आपका रेशियो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. तो अपन दोनों भी पेपर कंपेयर करेंगे, ये वाला भी सितंबर वाले, फिर मैं मैथ से शुरू करूंगा. सर रेशियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. ओके, इसमें 1 इज रेशियो, नेक्स्ट इज योर लेवरेज, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल, जो रिसीवेबल्स का पूछा है. ये बाय द वे ये इन्होंने फैक्टरिंग का पूछा है. दिस इज अ फैक्टरिंग क्वेश्चन. ओके, व्हिच वाज देयर इन योर मॉडल लास्ट में एकदम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नाउ दिस इज बेसिकली योर व्हाट, वैक. ये आपका वैक पूछा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट अगेन दिस इज अ लेवरेज क्वेश्चन, दिस इज अ लेवरेज क्वेश्चन. इसके बाद ये आपका बड़ा वाला क्वेश्चन आता है रिप्लेसमेंट वाला, एंड दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, कैपिटल वेटिंग. रिमेंबर वन थिंग, 3A और 3B में दिस इज योर नॉर्मल शेयर्स वाला क्वेश्चन. इस शेयर्स वाला क्वेश्चन जिसमें आपको डिस्काउंट वैल्यू निकालना होता है. और ये लास्ट जो आपको क्वेश्चन आएगा ये आपका आएगा थ्योरी का, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ दीस क्वेश्चंस आई विल गिव इट टू यू. ये सब क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा कंपाइल करके, आपको सिर्फ उतना करना है, नॉट फॉर वन पेपर, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कंपाइल्ड. ओके, चलो नाउ वन मोर थिंग, ये आपका static management, we'll discuss that in our SF wala marathon. Okay, now also one more thing, wait, I want to show you one more thing. This is your September, paper. We'll just go through it, pay attention. Again the first आपको यहाँ पे लेवरेज के ऊपर क्वेश्चन है,
इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल पूछा है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। अच्छा, नाउ वन थिंग, व्हाट डिड यू एनालाइज सर इन द फर्स्ट क्वेश्चन? रेशियो इज कमिंग, वर्किंग कैपिटल इज कमिंग, लेवरेज इज कमिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन नहीं है, तो भाई साहब रेशियो तो आपको करके ही जाना है इन एनी केस, एंड वर्किंग कैपिटल भी आपको करके ही जाना है। इनफैक्ट इन May 24, in May 24, in May 24, रेशियो, लेवरेज एंड वर्किंग कैपिटल, ये तीन चैप्टर्स कांस्टेंट है। So even if you have a sort of thing, ये three questions I have to do by hook or crook because you don't have option over there. So एक बार वापस बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ट्रेंड है वो कॉम्प्लेक्स सेट है उनका। क्या सेट है सर? रेशियो कंपलसरी रहेगा, वर्किंग कैपिटल कंपलसरी रहेगा और लेवरेज कंपलसरी रहेगा। दिस इज योर क्वेश्चन 1 का एनालिसिस। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो भाई साहब इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग समथिंग, डोंट ड्रॉप दीस चैप्टर्स बिकॉज दिस में ड्रॉप करने का तुमको भाई साहब ऑप्शन मिलने वाला नहीं। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, रेस्ट ऑफ द पैटर्न चेंजेस, working capital, your capital budgeting is going to come, that is for sure. Okay, so now can we start with the marathon, everyone? Can we start with the marathon? I want everybody to be very active and the most important, आपको ध्यान करना है, ठीक है? सबसे पहले the first chapter which I'm picking up is your cost of capital, ठीक है? Now there will be students from other academies, okay? There will be students from my academy. My only point of view is telling you all of you that आपके सामने कुछ भी नोट्स रहने दो, ये जितना भी अपन करने वाले आपको लिखना है। You have to write it down one more time. No matter you might have written it 10 times, अगर आपने 10 बार भी लिखा रहेगा ना कोई बात नहीं, 11 टाइम भी आपको लिखना पड़ेगा। फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू करेंगे एंड देन skip over to the questions. Okay, cost of capital है, what all you will expect. Pay attention please very carefully. In cost of capital this will be in the main question. तो आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू होगा ना कंपलसरी के बाद में, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा बैक वाला, ठीक है? नाउ the first thing they'll ask you is what weighted average cost of capital, which is very simple, मतलब तो बहुत easy है। इसमें दो आपको तरीके हैं, एक तो आपका बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट, which is more even simple. मार्केट वैल्यू के आपको वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, अपन क्वेश्चन करने वाले इसको, ठीक है? I'm just giving you an analysis of what is there, but there are a few questions in which you need to think properly. Sir, क्या रहता है ये क्वेश्चन? सेकंड, इन सम फैक्टर्स आपको ग्रोथ फाइंड आउट करना पड़ता है, तो उसमें ग्रोथ रहता नहीं है। There is one more question which I have already told my students and that is कल्याण लिमिटेड वाला। ये जो एक क्वेश्चन आया था, बीच में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कल्याण लिमिटेड। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन, आई हैव टेकन दिस इन द नोट्स आल्सो। So that question is a very good question for this, what for solving your cost of capital. Okay, so एक बार मैं आपको जब ये चैप्टर एंड होगा विल मेक श्योर कि आपने पूरा वैरायटी कवर किया, फिर विल गो अहेड। ओके, चलो कैन वी गो बिट फास्ट नाउ बिकॉज़ इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे आपसे फॉर्मूला चाहिए, देन विल गो अहेड। ओके, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो बॉस इवन आप भी लिखना शुरू करेंगे, इवन आई स्टार्ट राइटिंग। ओके, चलो सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे पहले क्या आता है आपका? तो सबसे पहले आपका आता है कॉस्ट ऑफ डेट, केडी आता है। केडी दो चीजें हैं आपका, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। मेक श्योर यू आर राइटिंग डाउन द फॉर्मूलास प्लीज। ओके सर, इररिडीमेबल क्या फॉर्मूला है? बहुत सिंपल है, KD इज इक्वल टू I 1 माइनस T अपॉन NP। आप एक चीज दिमाग में डाल के रखेंगे, पूरे FM में जहां पे भी आप इंटरेस्ट लिख रहे हो, वो आफ्टर टैक्स ही रहने वाला, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पोस्ट टैक्स, सो नेवर फॉरगेट दैट। इवन इफ यू राइट I, डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस T, मतलब वो पोस्ट टैक्स, आफ्टर टैक्सेशन। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर बॉस। एनपी का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड्स। इसका यही मतलब है जितने भी खर्चे बीच में आ रहे हैं वो आपको माइनस करना है। सर कौन सा कॉमन खर्चा आता है? एक ही खर्चा आता है, वो एक ही डालेंगे, और वो है फ्लोटेशन कॉस्ट। ब्रोकरेज भी कभी कभार डालते हैं, उनके मूड के ऊपर है, पर कुछ भी हो पैसा अगर बीच में है तो आपको माइनस करके इसमें लिखना है, ठीक है? यहाँ पे सर KD इज इक्वल टू I 1 माइनस T प्लस RV माइनस NP अपॉन N। ये रेडी है मेरे लैपटॉप में भाई सब कुछ, बट फिर भी आई एम राइटिंग इट डाउन बिकॉज इवन यू नीड टू राइट इट डाउन विद मी। ओके चलो नेक्स्ट, RV प्लस NP अपॉन 2। अगले 2 दिन में आपको FM ही करना है, बस FM ही आपको खत्म करके उससे बाहर एग्जिट मारना है FM से, ठीक है? सर RV का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन वैल्यू। कभी कभार आपको मतलब वो देंगे नहीं कि रिडीमेबल है, तो आपको मैच्योरिटी पीरियड देख के समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, रिडीमेबल वाला क्वेश्चन, ठीक है? चलो नेक्स्ट हाँ, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको क्लास में बताया था, कि जो T यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, नॉर्मल आपका कंपनी टैक्स होता है, वो आपको माइनस करना है, ठीक है? So can we move on to second one? So second one क्या रहता है? Second one है आपका cost of preference share। फॉर्मूला बहुत सिंपल है,
KP is equal to dividend upon NP. Very simple. If at all they give you dividend distribution tax, अगर क्लियर कट शब्दों में उन्होंने दिया है कि ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो भैया आप इसमें 1 प्लस टी करेंगे। भाई साहब कैसे होता है, उस 3 घंटे के फ्लो में आप यहाँ पे गलती कर बैठते हो। What you start doing is you write D over there and you write 1 minus T only. डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे किया जाता है, तो इट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। यहाँ पे केपी इज इक्वल टू डी 1 प्लस टी प्लस दिस रिमेन्स द सेम, ओके। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। सिंपल। चलो पे अटेंशन प्लीज। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला इन योर एंटायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की के ऊपर ऑब्वियसली देयर इज नो रिडमेबल और सब मेथड्स है, ओके। तो भाई साहब सबसे पहला, और ये आप लिखेंगे क्योंकि इसमें वो पी वाला भी फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू सर बहुत सिंपल डी 1 अपॉन पी 0। सर और एक कौन सा है, डी 1 अपॉन पी 0 प्लस ग्रोथ। ये डिविडेंड ग्रोथ वाला है, जो सबसे ज्यादा यही वाला यूज होता है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, डिविडेंड अपॉन D1 अपॉन P0 प्लस G। और एक बात सर, अगर क्वेश्चन में D0 दिया हुआ तो D1 पे कैसे आएंगे, बहुत सिंपल है भाई साहब। तो D1 पे अगर आपको D1 पे जाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, D1 D0 प्लस ग्रोथ कर देंगे आपको D1 मिल जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसका मतलब यही होता है कि भाई साहब पहले ईयर का डिविडेंड, वी आर स्टैंडिंग इन द 0 ईयर, आज 0 ईयर है, तो दैट्स व्हाई वी राइट D0, ओके। चलो नेक्स्ट, P0 स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, जो भाव चालू है मार्केट, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इफ दे आस्क यू ईपीएस मॉडल, कोई बात नहीं, ईपीएस डिवाइड बाय P0 करेंगे आप। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज हो रहे हैं, P0 NP इज द सेम, इट इज बेसिकली जो भी खर्चे हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, इसमें आपको लिखने पड़ेंगे, सिंपल। आई होप यू राइटिंग डाउन द फॉर्मूलाज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला आप फॉर्मूला अपडेट करेंगे आपकी बुक में, K इज इक्वल टू 1 अपॉन PE रेशियो। P का मतलब क्या है भाई साहब, व्हाट इज P? सर प्राइस अर्निंग। P का मतलब क्या है, प्राइस अर्निंग। तो बहुत बार उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है और जिसपे के निकालना होता है और उसमें पीई दिया रहता है, तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, यार ये कहां से निकले, के कैसे निकाले, इसमें डी 1 भी नहीं है, P0 भी नहीं है, तो भाई इसका फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय पीई है, ठीक है। और एक बात, अगर आपको पीई ही निकालना है, प्राइस अर्निंग, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, क्लास में ऑलरेडी बताया था। पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस, और ई का मतलब है आपका ईपीएस, ओके, अगर गरज लगा तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर और भी कुछ है क्या इसमें? हाँ, और भी एक है। सो not all the time they'll ask you, but please write down this formula also, RF plus beta RM minus RF, ठीक है। This is your CAPM approach वाला formula, ठीक है। RF stands for risk free security, beta is the sensitivity of market, and RM is return from market, okay। Let me know whether you have written down all the formulas, yes or no, जल्दी हाँ ना करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है भाई साहब, इसके बाद आपका आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ओके। तो बेसिकली देयर इज नो कॉस्ट एज सच फॉर केआर, बट ओनली फॉर द राइटिंग पर्पस व्हाट वी डू इज केआर इज इक्वल टू केई, केआर इज इक्वल टू केई, बहुत सिंपल है। बट इसमें भाई साहब दो एक्सेप्शन, और दो एक्सेप्शन क्या है, देयर टू एक्सेप्शंस इन दिस वेयर केआर इज नॉट इक्वल टू के, केआर इज नॉट इक्वल टू के। सर कैसे होगा, if they have given you flotation cost, if they have given you flotation cost, and if they have given you personal income tax, if they have given you personal income tax, कभी कभी शेयर होल्डर्स वेल्थ टैक्स पे लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, भाई साहब लॉजिक क्या है इसका, अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, अरे खुद का पैसा है, वो अपना ही पैसा है, थोड़ी मार्केट से उठाया अपन ने, तो काय का आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट, देयर विल बी नो फ्लोटेशन कॉस्ट ओनली। सो देयर इज अ शॉर्ट I write a line over here कि भाई साहब don't deduct flotation cost, okay, while computing KR, okay। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, KR will be जो भी आपका KE रहेगा और 1 minus T, और यहाँ पे T क्या स्टैंड करता है, पर्सनल इनकम टैक्स। इस पूरे चैप्टर में 3 प्रकार के टैक्स है, सबसे पहले आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी टैक्स बोलते हैं, जो केडी में यूज होता है। फिर केपी में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है, अगर दिया रहेगा तो आपको ऐड करना है, और अगर उसी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालना है, तो ये वाला टैक्स आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं ये तो छोड़ दो, तो जो के आपका है वही आपका केआर बनने वाला है। इज दिस क्लियर, यस और नो एवरीबडी, गिव मी अ यस और नो। आणि झोपू नका, असं चोप दिन मी झोपला तर तुम्ही दुपारी, सर आम्हाला येते है, हमको ये सब कुछ आता है, क्या बोरिंग है, ऐसा चोप देगा ना, मैं बोरिंग वगैरह सबको लिखना है। अगर आपको मूड में आने का है ना, ग्रुप 2 के पहले लिखो,
मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट. आई कुड हैव स्टार्टेड विद कैपिटल बिल्डिंग आल्सो. और मैं भाई साहब तुमको कॉन्फिडेंस एक आना चाहिए, उसके बाद अपन घुमाएंगे एडवांस वाले क्वेश्चंस. ठीक है, लेट मी नो वंस वेदर यू हैव डन दिस, यस और नो. सबका हुआ है क्या? एवरीबॉडी यस और नो? सगळ्यांचं लिहून झालंय का? लवकर सांगा मला, हो का नाही, लवकर. इसके बाद आपको वैक निकालना होता है. वैक का एक सिंपल फॉर्मेट है भाई साहब, जो आपको ऑलरेडी पता होगा. सोर्स, इसके बाद अमाउंट आता है, अमाउंट के ऊपर अपन वेट निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में आपका क्या होता है? वेट इनटू सीओसी, वेट इनटू सीओसी. ओके, दिस इज योर बेसिकली योर टेबल. ठीक है, अमाउंट जब आप टोटल मारेंगे, इसके ऊपर आपका वेट निकलने वाला है. वैक टू बी कंप्यूटेड बाय बुक वैल्यू वेट, बाय बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट. बहुत सिंपल है. ठीक है, चलो, कैन वी गो हेड, यस और नो? ये हो गया भाई. चलो, नाउ पे अटेंशन प्लीज. So now these are some questions which I have taken. Okay, आराम से करना है, आंसर्स भी यहाँ पे, बट अपने को सॉल्व करना है. Where it is simple, it is repeated question, that time we look in the answer. Okay, so स्क्रीन के सामने कुछ है, बट सबसे पहले एक मिनट. हाँ, I was just checking whether I took that कल्याण वाला क्वेश्चन होगा, मैं वही चेक कर रहा था. चलो शुरू करेंगे भाई साहब. कैन वी स्टार्ट एवरीवन? आपको ध्यान देना है. I'll dictate the figures. Okay, if it is possible, you can write down the figures while I'm dictating. Okay, so first question: capital structure of Samyakta Limited. क्या जगह का नाम है, क्या नाम है? सम्यक्तवा. 12% debentures 3.5 लाख, 14% preference share 4,50,000, equity shares 8.5 लाख. So whenever a question comes on cost of capital, the first thing you need to check is what? कि sources क्या क्या है. अरे मतलब क्या क्या निकालना है मुझे सर? इसमें तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मुझे केडी निकालना है, इसमें केपी निकालना है, और इसमें केई निकालना है. ये कंफर्म हो गया अपना बॉस. चलो ओके, ये आपको बुक वैल्यूज दिए हुए हैं 3.5 लाख, 4.5 लाख और 8.5. चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल. व्हाट इज रिडीमेबल? इसका मतलब रिडम्पशन वाला फॉर्मूला है. तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है वो के डी के लिए दिए. एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज सर. सेकंड सर, प्रेफरेंस शेयर का इंफॉर्मेशन है, ये केपी के लिए इंफॉर्मेशन दिया. इसके बाद ये आपको दिया है के ई के लिए. ठीक है, टैक्सेशन रेट इज 25. मेक श्योर यू रीड दिस प्रॉपर्ली. इट्स कॉर्पोरेट टैक्सेशन, कैलकुलेट वैट यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट. तो भाई साहब जब आप एंड में आओगे तो बड़े आंखों से आप चेक करो कि वो क्या पूछा उन लोगों ने. ये तो तुम करोगे यार, ये तो बहुत ही इजी है, इसमें क्या है, केपी निकालने का है. नहीं भाई, तुम अगर बुक वैल्यू से निकालोगे, यहाँ पे आपको ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू वेट से निकालना. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ पे आपको दोनों में निकालना होता है, बुक वैल्यू आल्सो, मार्केट वैल्यू आल्सो. ओके, कैन वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन? ओके, आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू एक दो मिनट हे जर ड्रॉप करतो म्हणजे आपण सॉल्व करू शकतो. चला, पे अटेंशन. ओके, नंबर 1 एकदम आराम से केडी आप निकाल के दो. केडी आप निकाल के दो. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर. केडी तुम्ही मला काढून द्यायचा आहे. केडी यू नीड टू डू इट फॉर मी फास्ट. केडी सिंपल है. अच्छा पहिलंच आहे, मी सुरू करतो. केडी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला सर, फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर. आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस, आई शो द क्वेश्चन, डोंट वरी. पहले फॉर्मूला लिखो, अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2. ओके, नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन. 100 is the face value. This is your premium. This is 12% debentures. का मतलब ये है कि कितने परसेंट है भाई साहब? It is for 12%. तो आप क्या करेंगे? 100 into 12%, आपका 12 रुपीस होने वाला है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 रुपीस. 1 minus t. How much is taxation? 25%. 25%. 0.25. 0.25. Everybody, I want answers from you. 0.25 plus RV कितना है? RV का मतलब क्या होता है सर? वो कितने साल के बाद पैसा देने वाला है उसको सर. यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, 100 रुपए का है, 100 रुपीज का, और कितने में देने वाला है सर? 6% प्रीमियम, 6% प्रीमियम में देने वाला है. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच विल गिव इट बैक? एनीबॉडी, हाउ मच विल गिव बैक? सर बहुत सिंपल है सर. 106 रुपए वापस देगा. कितना देगा सर? 106 वापस देगा. अच्छा, अभी कितना पैसा मिलेगा सर? अभी करंट प्राइस 115 चल रहा है. तो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर.
टर्मिनल प्राइस आपको इसके लिए दिया है बिकॉज लास्ट में आपको जो वैक निकालना है ना वो 115 से निकालना। ये जो प्राइस आपको दिया है ना वो अभी के लिए दिया नहीं है, वो कब के लिए दिया है, जब आप बैक निकालेंगे। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी कि एनपी कितना है, एनपी कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%। कैन प्लीज टेल मी व्हाट हाउ मच इज द एनपी? आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन, फास्ट, आई वांट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जल्दी। Anyone who's got the answer? 95, 95, 95 आपका ये वाला आना चाहिए, this should come. Now pay attention. Institute has given two answers in this. One, जो अपन solve कर रहे हैं, what one we are solving, that is 95. And second, what you can do is, you can treat this also. अच्छा और एक बात, आप FM में assumption लिख सकते हैं, there is no problem at all. You can also tell the examiner what I've assumed this is there. यही उसने जो फेस वैल्यू है वही उसने इशू किया, वैसे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। So, बहुत सारे क्वेश्चंस में आईसीआई ने क्या किया है, ये जो मार्केट प्राइस है दे हैव टेकन दिस डायरेक्टली वेयर एट वैक, एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, 100 रुपए आप ट्रीट कर सकते हैं, पर प्लीज राइट ऑन द अजम्पशन दैट यू हैव टोल्ड हिम, यू आर टेलिंग हिम, ये हमको पता है 115 रुपए दिया है वहां पर, बट व्हाट वी आर डूइंग इज दैट देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर हियर। सो व्हाट वी आर डूइंग, 100 रुपए जो है वही अपन अज्यूम करके उसके ऊपर इश्यू हुआ है, और कितना माइनस किया है, 5% माइनस किया है, ठीक है। सो विल गो विद द फर्स्ट वन, 95 कितना 5 साल का है ना ये, तो करेंगे 106 प्लस 95 डिवाइड बाई 2। आई वांट द आंसर्स प्लीज, आई वांट द आंसर्स फास्ट, आंसर निकालेंगे। और केडी कितना फाइनल आंसर है, मुझे आंसर दो। केडी का आंसर कितना है, एनीवन? नाइन प्लस 2.2 डिवाइड बाई 10.5 कितना आता है मुझे बताएंगे आपका आंसर? इज इट 11.14 अप्रॉक्स, 11.14 अप्रॉक्स, 11.14 everybody, have you got 11.14? 11.14, but did you understand what logic did we use right now? There can be one more answer, there can be one more answer. ये जो 95 यहाँ पे है, ये अपन क्या कर सकते हैं, 115 पे भी कर सकते हैं, 115 पे भी जो मार्केट प्राइस है आप उसमें आराम से लिख सकते हैं, और 115 में से आपका क्या माइनस होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा। ओके, आई विल शो यू आल्सो व्हाट दिस गाइस हैव डन। सो सी दिस इज योर इश्यू प्राइस, वही अज्यूम किया है, और फ्लोटेशन कॉस्ट आपका कितना रहेगा, 5%। ओके, नाउ इसमें वही पॉइंट है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस देयर दे हैव टेकन व्हाट, जो आपका फेस वैल्यू है वही आपका क्या है, इश्यू प्राइस है, ठीक है। सो आपका ये आंसर बराबर है 111.14 with the assumption that the face value is only your issue price, okay? और जो 115 वाला है वो अपन बैक में मार्केट वैल्यू में लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप कंप्यूट करेंगे प्लीज, नेक्स्ट वन केपी, नेक्स्ट विल डू केपी। केपी का मुझे बताएंगे आपका आंसर कितना है सर? केपी सेम 100 per preference share, redeemable at a premium of 10%, okay, issued at a discount of 2% with the flotation cost of 5%. The current market price is 108, और जब आप एक कंसिस्टेंट फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं यही इस पे इश्यू किया उन लोगों ने डिस्काउंट पे, देखो ना अब ये तो यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा है इन लोगों ने क्या, कि 100 रुपए का है और 2% डिस्काउंट पे दिया, मतलब 98 आना चाहिए। ओके, विल सी व्हाट दे हैव रिटन द आंसर्स, पर पहले आप अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। कैन यू प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला एवरीवन, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला एवरीवन। KP is equal to dividend, अभी there is no dividend distribution tax, सवाल नहीं होता उसका, RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP upon 2. Okay, you have to write, okay, we have to write all the question में वही बोल रहा हूँ, आपको आंसर लिखने सब। सर डिविडेंड कितना है, तो फेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे फेस 100 इज द फेस वैल्यू, एंड 14% इज द डिविडेंड, ऊपर दिख रहा है देखो 14%, सो 14 रुपीज का आपका क्या हुआ, डिविडेंड हुआ 14 रुपीज का आपका क्या हुआ, डिविडेंड हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 14 रुपीज प्लस आरवी का मतलब क्या, कितना पैसा वापस दे रहा है, कितना पैसा वापस दे रहा है सर, तो यहाँ पे लिखा इन लोगों ने क्या, 100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 100 का है और कितने में रिडीम कर रहे हो, 110 पे रिडीम कर दे दो, 110 पे रिडीम कर रहे हैं,
यहाँ पे आएंगे 110 लिखेंगे अपन। नेट प्रोसीड्स कितना है आज के तारीख में, तुमको पैसा कितना मिला, हाउ मच यू हैव गॉट टुडे, हाउ मच यू हैव गॉट टुडे सर 100 was the preference share. These guys are issued of 2% with a flotation cost of 5%. तो भाई साहब मुझे एक बताएंगे 100 पे 2% कितना आता है सर, 2 रुपए आएगा, तो 98 पे इशू होगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी ऑन द इशू प्राइस। मेक श्योर 2-3 पॉइंट है इसमें। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर उन लोगों ने लिखा है कि इशू प्राइस पे, तो आपको इशू प्राइस पे क्या करना पड़ेगा, फ्लोटेशन को निकालना पड़ेगा। अगर कुछ दिया नहीं है तो आप अज्यूम क्या करेंगे कि जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। इसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि फ्लोटेशन कॉस्ट किसके ऊपर है, इशू प्राइस के ऊपर है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द एनपी, व्हाट इज द एनपी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। एनपी कितना आ रहा है मुझे बताएंगे आप, एनपी कितना आ रहा है, क्रिटिकल एनपी, हाउ मच इज द एनपी एवरीवन, हाउ मच इज द एनपी। करंट मार्केट प्राइस, आपको एक ही कंसिस्टेंट फॉलो करना है भाई साहब, आपको एक ही कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, तो वापस बोल रहा हूं। So what we'll do is sir 100 minus 2 98 and 98 के ऊपर how much was the flotation cost, how much was the flotation cost, flotation cost is 5%, तो इसमें 5% माइनस कर देंगे आप प्लीज, 98 into 5%, this is 4.9, 4.9 कितना आता है चेक करेंगे प्लीज, 93.1, 93.1 सबका आएगा, चेक करेंगे। और एक बात, तो अगर आपको दूसरा अजम्पशन फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस देना पड़ेगा। मार्केट प्राइस कितना है इनका, व्हाट इज मार्केट प्राइस, 108, 108, तो आप क्या करेंगे, ये सेम चीज करेंगे बट मार्केट प्राइस के हिसाब से 108, इसके ऊपर वापस माइनस आपका ये होगा, डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद माइनस क्या होगा, इश्यू प्राइस के ऊपर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा, ठीक है। बट that is not we are following right now, we are following that they have written clear cut over here, clear cut mention किया इन लोगों ने यहाँ पे कि 100 per preferential redeemable at premium issued at a discount of how much, 2%। तो सवाल ये उठता नहीं है कि आपका ये आप प्राइस ये करें, ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ आप बैक के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर आपको assumption लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैन यू प्लीज गिव मी एन आंसर ऑफ व्हाट इज द KP 93.1, how much is the this is the number of years to maturity, 10 years, 10 साल है भाई साहब, आपको 10 लेना पड़ेगा यहाँ पे, 10 whole divide by 110 plus 93.1 divide by 2. Can you give an answer please, can you give me an answer everyone, how much is the answer, minus 93.1 divided by 10, 14 plus 1.69 whole divided by plus 93.1 divided by 2, 101.55, 14 plus 1.69 divided by 101.55, 15.45 should be the answer, 15.45% should be the answer। देखो आपका आ रहा है क्या, आपका आ रहा है क्या, 15.45% everyone, 15.45% everybody, yes or no, 15.45%, 15.45% everyone, give me 1 second, I'll just मैं मेरे फोन पे लगा रहा हूँ so I can read your comments properly। हाँ अभी I can see it properly। चलो ओके, दो चीजें हो गए भाई एकदम आराम से, आपका केडी हो गया, केपी हो गया। चलो कैन वी गो अहेड प्लीज, कैन वी गो अहेड सर, अभी ये दोनों हो गए, अभी अपने को केई निकालना है, ओके। नाउ केई का इंफॉर्मेशन अपने स्क्रीन के सामने, व्हाट इज देयर सर, these guys have given equity share has a flotation cost of ₹5, okay, with the market price currently quoted at 30, no problem। कंपनी लिमिटेड पेड एट लास्ट डिविडेंड ऑफ 4, कैन यू प्लीज टेल मी लास्ट डिविडेंड का मतलब क्या है, वो D0 या D1 है सर, लास्ट का मतलब यही होता है, ये D0 है, ये कौन सा है, D0 है, ओके। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9%, जीबी दे दिया आपको। कंपनी हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, कैन यू प्लीज कंप्यूट के एंड गिव इट टू मी। सो व्हेन यू डूइंग दिस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर सबसे पहले हमको के का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ओके, दैट इज D1 अपॉन P0 प्लस G, D1 अपॉन P0 प्लस G, आपका फॉर्मूला हो गया भाई साहब। अच्छा मुझे आप बताएंगे D1 कंप्यूट कैसे करेंगे सर, जो अभी लास्ट डिविडेंड है उसपे ग्रोथ ऐड कर देंगे अपन। सो व्हाट वाज द लास्ट डिविडेंड बॉयज एंड गर्ल्स, सो लास्ट डिविडेंड वाज, कहां पे गया लास्ट डिविडेंड, 4 रुपीस, इट वाज 4 रुपीस प्लस ग्रोथ रेट कितना 9%, 4 प्लस 9%, इज इट 4.36, यहाँ पे आएगा 4.36, ओके।
हाउ मच इज द प्राइस गोइंग ऑन राइट नाउ? सर अभी प्राइस चालू है 30 रुपए, पर पॉइंट ये हुआ है कि फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज है, सो हाथ में कितना आएगा आपके? सर 25 आएगा। कितना आएगा? 25 विल कम, 25 प्लस ग्रोथ 0.09। हैज एवरीबॉडी डन दिस? यस और नो? हैज एवरीबॉडी डन दिस? के का आपका आंसर कितना आएगा? मुझे आंसर चाहिए, आई वांट द आंसर, एवरीवन फास्ट, आई वांट द आंसर। चेक करेंगे प्लीज। 4.36 divided by 25 plus 0.09, is it 26.44? is it 26.44%? is it 26.44%? everyone, can everybody give me an answer fast? क्या सबका 26.44% आंसर आया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? एंड रिमेंबर वन थिंग, आई नो इट्स अ मैराथन, आपको अगर दिक्कत भी आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे आप वहां पे ही रुकाओ, सर ये कंप्यूटेशन कैसे है वो पता नहीं चलता, ठीक है? इज इट 26.44? पाटिल कमेंट करायचं आहे, उत्तर द्यायची आहे, एव्हरीबडी जितने भी लोग हैं, even if you're getting the answers, do let me know you have got the answer. Okay, I want everybody to comment there fast. 26.44 क्या आपका आंसर आया क्या? अगर ये आपका आंसर आया तो तुमने केडी निकाला है, केपी निकाला है और केई भी निकाला है। ओके, यू आर फ्री टू गो टुवर्ड्स लास्ट स्टेप एंड दैट इज व्हाट? वैक। निकालेंगे वैक अभी भाई साहब, वैक निकालेंगे। चलो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है भाई, चलो वैक निकालेंगे। लास्ट स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग computation of WACC, statement showing computation of WACC using what? using what? market value weight, which is very important, वही question पूछा उन लोगों ने। okay, can everybody start? Because you already have the information, you already have the information. number one source amount, back में लिखेंगे आप market value, next weight, cost of capital, और लास्ट में आपका आएगा weight into cost of capital, simple, weight into cost of capital, everyone chalo fast, everyone चलो सर क्या क्या है सोर्स में? तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा तीन चीजें सोर्स में है, मेक श्योर राइट द एग्जैक्ट नेम व्हिच इज देयर इन द क्वेश्चन। 12% डिबेंचर, 14% प्रेफरेंशियल, 12% डिबेंचर्स, 14% प्रेफरेंशियल, 12% डिबेंचर्स, 14% प्रेफरेंशियल, और ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, बिकॉज पर सिक्योरिटी का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे के रखा है उन लोगों ने। ओके, सो 3.5 लाख रुपए का बुक वैल्यू है एंड डिबेंचर 100 रुपए का है, तो आप डिवाइड बाय 100 रुपए करेंगे, इंटू क्या करेंगे? 115, 3.5 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 115, कितना आता है? इज इट 4,02,500? इज इट 4,02,500 एवरीवन? इज इट 4,02,500? इज इट 4,02,500? कैसे आया, समझ में आया? 100 रुपए का एक था, अभी 115 का है, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 115। सेम विथ योर प्रेफरेंशियल, सेम विथ योर प्रेफरेंशियल, 4.5 लाख का है, 4.5 लाख का है, 100 रुपए का था, अभी कितना है? 108 का है, 108 का है, तो क्या करेंगे? 4.5 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 108। इज इट 4,86,000? इज इट 4,86,000? इज इट 4,86,000 एवरीवन? 4,86,000, यस और नो? ओके, लास्ट इक्विटी, इक्विटी का भाव पहले कितना था? सर फेस वाले इतना है, तो 8.5 लाख उनका था, डिवाइड बाय 10, दैट वाज द बुक वैल्यू, इनटू कितना करना पड़ेगा? इनटू 30 रुपीस। इज इट 25,50,000? इज इट 25,50,000 एवरीवन? 25,50,000, 25,50,000 की आपका अमाउंट आ रहा है क्या इक्विटी का? ओके, ये होने के बाद अब मस्त में यहाँ पे टोटल मारेंगे ताकि आप वेट निकाल सको, एवरीबडी डन, यस और नो? एवरीबडी, is it 34 lakh? Is it 34 lakh 38,500? Is it 34 lakh 38,500? Yes or no? Is it 34 lakh 38,500? क्या टोटल आया? अगर टोटल आया है तो मुझे वेट निकाल के दो प्लीज, वेट निकाल के दो फास्ट। 0.12 राउंड ऑफ किया मैंने वो, divided by 34, 38,500, 0.14, 0.12, 0.14, 0.74, 0.74 क्या आपका आया? yes or no everyone? everybody yes or no? you may answer fast. cost of capital तुमने ऑलरेडी निकाल के रखा है,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी आपके पास है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे केडी कितना आया था आपका 11.14% था, 11.14% was this, केपी कितना आया था भाई साहब, केपी was 15.45%, 15.45%, 15.45%, this was 26.44%. Can you please tell me what is the WACC? आप बता सकते हैं WACC कितना है? How much is the WACC? Please tell me. How much is the WACC? Please tell me. Everybody, I want answers from you first. 0.12, 0.013368, 15.45, 0.14 into 15.45%, 0.02163, 0.74 into 6.44%, 0.195656. Can you please give me a final answer, everyone? Is it 23.06%? Is it 23.06%? Is it 23.06%? 23.06%. Can anybody give me a final answer? Can everybody give me a final answer? चित्र आपका आंसर राइट है 23.06%. I want everybody to comment. सबका आंसर आने चाहिए 23% में आपके आंसर आने चाहिए. Yes or no? Yes or no? I want everybody to fast tell me yes or no. कि आपके आंसर आए क्या? जितने भी लोग हैं सबके आंसर सबके कमेंट्स में आने चाहिए. The final WACC is your final WACC in 23% का रेंज. 23% के रेंज पे आपका आंसर आया क्या? फाइनल एवरीवन, एवरीबॉडी, आपके सामने आपका ये है, आपके सामने टेबल है, आपके सामने टेबल है. If you have not got the answer right, please make sure you are checking the figures. You're checking the figures which is there on your screen. Have you got the answer? Fast. Chalo, very good. Now, can we go ahead? Can we go ahead, please? Can we go ahead, everyone? So now, चलो this और ये सब आपके RTPs के क्वेश्चन है. All the RTPs have taken सर आंसर क्वेश्चन लिए मैंने, which I think it is out of the box. Okay, so you go on to next question please. ये is same type of question we have done in the class, but ये वाला करेंगे because I think this can come and this is a very good question. Okay, इसका एक एडजस्टमेंट है जो ऑलरेडी अपन ने क्लास में किया है. कैन वी स्टार्ट? कृतिका आपका आंसर राइट है, तन्वी आपका आंसर राइट है. ठीक है, चलो पे अटेंशन नाउ. BS Limited has the following capital structure at book value as on 31st March 24. Here, they have given you equity share capital, they have given you 11.5 preference shares, they have given you 10% debentures. Done. The equity shares of the company are sold for 300. It is expected that company will pay next year a dividend of 15 per equity share. What is from next year 15? So this sir ये D1 का बात है, ये आपका P0 है और ये आपका ग्रोथ है और ये आपका टैक्स है, ये आपका टैक्स है. ओके, मैंने वहां पे सब इनिशियल लिख दिए. ओके सर, निकालना क्या है इसमें? सबसे पहले आपको WACC निकालना है ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट बुक वैल्यू जो भी आपके सामने है. सेकेंड वाला एडजस्टमेंट अपन ने क्वेश्चन में किया था, इफ यू जस्ट कैन रिकलेक्ट दिस, कंप्यूट न्यू WACC, मतलब आपको और एक WACC निकालना है. इफ द कंपनी रेजेस एडिशनल 50 lakhs debt by issuing 10 years 12% debentures, but the yield on debentures of similar maturity and risk class is 13%. ये जो similar risk class वाला adjustment आपको tell you, if you have forgotten, I'll just tell you what is that. Rotation cost दिया है 2%, face value of debentures 100. This will result in increasing the expected equity dividend of ₹20 and leave the growth rate unchanged. The price of this will fall to 250. That is okay. ये नए वाले WACC के लिए करना है. But अच्छा एक काम करते हैं, पहले आप ये निकाल के दो पहले वाला, we go very slowly and then we'll go on to the new वाला question. Okay, can you please start doing this? Can you please start doing this? I want the first WACC from you. पहला WACC आपसे बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, उसमें आपको KE निकालना है, KP निकालना है और KD निकालना है. ये तीन होने के बाद अमाउंट आपके स्क्रीन के सामने ही आपको WACC निकालना पड़ेगा, आपको WACC निकालना पड़ेगा. चलो फास्ट, I'll do it here only. चलो नंबर वन सर, अगर मुझे KE निकालना है, सबसे पहले KE निकालना है. KE के लिए इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने दी है. KE का इंफॉर्म आपको ये भी पता है फॉर्मूला, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. KE इज इक्वल टू D1 upon P0 plus G. Very simple. Keep it very simple. Make sure you're writing down the formula, क्योंकि फॉर्मूला जी सब कुछ है. ठीक है, now D1
सर यहाँ पे दिया है कंपनी नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देगी, तो अपन ने ऑलरेडी वहां पे मेंशन किया कि वो D1 है, ठीक है, आपको उसमें ऐड नहीं करना है भाई साहब, ओके। वो कितना है 50, प्लीज गो ओवर हियर एंड राइट हियर 50। अभी कितना भाव चालू है बाहर, 300 चालू है। ग्रोथ कितना दिया भाई साहब इन लोगों ने, 5% दिया है, 0.05। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू प्लीज व्हाट इज द आंसर, 15 डिवाइड बाय 300 प्लस 0.05। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर, ए कितना आ रहा है आपका, इज इट 10%, इज इट 10% एवरीवन, क्या आपका आंसर 10% आया है क्या, ये आपका आंसर, ये आपका इंस्टीट्यूट का आंसर है, क्या आपका आंसर 10% आया है क्या, यस और नो, इज योर आंसर 10% फॉर केई, क्या आपका आंसर केई का 10% आया क्या, कंफर्म करेंगे एक बार फिर आगे जाएंगे। सर ओके सर, दिस वाज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये, सिंपल कैलकुलेशन। केई इज हाउ मच, केई इज हाउ मच 10%। कैन वी गो ऑन टू दिस सेकंड में जाएंगे अपन। सर सेकंड में क्या निकालना है आपको, केपी निकालना है, आपको केपी निकालना है। अरे सर कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं इन लोगों ने। अच्छा एक काम करो, आई वेट फॉर अ मिनट एंड यू गिव मी द आंसर फॉर केपी एंड केडी, आई नॉट डू एनीथिंग, आपको आंसर देना है। चला पाटिल से कमेंट चालू झाले, वेरी गुड। केपी एंड केडी, केपी एंड केडी आपको देना है मुझे, यू नीड टू गिव इट टू मी, ओके। चलो डू इट फास्ट प्लीज। अरे सर कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है वहां पे, कैसे निकालेंगे केपी और केडी। बॉयज एंड गर्ल्स एकदम फंडा सिंपल रखो, अगर उन लोगों ने आपको केपी का इंफॉर्मेशन दिया है तो भाई साहब आपका ऑलरेडी फॉर्मूला जो अपने प्रीवियस वाले सबमिट किया, अरे इसमें कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो भाई साहब यही आपका आंसर है ना। अरे सी मला एक सांगा, केपी का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन एनपी, तो 100 रुपए का फेस बिल रहेगा और डिविडेंड तो उतना ही रहेगा ना भाई साहब, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए केपी का, सर इट विल बी 11.5 ओनली, सिमिलर। तो यू डू अंडरस्टैंड दिस केपी, और अगर आपको लिख के देने का है, अगर उसको आंसर पढ़ा, हाँ केपी डी अपॉन एनपी, यही तो फॉर्मूला है ना भाई साहब। तो 11 पॉइंट कितना था वो, 11.5 डिवाइड बाय 100, अपन वही अज्यूम कर रहे हैं ना भाई, 100 रुपए का ही प्रेफरेंस शेयर, तो आपका आंसर कितना आएगा, सर 11.5% ही तो आएगा, क्या देंगे वही छापना है आपको नीचे। अच्छा सर केडी, केडी निकालने अभी केडी, आणि ए पोरानो, ए पब्लिक, पब्लिक सुनो, ये कभी भूलो मत, दिस इज अ वेरी सिंपल एडजस्टमेंट ऑफ दिस, ये वाला देखो, ये वाला है ना, ये 11.5, 11.5 ये वाला है ना, तो आई टेल यू वी डू लॉट ऑफ बिग सम्स, अपन बहुत बड़े बड़े सम्स करते हैं, बट ये छोटा सा एक ये ट्रिक है। तो कभी कभार आप क्या करते हो, ये ढूंढते रहते हो कहाँ पे यार केपी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे आंसर लिखूं, जब आप हैंग हो जाते हो ना 2 मिनट के लिए, इनफैक्ट आप अभी भी हैंग हो गए रहेंगे, आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपने जो मुझे कमेंट्स में आंसर दिया उस सबने आपने मुझे केडी का आंसर दिया, केपी दिया नहीं किसने, केपी का आंसर यही है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू। हाँ ये चेंज कब होता पता है क्या, अगर इसमें देयर वुड हैव बीन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर डीडीटी रहता तो इसमें आपको ऐड करना पड़ता। समझ में आ रहा है आपको, डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी, यस और नो। चलो नाउ केडी निकालेंगे, केडी बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब भी आप केडी सॉल्व करते हो इट इज ऑलवेज 1 माइनस टी, आप जब भी केडी सॉल्व करते हो इट इज ऑलवेज 1 माइनस टी, तो वो आप दिमाग में रखेंगे प्लीज, ठीक है। कितना था भाई साहब इंटरेस्ट, सर 10% डिवेंचर, सो 10 रुपए रहेगा, बहुत सिंपल है। और टैक्स कितना दिया इन लोगों ने, 35% का टैक्स है, तो बहुत सिंपल, 10 1 माइनस 0.35 डिवाइड बाय 100 अज्यूम कर रहे हैं अपन। चलो कितना आता है इसका आंसर, सर 6.5%, जो मेरे हिसाब से तुम लोगों ने आंसर बराबर, वेरी गुड, ओके 6.5, हैज एवरीबॉडी गॉट केई केपी केडी, ओके ये सब आया। नाउ आई लीव इट टू यू, आई विल लीव इट टू यू, यू हैव टू गिव मी बैक, आपको बैक देना है, लेट अस सी जल्दी से कौन देता है, टाइमिंग पे कौन देता है, आपके सामने आपके अमाउंट्स है, आपके सामने आपके अमाउंट्स है, 3 crores 60 lakhs and 1 CR, 4 crores 60 lakhs is the मेन वैल्यू, आपको वही लिखना है वहां पे, वही छापना है बुक में, उसके ऊपर आपको वेट निकालना है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये तो ऑलरेडी आपके पास है, ये ऑलरेडी आपके पास है,
पाटिल आपका आंसर राइट है, मुझे आपसे वैक चाहिए। अच्छा, मुस्कान ने वैक ऑलरेडी निकाला है, चित्रा ने वैक ऑलरेडी निकाला है, वेरी गुड, 9.43 आपका आंसर। हम क्रॉस चेक करते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ, आपका आंसर राइट है, आपका आंसर राइट है, इट इज 9.44 या 9.43, बोथ आर एक्सेप्टेबल। मेक श्योर कि अगर आप कर रहे हो सॉल्व तो ये वाला टेबल आपकी बुक में चाहिए। आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब आपका पूरा आंसर हो जाएगा तब मुझे बताओ, देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी, क्या आपका आंसर 9.44 आया है? एक बार कंफर्म करेंगे। विल एवरीबॉडी कंफर्म? विल एवरीबॉडी कंफर्म प्लीज? 9.44, 9.44 has everybody given the answer? आपकी बुक में आना चाहिए प्लीज। आप ये नहीं करेंगे कि नहीं चलो बाद में सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको अभी सॉल्व करना है सब कुछ। आज का पूरा दिन आपका डेडिकेटेड है सिर्फ एफएम के लिए। आज तक कल का भी वही है और परसों का भी वही है, ठीक है? आपको एफएम से बाहर आने का, एग्जिट मारना है, डायरेक्टली आप एग्जाम के समय उठाओ। दिस इज माय चैलेंज, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। आपका प्रॉपरली बैठेगा आपका पूरा शेड्यूल और पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा विद इन नो टाइम। म्हणून सांगतोय एवढंच करायचं, जेवढं मी सांगायला लागलोय तेवढंच करा, जास्त करू नका, कमी पण करू नका। आंसर तुमचा आले का मला सांगा, 9.44 या 43, बोथ आर एक्सेप्टेबल? Yes or no? Has everybody got the answer? Please do let me know, yes or no, fast. If you have got this answer, ladies and gentlemen, then this is a very good adjustment which these guys put it in a very big question. Okay, I'll tell you what is the adjustment first. Sir, इसमें हमको नया वैक निकालना है सर, ठीक है? अभी नए वैक के लिए एग्जिस्टिंग सोर्सेस तो एज इट इज आगे आने वाले, बट ये भैया क्या कर रहे हैं, एडिशनल डेट भी इश्यू कर रहे हैं, तो उसमें और एक सोर्स आ जाएगा। तो इसका यही मतलब आपको केडी वापस निकालना पड़ेगा। यस सर, कितना सर इसका? 50 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय इशूइंग 10 years 12% डिबेंचर, इसका ये मतलब है सर 10 साल का बात कर रहे हैं। तो कैन आई से वन थिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट रिडीमेबल, बिकॉज ऊपर वाले में मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया था, इसकी वजह से आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किया, सिर्फ टैक्स माइनस करके बाहर आया। बट इसमें ऐसा नहीं है बॉस, इसमें आपको 10 साल दिया इन लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि आपको रिडम्पशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये पहला आपका पॉइंट। 12% डिबेंचर इशू करे कोई बात नहीं, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर सिमिलर क्लास इज 13%। अरे बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत भारी एडजस्टमेंट है। तुमको याद है कि कौन सा एडजस्टमेंट है? अरे दो सिमिलर कॉम्पिटिटर है। प्लीज एवरीबडी 2 मिनिट पेन खाली ठेवा सगळ्यांनी, एवरीबडी प्लीज पेन डाउन, सगळ्यांनी वर बघा, 2 मिनिट सगळ्यांनी पेन ठेवा खाली, फुल लक्ष दे। दो कॉम्पिटिटर है, ये तुम्हारा कंपनी है ना, तुमको कितना दे रहा है पता है क्या? 50 लाख पैसा उठाया है बाहर से और कितना पैसा दे रहा है उसको? 12% दे रहा है। बट तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो कितना दे रहा है लोगों को? अरे 13% दे रहा है वो। तो जो लोग हैं वो बोलेंगे यार क्यों जाएंगे 12% वाले के पास, इसके पास जाते हैं ना, 13% दे रहा है आपको। अरे भैया अगर 13% दे रहा है तो आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन। कैन आई से वन सिंपल लॉजिक, यू विल हैव टू इश्यू योर डिबेंचर एट डिस्काउंट। कुछ याद आया क्या आपको? ये सेम एडजस्टमेंट था जो बड़े वाले क्वेश्चन में आपण नहीं किया। जब ये लोग ऐसे बोलते हैं कि सिमिलर रिस्क क्लासेस, आपको खूप सोप्या भाषेत हे आहे की जो तुमचा कॉम्पिटिटर आहे तो 13% द्यायला लागलाय, तो 13% दे रहा है, तो भाई साहब तुमको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ेगा ना। ये आपको इस एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है, ये आपको देंगे नहीं कि नहीं ये हिडन, ये आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, असं काही नहीं। हे तुम्हाला कळले का मला सांगा? डिस्काउंट पे निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसका एनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपी। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, हे बघा इथे काढले या लोकांनी, सिन्स yield on similar debenture is 13%, हे बघा मी तेच म्हटलं, तेच बडबडलो आता, कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफर डिबेंचर व्हाट? डिस्काउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बुक मार्क करके रखो, तो शायद से बुक मार्क किया रहेगा तुम्हारे बुक में। ठीक है, अच्छा सर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सो दिस बेसिकली इंटरेस्ट डिवाइड बाय द फैक्टर जो वो लोग दे रहे हैं। क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट तो 12 रुपीज है एंड उनका ये कितना है इंटरेस्ट, उनको कितना फैक्टर दे रहे हैं? तो 13%। कितना आंसर आता है इसका? 12 डिवाइड बाय 13%, इज इट 92.31? लक्ष्य द्या सगळ्यांनी प्लीज, 92.31। सर इसका मतलब क्या? इस प्राइस पे तुमको इश्यू करना पड़ेगा भाई, तुम 100 रुपए पे कर नहीं सकते बिकॉज तुम्हारा कॉम्पिटिटर ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैंने उसके बेसिस पे मुझे डिस्काउंट पे इश्यू किया, तो 92.31 ये प्राइस है। पे अटेंशन, बट पॉइंट ऐसा है, क्वेश्चन में और एक चीज दी है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, तो कम प्लीज कम डाउन ओवर हियर, प्लीज कम डाउन ओवर हियर। फ्लोटेशन कॉस्ट पूरे गलत है, फ्लोटेशन कॉस्ट 100 रुपए के ऊपर, बिकॉज सी लक्ष्य दिया एवरीवन पे अटेंशन, अगर वो लिखते फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस पे अटेंशन ना, तो मैं किसके ऊपर निकालता पता है क्या? मैं
एक मिनट आंसर क्या हो रहा है। तो मैं किसके ऊपर निकालता पता है क्या, मैं इसके ऊपर निकालता प्रोटेक्शन कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। इफ दे वुड हैव मेंशन्ड प्रोटेक्शन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस तो मैं 92.31 पे 2% निकालता, पर कुछ दिया नहीं है, इसकी वजह से मैं ब्लैंक इसके ऊपर निकाल रहा हूँ, फेस वैल्यू के ऊपर, जो 2 रुपए, 100 रुपए के ऊपर 2 टक्का 2 रुपए होता है, ठीक है। तो इसमें 2 रुपए माइनस करूंगा मैं, 92.31 माइनस 2 इज इट 90.31 आपका फाइनल इशू प्राइस। ये तुम्हारे दिमाग में गया कि मुझे कमेंट करके हाँ बताओ 90.31 तुझे डोक्यात गेलं तर नाही, हो का नाही, लवकर सांगा मला प्लीज। हैज 90.31 गॉन इन योर हेड? अगर नहीं गए टेंशन मत लो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इज दिस गॉन इन योर हेड? हे तुम्हाला कळले का 90.31 तुमको दिखेगा ना सिमिलर रिस्क क्लास, ऐसा कुछ भी दिखेगा ना, वो समझ में आने का कि डिस्काउंट वाला बात चालू है। अपन 12% में दे रहे, वो 13% में दे रहा है, तो आपने को इश्यू प्राइस निकालना पड़ेगा और उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी रहेगा, तो फेस वैल्यू के ऊपर माइनस करो और वो 90.31 चकाचक तुमचा आंसर येईल। कळले का नाही मला सांग, हो का नाही, समझा है क्या नहीं है? ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बुक मार्क करके रखो, तुम लिखो वहां पे कि एग्जाम के पहले मला हे वाचून जायचं आहे, डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट लिखो वहां पे, और अभी लिखो नहीं, मैं बाद में लिखता हूँ, बाद में लिखते लिखते पेपर आ जाएगा परसों, ठीक है। चलो 90.31 सर डन, ये हो गया। अभी कुछ नहीं भाई, उसमें कुछ नहीं है, अभी केडी में है ही नहीं कुछ, तर काय राहिली ना त्याच्यात, काय करायचं तुम्हाला सांगा मला, क्या करना है इसमें अभी आपको? सर केडी इज इक्वल टू, अच्छा वो आई 1 माइनस 3 प्लस आरवी माइनस एनपी अपन। अच्छा बाय द वे और एक बात, वो लोग इससे बहुत घबराते हैं, किससे मालूम क्या, वाईटीएम मेथड से, वो यील्ड टू मैच्योरिटी, वो भी लेंगे अपन, बहुत पांचट है वो, लेंगे अपन अभी, ठीक है। आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन आल्सो, विल टेक दैट आल्सो, इज वेरी सिंपल। और वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी आपको आईआरआर ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया मैंने, वो करेंगे अपन, ठीक है, एग्जाम वाला क्वेश्चन। कैन यू प्लीज सॉल्व दिस एंड गिव इट टू मी फास्ट। इंटरेस्ट कितना है, हाउ मच इज द इंटरेस्ट, नवीन इंटरेस्ट 12%, नहीं नया वाला इंटरेस्ट, और 12% उसने यही किया है, 12 1 माइनस 0.35 प्लस आरवी कितना है, कुछ दिया नहीं तो 100 रुपए देंगे ना वो लोग, इफ इट्स नॉट गिवन विल बी 100 bucks। आई थिंक वी हैव रिटन दैट पॉइंट ना व्हेन वी वर डूइंग। सो अगर कुछ दिया नहीं है रिडीमेबल के बारे में, ये 100 रुपए आहे तेच तुम्ही फक्त परत देणार आहात। 100 माइनस 90.31 अपॉन कितने साल का भाई, एंड हाउ मेनी इयर्स, 10 years, 10 years, 10 10 10 10 चला 100 plus 90.31 divided by 2. Give me an answer fast. अरे तन्वी कोडे म्हणते अगेन सांगतो 2 मिनिटं दे, माझं उत्तर दे आधी, आई रिपीट अगेन, फास्ट इसका आंसर दो मुझे, मैं रिपीट करता हूँ, कोई टेंशन मत, लोड मत लो कुछ। चला लवकर एव्हरीबडी, ऋतिका आय वॉन्ट आन्सर, आंबेकर आन्सर पाहिजे लवकर, कुणी हालायचं नाही जागेवर, नागीच सांगायला लागलोय। एनीबडी विथ एन आन्सर प्लीज, एनीबडी विथ एन आन्सर। ते आफा कुठं गायब झालं, गेलं वाटतं, चलो फास्ट आन्सर्स प्लीज, एनीबडी who's got an answer, अप्रॉक्स इतना आना चाहिए, एनीवन getting an answer, let me know you've got an answer, then we go ahead। %9.21 अप्रॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। अरे ऐश्वर्या नायर आप क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे, 7.18 में कितना काट ले उत्तर तो, कहां से निकला, आराम से पूरे कैलकुलेशन पहले क्रॉस चेक करके, बराबर है। एवरीबॉडी एल्स चलो फास्ट, पाटिल मुस्कान गायत्री आई वांट आंसर, चलो जल्दी एवरीवन, ऑल ऑफ यू डोंट जस्ट लुक एंड सिट ओव्हर देयर, ओके। करायचं संपायचं एफएम आपल्याला, एंड करायचं डिस्कशन, डायरेक्ट पेपरच्या आदल्या दिवशी घ्यायचं आहे, एवढं तुम्हाला कॉन्फिडन्स मी देणार आहे, तेच सांगायला लागलोय, एवढं करा फक्त, एवरीवन सॉल्व इट प्लीज। चलो अच्छा, और एक बात भाई, ये तन्वी कोडे, प्लीज पे अटेंशन, तन्वी कोडे, ओके। सो whenever everyone pay attention, whenever this kind of question comes, okay, what kind of question sir, आपको वैक निकालना है, but the yield, कोडे लक्ष दे इकडं, but the yield
but the yield on debentures of similar maturity and risk class is 13%. Whenever they throw in such an adjustment, फर्स्ट थिंग हे बघा, हे लिहून ठेवा तुमच्या बुक मध्ये, हे लिहून ठेवा, दिस सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास, ये लाइन लिख के रखो भाई कहां पे। और एक बात हमेशा याद रखो, ये लाइन तभी आता है जब तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क है। आपका 12% है, उनका 13% है, देखो ना, वो हाई रहने वाला है उनका। तब उस केस में तुम्ही काय करणार, तुमची कंपनी काय करणार, अरे तुम्ही जर 12% द्यायला लागलाय, 13% हे देत आहे, तुम्हाला डिस्काउंट इश्यू का लागणार, अरे माणसं तुमच्याकडे कशी येणार, हाउ विल द पीपल कम एट योर प्लेस, because they will say यार तू 12% दे रहा है, वो दे रहा है 13%, तो मैं वहां पे चाहता हूँ। That is why we need to issue our debentures at a discount। तो कैसे निकालना है, सिमिलर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट जो है, अपना वाला इंटरेस्ट, दैट इज दिस, that is this 12% का मतलब 12 रुपीज 100 के ऊपर, एंड डिवाइड बाय द रिस्क क्लास फैक्टर जो उनका है, वो कितना है उनका 13%। तो मैंने क्या किया वहां पे 12 रुपए डिवाइड बाय 13% किया था, ऐसा किया था मैंने वहां पे, नीचे आंसर आया था, और उसमें से मैंने क्या माइनस किया था, प्रोटेक्शन कॉस्ट जो भी निकाला था मैंने फेस वैल्यू के ऊपर 2 रुपए। हैव यू गॉट दिस, यस और नो, हैव यू गॉट दिस, यस और नो, समझ में आया क्या, ये लिखो वहां पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अंडू पंडू क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, दे विल आस्क, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन इट्स एक्सपेक्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशंस, ओके चलो। अच्छा बाय द वे, इज द क्वेश्चन ओवर, एब्सोल्युटली नॉट, क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, आपने सिर्फ केडी निकाला है, सिर्फ क्या निकाला है आपने, केडी निकाला है, ठीक है सर। इसमें और एक है, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज 20, कोई बात नहीं, अभी कितना था 15 रुपीज था, अभी 20 रुपए हो गए, कोई बात नहीं, यही वापस निकालना पड़ेगा, एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज, ग्रोथ रेट कितना था 5%, अभी भी 5% ही है, but the price of equity will fall to 250, can you please compute the new KE and give it to me। अब new KE निकाल सकते हैं, KE is equal to 20 divided by 250 plus 0.05, can you give me an answer please everyone, can you give me an answer, चला लवकर लवकर लवकर, 13% क्या आपका आंसर आया क्या, देखो नया वाला की क्या आपका आंसर 13% आया क्या, चेक करेंगे, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं, जो दिया वही दिया, फॉर्मूला में डाला है, डिविडेंड का वैल्यू चेंज हुआ है तो वो लिख दिया, प्राइस ड्रॉप हो गया है तो वो P0 में अपडेट कर दिया मैंने, और जो ग्रोथ है वो अनचेंज है, तो आई तसर 0.05 लिखना है, मी 13% आपका आंसर देना चाहिए, यस और नो, इज योर आंसर 13% व्हिच शुड मैच विद द, ये यहाँ पे हो गया, ये आपका मैच होना चाहिए आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ, ठीक है 13%, ओके। नाउ आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग दिस वी कैन डू आफ्टर, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, ये सब अमाउंट सेम रहने वाले, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होगा उसमें, ये लाइन कौन सा ऐड होगा भाई साहब, जो एक्स्ट्रा पैसा उठाया अपन ने ये वाला, और जो तुमने नया वाला जो ये किया, ये आपका नया वाला वैक रहने वाला है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी यस और नो विद दिस, एवरीबॉडी यस और नो विद दिस, समबडी वेरी गुड, गायत्री वेरी गुड, ठीक है चलो, अंबिकर भाई एकदम चला चला चला, okay now I know we have done this question, but I don't know, I have a very gut feeling that this question will pop up again in the examination, very important question, okay, and which I think we should have a hands on this, okay। I know we have done this, but एक बार वापस करेंगे अपन, एक थोड़ा सा आपका वो रिवीजन हो जाएगा, it might be there in your book only, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए ये फ्रेश है, please don't run away by seeing the question, the one who are doing for the first time, chalo, can you start reading the question, it's a beautiful question and you need to have your hands on this, तुम्हाला ह्याचा आन्सर माहित पाहिजे, एग्जाम मध्ये अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पॉप अप हो जाता है ना, तो तुम्हीच संपला देतं, कळणारच ना काय करायचं, तो उससे अच्छा भाई एक बार रिवाइज करके जाओ, इजी है, ठीक है। कैन यू स्टार्ट विद दिस, कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34,50,000, सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी, डोंट राइट मी इन द कमेंट ईबीआईटी से अर्थ क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड हैज एम्प्लॉयड डेट व्हिच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 7.5 लाख, भाई साहब इंटरेस्ट का पर्सन दिया नहीं उन लोगों ने, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया, जो अपन निकालते ना, जो पूरा वैल्यू इनटू समथिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दे के रखा है ऑलरेडी। The firm has existing cost of equity and cost of debt of 16.8%, तो भाई साहब बहुत सिंपल हो गया ना, अगर मेरे पास केडी है और मेरे पास इंटरेस्ट भी है, कैन आई कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डेट, कैन आई कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डेट, बहुत सिंपल है, 7.5 लाख डिवाइड बाय कितना है वो 8%, 93,75,000, that should be the value of debt। I hope this is very clear। The firm has a new proposal before it
which requires funds of 75 lakhs and is expected to bring an additional profit of 14,25,000। वो क्या बात कर रहे हैं कि भाई साहब एक नया प्रपोजल है उसके सामने जिनके लिए उनको 75 lakhs का पैसा चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम, पर जब ये पैसा डालेंगे 75 lakhs उनको प्रॉफिट भी होगा ऑब्वियसली। और कितना प्रॉफिट होगा? 14,25,000। ये नए प्रपोजल के बारे में बात कर रहा हूँ। टू फाइनेंस द प्रपोजल, अभी 75 लाख भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, कहां से लेके आएंगे? तो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमको एडिशनल डेट इश्यू करना पड़ेगा 75 लाख का। कितने तक के भी इश्यू करना पड़ेगा सर? 8% पे। और इस बार नए प्रपोजल में वो इक्विटी इश्यू नहीं करेंगे, वो क्या बात करते हैं, हम लोग डेट इश्यू करेंगे। नो प्रॉब्लम, चलेगा। अज्यूम नो टैक्स, ठीक है कोई बात नहीं। तो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैक बिफोर एनी आफ्टर, बिफोर एनी आफ्टर। बाप क्वेश्चन है, one of my favorite questions in WACC. We have already done it, but we will do it again. So can we start करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही फॉर्मूला इसमें, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप ये दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सबसे पहले अपन ये वाला करेंगे। ओके, बिफोर द प्रपोजल वाला। ओके, बिफोर द प्रपोजल वाला। ओके सर, एक मिनट सर, बिफोर द प्रपोजल में इन लोगों ने ऑलरेडी आपको केई दे के रखा है, तो केई आपके पास ऑलरेडी है। ओके नो प्रॉब्लम। सर आपके पास केडी भी ऑलरेडी है। ओके, ये भी अब मेरे सामने ही है। अच्छा, आपको प्रॉफिट भी देके रखा है उन लोगों ने, तो मुझे एक चीज बताएंगे आप प्लीज। आई वॉन्ट टू थिंग्स फ्रॉम यू। वन तो आई हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ डेट एंड आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, वैल्यू ऑफ डेट तो मैंने खुद ही आपको बताया। सो वैल्यू ऑफ डेट, पे अटेंशन प्लीज एवरीवन। ये बिफोर प्रपोजल वाला है, वैल्यू ऑफ डेट। इवन यू कैन सॉल्व इट विद मी। कैसे करेंगे अपन? इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय केडी, डिवाइड बाय केडी कितना आता है सर? 7.5 लाख है ये, डिवाइडेड बाय कितना केडी हो? केडी उड़ गेला, केडी उड़ गेला, उड़ गेला केडी। हाँ 8%, 8%, 8%। चला चला लवकर, किती येते उत्तर? 7.5 लाख डिवाइड बाय 8% कितना आता है? 93,75,000। एवरीबडी ओके? डोंट ओपन द बुक पीछे, अरे ये तो सॉल्व ही किया कुछ नहीं है, अभी कितना करूंगा मैं, बराबर है सर, तो बराबर सॉल्व करें, कुछ मत करो, सॉल्व करो मेरे साथ वापस, मला माहिती है तुम्ही कसा आहे सगळे। हो गया वैल्यू ऑफ डेट आपका? अच्छा, अभी बॉयज एंड गर्ल्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। वैल्यू ऑफ क्या निकालना है भाई साहब? इक्विटी निकालना। अच्छा, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते समय, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते समय आपके पास दो ही इंफॉर्मेशन है, एक तो के आपके पास है और एक तो इंटरेस्ट है। अच्छा, मुझे एक काम करेंगे, एक बताएंगे, ये जो मैंने आपको बताया ईबीआईटी, कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग? सुनो ये पब्लिक ध्यान दो, सेकेंडरी लक्ष्य है, एवरीवन पे अटेंशन, everybody pay attention please. Sir, when I was computing value of debt, so I divided interest by KD, makes sense. But when I'm going to value of equity, I will not take interest, obviously it doesn't make any sense over there. So what I will replace it with? Sir, dividend. Sir, इनको interest दिया जाता है, इनको dividend दिया जाता है सर। अच्छा, एक काम करेंगे, इक्विटी वालों को आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, इक्विटी वालों को आपको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, सब फ्लक्चुएटिंग। सबके मतलब जितना भी पैसा बांटना है सबको बांटो, आप टैक्स माइनस करो, आप प्रेफरेंस वालों को पैसा दो, सबको दो, और जो लास्ट में बचेगा वो आप किसको दोगे? इक्विटी वालों को। यही लॉजिक आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, अब इसमें टैक्स तो नहीं है तो उसको कल्टी मारो, तो क्या है? इंटरेस्ट है आपके पास, तो इंटरेस्ट माइनस करो, और जो बचेगा वो आप इनको डिविडेंड के तौर पे दोगे, और उनसे ही आपको उसका वैल्यू निकालना है। सो कैन आई से वन थिंग, जो तुम्हारा झिपला से नीचे क्या बड़बड़ आता, इंटरेस्ट डिवाइड बाय केडी उसका फॉर्मूला था, इसका क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी का ध्यान देंगे सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट होल डिवाइडेड बाय के। अरे वो केडी डिवाइड केले तर के ने डिवाइड करा, किती उत्तर ते मला सांगा सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 34,50,000, 34,50,000 माइनस इंटरेस्ट कितना मुझे बताओ? 7.5 लाख, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय के कितना मुझे बताओ? के दिया ना उन लोगों ने, की 16%, 16%। Can you please tell me what is the answer, boys and girls? Can you please tell me what is the answer, everyone? Fast. 34,50,000 minus 7.5 lakh divided by 16%. Is it 1,68 lakh? कितने हैं? 75,000। क्या आपका ये आंसर आया है क्या? Yes or no? With proper clarity. With proper clarity. Yes or no? क्या आपका आंसर ये आया है क्या? 1,68,75,000। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। ये अगर क्वेश्चन आया नाम निकालोगे मेरा वहां पे एग्जाम हॉल में।
म्हणजे आलात तर ठीक आहे. चला लवकर आले काय? 1,68,75,000 एवरीवन, येस और नो? येस और नो सर, एक नंबर आ गया. तर काय करायचं आता? झालं की आता पुढं ऐका. अपन अभी भी बिफोर द प्रपोजल ही कर रहे हैं, वी हैव नॉट गॉन आफ्टर द प्रपोजल. ठीक है सर, ये आपका इंस्टीट्यूट का आंसर है जो आई थिंक अपना मैच हो गया रहेगा. ये वाला भी मैच हो गया है और ये वाला भी मैच हो गया. ठीक है अच्छा, अभी इसका अपने को वैक निकालना है. ओके नाउ वैक विल बी वेरी सिंपल. ओके वी नॉट गोइंग टू वैक एंड ऑल दैट. नाउ सी, इक्विटी का अमाउंट सिंपल है, डेट का तो निकाला ऑलरेडी. टोटल मारो, वेट निकालो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, ये वैक आराम से आ जाएगा 13.15. बट the main point of discussion in this question is after the proposal scene क्या होने वाला. अरे बॉस मला एक सांगा रे, आफ्टर द प्रपोजल यू टेल मी वन थिंग, दीज गाइज आर टेलिंग कि हम क्या करने वाले, मतलब हम टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एडिशनल डेट एट 8%. ओके नो प्रॉब्लम. तो 75 लाख के ऊपर ये 8% का क्या करने वाले, इंटरेस्ट पे करने वाले. तो माय पॉइंट इज व्हाट, कि नए वाले में कई चेंज होगा क्या? हाँ सर ऑब्वियसली चेंज होगा. चेंज इसलिए होगा बिकॉज सी, अब मुझे एक काम करो, नए वाले में अपने को के ही निकालना है. लक्ष्य है प्लीज. ओल्ड वाले प्रपोजल में यू हैड केडी एंड के, न्यू वाले में केडी ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो दिया उन लोगों ने 8%. अरे बस तुम्हारे पास के ही नहीं है. अरे सर के का क्या जरूरत है, वो तो बता रहे कि वो नया इक्विटी नहीं. अरे भाई साहब, बट आपको एग्जिस्टिंग सोर्स तो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, तो उसका कई चेंज हो गया रहेगा अभी, तो आपको नया कई निकालना पड़ेगा. और अगर अगर आप ध्यान है आपका, अगर आपको ये वाला फॉर्म्युला पता है जो अभी आपको 2 मिनट पहले किया, तुम्हाला ह्याच्यामधूनच केई काढून द्यायचं आहे. मला ह्याच्यामधून तुम्हाला मला केई काढून द्यायचं आहे. वो कैसा निकालने का वो तुम सोचो 2 मिनट. हाउ विल यू डू इट इन दिस? अच्छा सबसे पहले कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, एक मिनट, केई अंडर न्यू प्रपोजल. ठीक है, टेल मी वन थिंग, ये आपका वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट. अरे बाबा यू टेल मी वन थिंग, अभी आप जब नया वाला फंड रेस करोगे ना 75 लाख, उसके वजह से तुमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है. वो लिखा है उन लोगों ने 14,25,000. अरे बट जब प्रॉफिट होगा उसमें से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, बिकॉज वो लोग क्या बात कर रहे हैं, 75 लाख के ऊपर 8% का इंटरेस्ट है. तो कैन आई से वन थिंग, आई एड ऑल द प्रॉफिट एंड आई माइनस ऑल द इंटरेस्ट. सिंपल. अपन क्या करेंगे भाई साहब, कितना प्रॉफिट है मुझे बताओ सर. ओल्ड वाला प्रॉफिट कितना था, ओल्ड वाला प्रॉफिट, ओल्ड वाला प्रॉफिट 34,50,000. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 34,50,000 प्लस नया प्रॉफिट कितना हो रहा है, नया प्रॉफिट कितना हो रहा है 14,25,000. 14,25,000 माइनस इंटरेस्ट ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड कितना था सर, ओल्ड था 7.5 लाख रुपए. और नया कितना होगा, कंफ्यूज मत हो जाओ, नया वाला कितना है, तो 75 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, वो भी डेट से होने वाला है. तो 75 लाख इंटू कितना परसेंट है, 8%. ये आपका हो गया 6 लाख का नया वाला इंटरेस्ट. हो गया खत्म. काय उरले सांगा मला ह्याच्यात, डिवाइड बाय के. अच्छा वैल्यू सर कहां से लेके आएंगे, तो वैल्यू ऑलरेडी जो ओल्ड है वही है ना, बिकॉज वो चेंज होने वाला नहीं है वैल्यू. वैल्यू कितना था आपका 1,68,75,000. तो सेम ही रहेगा यहाँ पे 1,68,75,000. ये सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर कितना आ रहा है. 13,50,000. 35 लाख किती हे 25,000 डिवाइड बाय के. बघा तुमचं उत्तर किती आले. टेल मी व्हॉट इज द आन्सर, टेल मी व्हॉट इज द आन्सर बॉस. एवरीवन व्हाट, हाउ मच इज अ न्यू के? 20.9 आ रहा है क्या अप्रोक्स, 20.9 एवरीवन, इज इट 20.9? ये आपका आंसर मैच हो रहा है क्या इंस्टीट्यूट के साथ? 20.9 आपका आंसर आ रहा है क्या एवरीवन? इज द आंसर 20.9% अप्रोक्स, 20 पॉइंट ऐसा 20.888 आता है, तो 20.9 इज द राउंड ऑफ आंसर. हैव यू गॉट दिस, यस और नो?
The point in this is whenever Kalyanam question comes, if this kind of question comes, make sure कि you are understanding what to compute. समझ में आ रहा है कि आपको? देखो ना भाई साहब, पे अटेंशन है, होगा ना? एक दो मिनट, I'll just give you an overview of this question. Before proposal and this was after proposal. This was after proposal. Okay. In before proposal आपके पास KE था, आपके पास KD था. नए वाले में आपके पास KD था बट KE आपके पास नहीं था. दिस यू डिड नॉट हैव. ये आपको निकालना था, ये फाइंड आउट करना था, वही निकाला. और जो KE का वैल्यू था ना, वो तो कुछ किया नहीं लोगों ने नया, वो तो पूरा डेटा इश्यू किया है. जो ओल्ड आपका वैल्यू था इक्विटी का, वही आपने कैरी फॉरवर्ड किया और उसी फॉर्मूले से तुमने KE निकाला. This is the entire flow of this sum, and which I think is very very important for cost of capital. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? Everybody done? Yes no, yes no. चला चला. ठीक है, ओके चलो. Now this is more than enough for cost of capital. तब से cost of capital के लिए. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर विल गो फॉर एंड दैट इज योर डिविडेंड पॉलिसी. दैट इज डिविडेंड पॉलिसी. जितने भी मॉडल सब करेंगे, ट्रस्ट में रैपिड रिवीजन करेंगे. यू विल लव दिस एंड वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइंड अप फॉर यू. ओके, लक्ष्य दे सेकंड. ठीक है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. डिविडेंड पॉलिसी. नाउ cost of capital, dividend policy, they go hand in hand. Okay, same abbreviation there. In dividend policy, boss, you already know this. Everyone pay attention please. अपन को ये भी करने वाले ग्राम एंड डॉट. मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं अभी के अभी. Everybody needs to solve it with me. Everyone pay attention. Everyone then active yes or no. M and M. Pay attention. Pay attention. Next. अर्ध्या तासामध्ये संपवतो चॅप्टर विथ एव्हरीथिंग. लक्ष द्या फक्त. गॉर्डन, लिटनर एंड ग्राहम एंड डॉड. पे अटेंशन. उसको आपण बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. काही एवढा विषय नाही आहे, सोपा आहे. एकदा काहीतरी पडलेलं वो ग्राम एंड डॉड. मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको मेरे सामने सॉल्व करना है. ठीक है, चलो. बट जो आपने नॉर्मल बेसिक वाले वो पहले उसमें से अपन पेज भी करेंगे थोड़ा सा. क्वेश्चंस कौन से आते थे वी गो. ओके, एम एंड एम, वॉल्टर, गॉर्डन, लिटनर एंड ग्राम एंड डॉड. सर प्लीज लक्ष्य दें. एवरीवन फास्ट में रिवाइज करेंगे. आई आल्सो टेल यू कि व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. एम एंड एम, भाई साहब ने क्या बोला था? दैट डिविडेंड is not relevant for the wealth of shareholder. Please pay attention everyone. Walter ने क्या बोला? Dividend is relevant for the wealth of shareholder. Pay attention. Gordon's discovered growth. Littner used something called as adjustment factor. मैं सांगतो तुम्हाला, it's a very technical formula, मतलब straightforward formula है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है उसमें. और ग्राहम एंड डोड used something called as multiplier. इसने मल्टीप्लायर का यूज किया था, वो आपको बता दूंगा. फॉर्मूला है अभी. ठीक है, एक एक चीज करेंगे, आपको ध्यान देना है. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज दैट इज एम एंड एम. मोदी, गिलानी एंड मिलर. आपको ध्यान देना है. मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कौन से टाइप के क्वेश्चन डालेंगे. ओके, एम एंड एम में सबसे पहले इसमें इन सब में आपको प्राइसेस पूछेंगे. प्लीज कंप्यूट प्राइस अंडर एम एंड एम. प्लीज कंप्यूट प्राइस अंडर वॉल्टर. प्लीज कंप्यूट प्राइस अंडर गॉर्डन. बट लिटनर में आपको वो नहीं पूछेंगे. लिटनर में ही फोकस्ड ऑन डिविडेंड. उसमें डिविडेंड पूछेंगे, आपको D1 पूछेंगे. उसमें ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डिविडेंड विचारणार. इसमें आपको डिविडेंड पूछेंगे, भाई साहब प्राइस नहीं पूछेंगे इसमें. अच्छा, ग्राम एंड डॉट में क्या पूछेंगे? इसमें वापस आपको प्राइस पूछेंगे. क्या पूछेंगे? प्राइस. बहुत सिंपल है, वो बाद में करेंगे. वी लीव आउट दैट इन द एंड. बट द फर्स्ट 3 मॉडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो दैट थिंग. ओके, एम एंड एम. आई होप यू कैन रिकलेक्ट द फॉर्मूला. क्लास में मैंने आपको ये भी समझाया था कि उसका फॉर्मूला अराइव कैसे होता है, उसमें आपने को जानना नहीं है. बट टेल मी वेरी फ्रैंकली, डू यू रिमेंबर एम एंड एम फॉर्मूला? डू यू रिमेंबर एम एंड एम फॉर्मूला? आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू राइट डाउन एम एंड एम फॉर्मूला. लिहून दाखवा तुमच्या पुस्तकात. P1 is equal to P0 KE plus 1 minus D1. Have you remembered the formula, everybody? Yes or no? Please, have you written down the formula in your book? Okay. Now, sir, M and M में sir which type of questions will come? Sir, this is so very simple sir, ये तो हम कर लेंगे. But एक क्वेश्चन है, सुनो. प्राइस तो तुम कंप्यूट कर पाओगे, बहुत सिंपल है.
इसमें आपको वैल्यू पूछेंगे, ओके, इसमें आपको क्या पूछेंगे, वैल्यू पूछेंगे, एंड अंडर बोथ द ऑप्शंस डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड नॉट पेड द वैल्यू शुड बी सेम, बिकॉज ये भाई साहब ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है ना कि डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट फॉर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, सो यू नीड टू शो इट टू देम। और डेल्टा वाला आपका फॉर्मूला है, डेल्टा का मतलब है और चेंजेस वाला, करेंगे अपन, एक 2 सेकंड दो मुझे। इसके बाद इसमें और एक, तो 3 क्वेश्चंस कम इन दिस, 3 क्वेश्चंस कम इन दिस। नंबर 1 प्राइस निकालना है, इजी है बहुत। सेकंड आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं, आई होप यू कैन रिकलेक्ट दैट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, कि मतलब फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट कि नया इन्वेस्टमेंट है, आपके जेब में कितना पैसा है, डिविडेंड पे करना है कि नहीं, जो बैलेंस अमाउंट है उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करने पड़ेंगे, वही क्वेश्चन अभी लेने वाला हूं 1 मिनट के अंदर। और लास्ट में आपको निकालना है वैल्यू वाला, वैल्यू वाला। एवरीबॉडी ओके नाउ? चलो पे अटेंशन हो गया पूरे अलग। हाँ चलो, तो पहला प्रश्न है, कैन वी स्टार्ट विद दिस, आरटीपी वाले क्वेश्चन है, आपको करने सॉल्व, ठीक है। MCO Limited has a paid up share capital of 10 lakhs, face value 10, current market price is 20. The board of directors they have an agenda of paying how much dividend of 25% per shareholder. Company expects income of 5,20,000. Company also plans for capex for a cost of 7.5 lakh which can be financed through retained earnings and issue of new equity share. कंपनी इज डिसाइडिंग कि कितना मिलना मांगता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 15% मिलना चाहिए। M&M का अप्रोच यूज करेंगे, determine the value of the company when it does not pay dividend and when it pays dividend. I want everybody to be active, everybody। चलो M&M का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, ओके। सबसे पहले एक काम करेंगे, स्टेप नंबर 1 विल बी व्हाट, स्टेप नंबर 1 विल बी व्हाट, स्टेप नंबर 1 विल बी व्हाट, टू कंप्यूट द प्राइस। प्राइस 2 हिस्से में बटेंगे आपके, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड नॉट पेड। अच्छा चलो एक काम आपके सामने, डिविडेंड पेड का बताएंगे मुझे कितना आता है सर। P1 इज इक्वल टू P0 KE प्लस 1 माइनस D1, KE प्लस 1 माइनस D1, ओके। चलो कितना है सर आपके स्क्रीन के सामने P0, प्लीज व्हाट इज आंसर सर। करंट मार्केट 20 रुपए है, व्हाट इज KE, कितना डिजायर्ड है 15% है, ये हो गया 0.15 प्लस 1 माइनस D1, D1 कितना डिविडेंड पे कर दिया, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 25%, 10 रुपए के ऊपर 25% आपका होता है 2.5, ये होता है 2.5। कैन प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर, कैन प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर सर। इज इट 20.5, इज इट 20.5 एवरीवन, यस और नो? क्या आपका आंसर 20.5 आया है क्या? Is your answer 20.5 everyone, yes or no? Is your answer 20.5? Give me a yes or no first. क्या आपका आंसर 20.5 आया है क्या everyone? 20.5 क्या आपका आंसर आया है क्या everyone first? Give me yes or no, then I will go ahead. Dividend paid and dividend not paid. Dividend not paid का आंसर निकालना है, 20.5 is answer, very good. So next P1 is equal to P0 KE plus 1 minus D1, okay कितना है सर 20.15 प्लस 1 माइनस 0, हाउ मच इज द आंसर? बहुत सिंपल है ये, इज इट 23, इज इट 23, इज इट 23, ओके आराम से करेंगे, सबका आंसर आ गया 23 सर। यस वी हैव गॉट 23 एज द आंसर, वी हैव गॉट 23 एज द आंसर, इट इज वेरी सिंपल, वी हैव ऑलरेडी डन दिस टन्स ऑफ टाइम इन द क्लासेस, ओके। अच्छा और एक बात लक्ष्य सेकंड प्लीज, प्राइस निकाला, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे नंबर ऑफ शेयर निकाल के दो, और उसका लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इजी लॉजिक बताया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा सबसे पहले सेकंड लक्ष्य दें प्लीज, सेकंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अच्छा पहले लॉजिक समझो भाई, अच्छा कितना पैसा इनको डालना है, कंपनी इज प्लानिंग फॉर कैपेक्स ऑफ 7.5 लाख, लक्ष्य 7.5 लाख रुपए डालना है, ओके सर। अभी कितना पैसा है जेब में, 5,20,000 जेब में है, 7.5 लाख रुपए का खर्चा करना है, 5,20,000 उसके पॉकेट में है। एक ही क्वेश्चन है कि बैलेंस अमाउंट के लिए वो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, तो दैट इज क्वेश्चन, बिकॉज जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे देन ओनली तुम जा सकते हो वैल्यू निकालने के ऊपर, जब नंबर ऑफ शेयर्स तुमको मिलेंगे देन ओनली यू कैन गो एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्म। Can you please give me the number of shares to be issued? Can you please give me number of shares to be issued? तो बहुत ही सिंपल है ये, अपन क्या कर सकते हैं, 7.5 लाख में से ये माइनस करना, ये गलती आप
कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज 5,20,000 में से तुमको अपनी डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड कितना पे करना है? 25% टू शेयर होल्डर। कितना है भाई साहब? 10 लाख के ऊपर 25%, कहने से 2,50,000 का डिविडेंड है। 2,50,000 का डिविडेंड। एवरीबडी गॉट दिस डिविडेंड अमाउंट? हैज एवरीबडी गॉट डिविडेंड अमाउंट? सर इसका ये मतलब है, 7.5 लाख रुपए में से जब मैं माइनस करूंगा पैसा, तो इनकम में से, इनकम कितना है इसका? 5,20,000 इनकम है, पर उसमें से सबसे पहले डिविडेंड को कट जाएगा ना, डिविडेंड को पे करना पड़ेगा आपको। कितना पे करना पड़ेगा? 2.5 लाख। तो कितना बचा आपके जेब में? सर जेब में सिर्फ और सिर्फ ओनली 2,70,000 ही बचा है। ओनली 2,70,000। कितना बैलेंस अमाउंट है सर? बैलेंस अमाउंट बचता है 4,80,000। दिस इज योर बैलेंस अमाउंट। एवरीबडी हैज गॉट 4,80,000 इन द बुक। गिव मी यस और नो फास्ट। Give me a yes or no. Have you got 4,80,000 in the book? इतना अमाउंट तुमको उठाना है पब्लिक से, इतना अमाउंट आपको आपके पब्लिक से उठाना है। सर नंबर ऑफ शेयर, ये आपका ये हो गया स्टेप, ये हो गया सेकंड। 4,80,000 डिवाइडेड बाय कितना, कितना प्राइस था ऊपर? 20.5। 20.5 हाउ मच इज द आंसर? कितना था ये? 4 लाख डिवाइड बाय 20.5। 2,3,4,1 आणि 5 राउंड ऑफ किया है मैंने। इतने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। हैव यू गॉट दिस आंसर? हैव यू गॉट दिस आंसर? उतना ले गए। हैव यू गॉट द आंसर? 23,415। 23,415 सबका आंसर आया है क्या? यस और नो? अरे त्यांचं पण ते चाललंय, जिंदगी में पहले बार आईसी और अपना ये मैच हो गया। 23,415। 23,415। ओके अच्छा, ये अपने इस बार का निकाला है, तो अपने को वो वाला भी चाहिए कि अगर डिविडेंड नॉट पेड है, नॉट पेड है तो। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, चलो एवरीवन। सर अगर नॉट पेड है, एक मिनट, अगर नॉट पेड है तो अपना काम बहुत इजी होता है सर। 7.5 लाख जो आपको खर्चा करना है बाहर, माइनस डायरेक्टली योर नेट इनकम। हमारे नेट इनकम 5 लाख, कहाँ पे गया वो क्वेश्चन? क्या है? 5,20,000 सर, 5,20,000, 5,20,000। okay, so this is the balance amount which you need to put it from the, like pull it from the public. कितना है? 7.5 लाख, 7,50,000 माइनस 5,20,000 कितना आता है सर? 2,30,000 ही अमाउंट है जो बैलेंस आपने को रेज करना है पब्लिक से। ओके, उसके लिए कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे? तो डिवाइड बाय जो आपका प्राइस होगा वो ऊपर रहेगा, ये वाला रहेगा आपका 23 रुपया। सो कितना रहेगा सर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, number of shares to be issued, so 2,30,000 divided by 23। चलो कितना आता है सर? 10,000 shares। 10,000 shares। Has everybody got this answer? Give me a yes or no please। 10,000 shares का आपका आंसर आ गया क्या? Is your answer 10,000 share? Is your answer 10,000 shares? Very good, very good। अम्बेडकर गायत्री आपके आंसर राइट है। दे बाकी का पब्लिक क्या कर रहा है? चलो रेस्ट। हैव यू गॉट दिस आंसर्स? हैज एवरीबॉडी गॉट दिस आंसर्स? तुमको 2 दिन में तोडणे काय एफएम काय ऐकायचं नाही। आय डोंट वांट एनी एक्सक्यूज ओनली। अरे इथं गेलेलो, एक्झाम आहे कॉलेजची आणि हे आहे गाव आहे की डोकं दुखा लागले, ते सगळं ठेवा तुम्ही तुमच्याकडे। एफएम 2 दिवसात संपवायचा आहे, ठीक है? आज के रिवीजन के बाद, आज कल और टेक परसों ऑल्सो 2 दिन और लो तुम। आज का दिन छोड़ के बोल रहा हूं मैं तुमको, एफएम खत्म करने का है। डोंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, दिस आर वेरी सिंपल सब्जेक्ट। 50 मार्क का है ये। जितने भी वैरायटी सब कर रहे हैं अपन, यू नीड टू रैप अप एफएम। जस्ट पिक इट अप व्हेन योर एग्जाम्स आर देयर, आपका पूरा ट्रैक कट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर व्हिच वी आर गोइंग टू टेक। ओके, निकाल के मला सांगा सर, ये हो गया। एंड ladies and gentlemen, now we come down the most important part, and that is what? Value। लक्ष द्या प्लीज। कुठे गेलं? चलो पे अटेंशन प्लीज। सो ये n प्लस आपका डेल्टा म्हणजे काय? नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपके ओरिजिनल नंबर, लक्ष द्या सगळ्यांनी, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जो शेयर तुम इश्यू कर रहे हो इनटू योर प्राइस माइनस योर इन्वेस्टमेंट जो खर्चा करना है, प्लस आपका प्रॉफिट, ई मतलब प्रॉफिट, वो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई। एक बार वापस प्लीज राइट दिस डाउन फॉर्मूला। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर दैट इज n प्लस जो शेयर तुमने इश्यू किए वो तुम प्लस करेंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या करेंगे? प्राइस, जो फर्स्ट स्टेप तुमने निकाला है, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग्स म्हणजे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 1 प्लस के। I hope you have all the information. Please put it and please give me an answer.
एंड मेक श्योर कि दोनों साइड में तुम्हारा आंसर मोर और लेस सेम आ रहा है, सेम आना। चला सर, ओरिजिनल शेयर कितने थे सर, क्वेश्चन लिखाना पड़ेगा आपको। सर सर 10 लाख रुपए लिखा गया यहाँ पे, हाँ 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितने थे 1 लाख, 1 लाख ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर प्लस कितने इशू किए तुमने 23,415, हाउ मच वाज द प्राइस इनटू कितना किया, प्राइस कितना था 20.5, 20.5 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना करना है 7.5 लाख प्लस प्रॉफिट कितना था, कुठे गेलं ते 5,20,000, चला 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 लवकर 5,20,000 अपॉन 1 plus KE, 1 plus KE, 1 plus 0.15. I want the answer fast. 1 plus 0.15. आंसर कितना आ रहा है चेक करेंगे प्लीज। I want the answer रुपीज में। Please do it fast everyone. I want the answers fast. It's very simple. Make sure और ये क्वेश्चन पूछेंगे, they will ask you this question in the examination कि please compute the value of this firm under M&M. प्राइस निकालना है, इशू ऑफ शेयर्स जो डेल्टा बोलते हैं अपन उसको, लास्ट आपको प्राइस ये वैल्यू निकालना है जो बहुत सिंपल है, निकालेंगे आंसर कितना आ रहा है चलो I want the answers fast everybody. In both the scenarios same answer should come. In both the scenarios same answer should come. In both the scenarios same answer should come. Fast. चला 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 फास्ट। अंबेकर क्या बोल रही है, अर्निंग शुड बी 2 लाख। ओ अरे चित्रा अंबेकर, ओ टेलर स्विफ्ट, लक्ष्य दिया टेलर स्विफ्ट। द पॉइंट इज वेन एवर यू आर computing number of shares to be issued, then we do that thing. What सर इनकम मतलब मी काय माइनस करणार है डिविडेंड, तो बचता 2,70,000 तो नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने के लिए यहाँ पे तुमको ग्रॉस अमाउंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डालना है, इतने नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको, जब नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रहा हूं, जब निकालना मुझे, तब मुझे बैलेंस अमाउंट निकालना होता है, और बैलेंस अमाउंट निकालने के लिए मुझे वो माइनस करना पड़ता है डिविडेंड, और दैट इज व्हाई वो 2,70,000 के ऊपर अमाउंट आया था। पर इसमें 2,70,000 नहीं आएगा, इसमें जो आपके क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा, दैट इज 520,000। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू। वो का नहीं सांग आदि मला सबको क्लियर है क्या, वो पहले बताओ, अगर उसको डाउट है सबको डाउट वही आया रहेगा फिर जल्दी। इज दिस क्लियर एवरीवन, फास्ट, इज दिस क्लियर? I want the answer। साइड का भी आंसर सेम में आना चाहिए फास्ट। मेरा आंसर कितना आ रहा है पता है कितना आ रहा है, 20,06,100 आ रहा है अप्रोक्स। आर यू गेटिंग 20 lakhs अप्रोक्स? लैक्स नहीं, 1 2 3 4 5 20 लाख, ये 20 लगाया गया। साइड में भी निकाल के दो मुझे, साइड में भी निकाल के दो, फॉर्मूला लिखो n प्लस डेल्टा n प्राइस माइनस आई प्लस ई होल डिवाइड बाय 1 प्लस के ई, खत्म खत्म, कुछ नहीं इसमें, नथिंग इज देयर। दिस क्वेश्चन कम्स विथ अ बोनस क्वेश्चन, बोनस काही नाही याच्यामध्ये, नथिंग इज देयर। सर 1 लाख ये ओरिजिनल शेयर्स थे, तो तुमने शेयर निकाले डेल्टा वाले, सर 10,000 जिसको चेंज बोलते हैं अपन, इनटू P1 कितना था, इसका प्राइस कितना है 23, कम ऑन 23 माइनस दिस विल रिमेन द सेम 7.5 लाख प्लस 5,20,000 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, more or less the amount should match, it should match properly once, let me check, 23 minus 7.5 lakh plus 5,20,000 divided by 1.15 and the answer is bang on target। 20 लाख रुपए आपका आंसर आना चाहिए। चेक करेंगे आपके कैलसी के ऊपर कि 20 लाख आंसर आ रहा है क्या। अगर 20 लाख आपके एग्जामिनेशन हॉल में आंसर नहीं है तो समझ लेंगे तुमने कहां पर तो मार्किंग खाया है ऊपर नीचे, ठीक है। दोनों भी आंसर 20 लाख रुपए आने चाहिए। हैव यू गॉट दिस आंसर, यस और नो? हैव यू गॉट दिस 20 lakhs, yes or no? गिव मी यस और नो फास्ट। या दोनों में 20 लाख आया क्या? तो 20 लाख क्या आना मांगता, वही तो उसका मकसद था किसका, M&M का। उसने वही तो बोला था कि डिविडेंड इज इररिलेवेंट फॉर द वर्थ ऑफ शेयर, ये इररिलेवेंट ही है बिकॉज़ दोनों में वैल्यू क्या सेम आ रहे हैं। हैज एवरीबॉडी गॉट दिस फास्ट? चला मुंदड़ा का आंसर बराबर आया है 20 लाख, सावरिया आपका आंसर राइट है। बाकी लोग क्या कर रहे ले, कोडे वेयर इज कोडे? आई वांट द आंसर्स फास्ट, आई वांट द आंसर्स एवरीबॉडी फास्ट। इज योर आंसर, डिड यू राइट दिस डाउन? द फॉर्मूला आपका शीट में होना चाहिए, पाटिल आंसर आएगा।
Patil, have you got the answer fast? Okay, this was one easy question, bit lengthy, but it's okay. Acha, now next, pay attention, please, please. The second thing, what we'll do, this was M&M. By the way, listen, if you want to do something for M&M, if you want to revise, this is the perfect sum. एक ही सम ऐसा करो जिसमें प्राइस निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है एंड वैल्यू निकालना है, बस खत्म. ये रिवाइज एक ही सम सॉल्व करो, बस जैसे डूबल होना करे जब क्या करना है, एक ही सम करो, 10 सम मत करो, ठीक है. चलो सेकंड आपने वॉल्टर भैया है, वॉल्टर भैया ने क्या बताया, वॉल्टर भैया ने बताया कि डिविडेंड इज रेलेवेंट फॉर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, डिविडेंड इज रेलेवेंट फॉर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. और वॉल्टर का भाई साहब एक चीज है, तो हमेशा पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू वॉल्टर व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो. उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो, और मेरे हिसाब से वो तो बहुत ही इजी है, ठीक है. वॉल्टर प्राइस इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड प्लस ई माइनस डी इंटू IRR अपॉन क्या है बाबा, के, ऑल डिवाइड बाय क्या है, के. ध्यान देंगे आप प्लीज सब लोग. सर ठीक है, ये आता है अपने को. अच्छा, और एक बात, while doing वॉल्टर मेक श्योर आप बॉडमास का रूल यूज कर रहे हो, वो डिविडेंड को लास्ट में प्लस करो. लोग क्या करते हैं क्या, लोग क्या करते हैं पता है क्या, ये सब प्लस करेंगे और फिर इसको इंटू करेंगे. माती खाना, तुमका आंसर रॉन्ग है ना. ये पहले माइनस करेंगे, फिर ये इसको इंटू करेंगे और लास्ट में आप डिविडेंड को माइनस करें, इसलिए वो ब्रैकेट दो डाले वहां पे, ठीक है. चलो इंपॉर्टेंट है, माइनर पॉइंट्स है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है. अच्छा, वॉल्टर में और कुछ करना है? हाँ सर, करना है आपको वॉल्टर में. वॉल्टर्स ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, वॉल्टर्स ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, अच्छा सिर्फ 2 मिनट में रिवीजन कर रहा हूं, आई नो यू नो दिस, बट जिसको पता नहीं है तो थोड़ा सा ये करेंगे. शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं मैं आपको. IRR ग्रेटर देन के, IRR ग्रेटर देन के, तो क्या होना चाहिए भाई साहब, इसका मतलब क्या है, इफ कंपनी इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न देन द आउटसाइड, देन भाई साहब इट हैज टू बी 0% डिविडेंड पे आउट. सर अगर इंटरनल रिटर्न माती खा रहा है, इसमें कितना रहेगा, 100%. If the company is not able to generate that much return as compared to outside, then the customer ने भाई shareholder will do what? They will ask for what? The maximum dividend possible. समझ में आ रहा है? So this was the Walters optimum dividend payout ratio. अच्छा, और एक बात, डिविडेंड पे आउट रेशियो अपन जब गवर्नेंस करेंगे 2 मिनट में, तब आपको मैं बता दूंगा कि रिटेंशन रेशियो एंड डिविडेंड पे आउट, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट. गिव मी 1 मिनट, आई विल टेल यू दैट एंड देन वी गो टू द क्वेश्चन. थर्ड आपका है गॉर्डेंस, ये लक्षण है, ग्राहम एंड डॉट करना है, एंड आई हैव टू गिव यू वन क्वेश्चन, यू नीड टू डू इट इन फ्रंट ऑफ मी ओनली. आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट, ग्राहम एंड डॉट. ओके, पर पहले गॉर्डेंस को खत्म करते हैं. गॉर्डेंस ने भाई साहब गॉर्डेंस नहीं पढ़ा इन दोनों में. गॉर्डेंस बोला मुझे नहीं पढ़ना है वो M&M में और वॉल्टर में, और डिविडेंड रेलेवेंट है इररिलेवेंट है, तो जो करने क्या करो. मेरा मकसद बहुत क्लियर है, मुझे ग्रोथ निकालना है भाई. तो ग्रोथ के लिए भाई साहब ने स्टेप नंबर वन ग्रोथ निकालना है, बहुत सिंपल था. रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो. तो अगर डिविडेंड पे आउट दिया है, इफ दैट इज 40%, तो बैलेंस है प्रॉपर रिटेंशन रेशियो, बहुत सिंपल, ठीक है. स्टेप नंबर 2 गॉर्डेंस का क्या है भाई साहब, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, प्लीज कंप्यूट द प्राइस अंडर गॉर्डन, बिकॉज इन द फर्स्ट 3 मॉडल्स M&M, वॉल्टर एंड गॉर्डेंस, you will have the same question, please compute the price. तो इसका प्राइस क्या निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला था के वाला, वही यहाँ पे घुमाओ, उसको आपको शफल करना है. P0 D1 अपॉन के माइनस जी, एकदम मक्खन फॉर्मूला है भाई, सिंपल फॉर्मूला एकदम. D1 को के माइनस जी, खत्म हो गया आपका बात. तो ये एक चीज हो गया. अच्छा, नाउ प्लीज कम ओवर हियर, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, जितना भी पब्लिक है ना ध्यान देना, ठीक है. नाउ ये आपका फोर्थ वाला मॉडल है, ये फोर्थ वाला मॉडल व्हिच आई थिंक इज इररिलेवेंट, इट इज इररिलेवेंट. ओके, लिंडर्स मॉडल, ये भाई साहब डिविडेंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, तो इसमें आपको प्राइस नहीं पूछेगी, इसमें आपको डिविडेंड पूछेगी, ठीक है. सो D1 इज इक्वल टू D0 प्लस EPS इनटू टारगेट पे आउट, जो आपको ऑलरेडी दिया रहेगा एग्जामिनेशंस में, माइनस D0, आपको गैप निकालने के बीच में, इनटू AF स्टैंड्स फॉर एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट. इट्स अ वेरी मैकेनिकल फॉर्मूला, जस्ट राइट डाउन दिस, इफ इट कम्स इन एग्जामिनेशन यू कैन सॉल्व, बट अच्छा, I'll wait for 1 minute. Please write down this. Please write down. And इसके बाद अपन ग्राम एंड डॉट करेंगे, उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको मेरे सामने सॉल्व करना. ओके, in 1 minute. Everybody.
ग्राहम एंड डॉलर. गिव मी 1 second, I'll just put my laptop for charge. ये इसके बाद अपन ब्रेक लेते हैं, चाय कॉफी का ब्रेक मारते हैं. इफ यू आर देयर इन द विसिनिटी, चाय कॉफी पीने को आ सकते हैं आप मेरे साथ. डिविडेंड पॉलिसी खत्म होने के बाद बोल रहा हूं मैं. चलो ये हो गया आपका लिख के. एवरीबॉडी डन. एंड नाउ विल गो ऑन टू hey lecture public Graham and Dodd. Please update this in your book. Okay, so this is the formula: P multiplier dividend plus E upon 3. Please write down this क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है. कोरडे, पाटिल, एवरीबॉडी, अंबेडकर, एवरीवन, रुतिका, सावरिया, जितने भी लोग हैं सबको लिखना है. एवरीबॉडी नीड्स टू राइट डाउन P is equal to M plus D plus E upon 3. Okay, very mechanical stuff. The point is what? These guys literally asked a question on this only. What? On Graham and Dodd. Okay, everyone ready for this? Everyone ready for this? अच्छा पहले एक तो बताओ यार, तुमने ये लिखा है कि नहीं है? Have you written down? Give me a yes or no. I want to see yes in the comment. क्या तुमने Graham and Dodd लिखा है और क्या तुमको इसका फुल फॉर्म पता है? P is your price per share, M is the multiplier, जो आपको दिया रहेगा एग्जामिनेशन में. This is dividend per share and this is EPS. क्या आपने ये लिखा है? If yes it is, then only I will go ahead with the question first. Then only I will go ahead with the question. एवरीबॉडी लवकर सांगा, लवकर. क्वेश्चन खूप भारी आहे, क्वेश्चन खूप भारी आहे, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. वो मॉडल का ही क्वेश्चन, मॉडल का ही क्वेश्चन है भाई. एवरीबॉडी ओके टिल हियर? एवरीबॉडी ओके टिल हियर? सर P is equal to M plus D plus E upon 3. D plus E upon 3. एक काम करेंगे, ये 2-3 बार लिखो बुक में. आई हैव सीन स्टूडेंट्स वो इसमें माती खाते हैं. वो M plus है, M into है, so P equal to M D plus E upon 3. Okay, we have a question in front of you. Compute EPS according to Graham and Dodd approach from the given information. Okay, it's a very simple question, but it's a tricky one. Okay, they have given you market price, they have given dividend payout, they give you multiplier. आपके 4 options हैं और आपके सामने formula भी है. I'll wait for 2-3 minutes. Please start solving. I'll solve, but आप solve करेंगे नहीं तो वो आपको समझ में आएगा आंसर. आप शुरू करेंगे प्लीज. आई वेट फॉर 1 or 2 minutes. आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ग्राहम एंड डॉड फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको सिर्फ सॉल्व करके मुझे देना है. दिमाग लगा के आंसर दो. कौन सा ऑप्शन है मुझे बताओ प्लीज फास्ट. इन विच ऑप्शन इट इज? ओ आज ही करना है, कल परसों करना नहीं है. फास्ट है, बहुत सिंपल है वो. डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस और व्हाट? इट्स वेरी सिंपल. मॉडल का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बट ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है. मतलब आपको वो सोचने को मजबूर करेगा इसमें. ऐसा नहीं कि फॉर्मूला दिया उसमें से वैल्यूज पुट करो और आपको आंसर देगा. नहीं भाई, वो लिटरल में होता है. लिटरल बहुत सिंपल है, बहुत 5 फॉर्मूला है, बट इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. सर 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 हम दिमाग तो लगा रहे हैं बट ऑप्शन कुछ मैच नहीं हो रहे. अच्छा एक का आंसर आ गया, तो आंसर आना शुरू हो गया. अंबेडकर उर्फ टेलर स्विफ्ट, आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है. गायत्री आपका आंसर राइट है, गायत्री आपका आंसर राइट है. चलो इसमें क्या माती खाया है वो देखेंगे. तो बाकी के लोग आई थिंक अभी भी सॉल्व ही कर रहे हैं, यही सोचे कि इसमें करना क्या है. ठीक है. अच्छा बाय द वे पे अटेंशन. सर प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है तो भाई साहब इसमें अपन मस्त तरीके से 56 लिखेंगे. सर एम का मतलब है मल्टीप्लायर, वो जो भी दिया हुआ है यहाँ पे. अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड, यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड. पे अटेंशन प्लीज एवरीवन. सर डिविडेंड कितना है? अरे अपने को थोड़ी पता है डिविडेंड कितना है. सर डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, पे अटेंशन. अच्छा कैन आई से वन थिंग, अपने को डी भी पता नहीं है और ई भी पता नहीं है क्या है. इनफैक्ट क्वेश्चन में ई निकालना है अपने को. कैन आई से वन थिंग, क्या मैं ई को एक्स मान सकता हूं? हाँ सर एक्स मान सकते हैं. डिवाइड बाय 3. अरे बॉस अगर अर्निंग्स पर शेयर मेरा एक्स है तो तुम्हीच मला सांगा डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा रे. अरे डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, तुमको पता रहेगा ये. कुछ क्लिक हुआ क्या? अरे ईपीएस
इंटू डिव्हिडेंड पे आउट रेशो. अरे आपण डिव्हिडंड कशात देतो, ईपीएस मधनच देतो ना. तो ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशो, बाहर क्या निकलने वाला है, डिविडेंड पर शेयर. सो डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू व्हाट, डीपीएस. सिंपल स्ट्रेट फॉर्म्युला. तो भाई साहब अगर ये मेरा अर्निंग्स एक्स है तो तुम्हीच मला सांगा डिविडेंड पर शेयर पैसा कितना रहेगा. सर बहुत सिंपल है सर. सर 0.6x रहेगा ना, 0.6x रहेगा वो. समझ में आएगा तुमको? यू अंडरस्टैंड दिस? ये तुमको सॉल्व करना है. दिस वाज द ओनली ट्रिक इन द क्वेश्चन एंड आई होप आपको मैथ्स आता है. अगर मैथ्स आता है तो ये भी सॉल्व कर पाएंगे ये वाला इक्वेशन. नाही तर तुम्ही संपला मग तो इकडे तिकडे बघत बसता काय चाललंय. ठीक है, बहुत सिंपल है भाई. 3 डिवाइड बाय 2 ये कितना आता है 28. आई सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, टेंशन मत लो कुछ. 3 into 0.6 कितना आता है, ये आता है 1.8x प्लस x होल डिवाइड बाय कितना है 3. 28 into 3 कितना आता है 84. और ये 1.8 और ये कितना आता है 2.8x. और ये x आपका आना चाहिए कितना आएगा भाई इसका आंसर. अरे मस्त अभी क्या आपका आंसर 30 आना मांगता है 30. ये आपका आंसर है 30. सॉल्व करके बता दिया है मैंने, आपके स्क्रीन के सामने है. आपका आंसर है 30. आपका आंसर है 30. प्लीज मेक श्योर आपका टोटल फोकस डिविडेंड में पहले 3 मॉडल के ऊपर ही चाहिए. M&M, Walter, Gordon, smooth, very smooth. But don't leave out this, especially this sum. Written are very simple, mechanical. Just put the figures, you get the answer. But if you're talking with this Graham and Dodd, this was one tricky question which these guys have asked. It was pretty simple. Has everybody got it? Yes or no? ये सबको आया क्या रे? सबको आंसर आया क्या बताओ? 30 is the answer. Is 30 is the answer? Yes or no? Yes or no? सर आ गया है आंसर. चला लवकर आंसर आ गया क्या? चलो अभी एक सॉल्व करेंगे. लेट अस सी वेदर यू कैन डू इट और व्हाट. चलो on your screen one question, please solve this. We'll be taking a break after the chapter gets over, okay? And after the chapter I'll start with capital budgeting, which nobody should even try to skip it, okay? चलो सर, नेट प्रॉफिट इज गिवन 30 lakhs. प्रेफरेंस शेयर कितना दिया वो 1 करोड़. इक्विटी शेयर 60 लाख. IRR दिया है 22%. केई दिया है 18%. रिटेंशन रेशियो मतलब बी दिया है 75. कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग गॉर्डन्स एंड वॉल्टर. वी हैव डन tons of time. ये सेम क्वेश्चंस किए अपन ने. And I hope you should be in a very comfortable position in solving this. You should do it in front of me right now. Consider this as a test question and do it in front of me. Everything is there on the screen. Don't look आगे पीछे, कुछ पेजेस टर्न मत करो आगे पीछे. सीधा क्वेश्चन करो. आपको फॉर्मूला भी पता है. You know the formula also. चलो फास्ट. गॉर्डन्स. अच्छा मैं भी सॉल्व करूँ, आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? सर गॉर्डन्स निकालने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? सर इट इज द ग्रोथ. अपने को ग्रोथ निकालना पड़ेगा सबसे पहले. तो ग्रोथ निकालने के लिए भाई साहब G इज इक्वल टू B इंटू R. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B? रिटेंशन रेशियो कितना है भाई साहब? 0.75 इंटू R कितना है? 22%. किती उत्तर थे मला सांगा रे पोरानो. 16.5% इज योर ग्रोथ. क्या आपका आंसर 16.5% आया है क्या? यस और नो? यस और नो? प्लीज गिव मी यस और नो फास्ट. इधर 16.5 क्रॉस चेक करेंगे अपन. कुठे गेले. हाँ इथं दिसते बघा कितना आया 16.5. ओके चलो ये होने के बाद सर गॉर्डन्स का ये एक स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप क्या है गॉर्डन्स का? व्हाट इज सेकंड स्टेप इन गॉर्डन? सेकंड स्टेप इज कंप्यूट द प्राइस. वेरी सिंपल. ओके नाउ P0 D1 upon KE minus G. But sir, if you're doing this D1 upon KE minus G, you already have the growth. We already have the KE. What we don't have, and that is the most tedious thing is this. That is the only thing is this actually, and that is to compute the dividend. Okay, how to compute, sir? I hope you can recollect. Second lecture, please. Anybody who has computed D1 by the way? क्या किसी ने D1 compute किया है क्या? Has anybody computed D1? Has anybody computed D1? Has anybody computed D1? अरे भाई साहब अरे पब्लिक सुनो ना. Sir, net profit is 30 lakhs. Okay. Now, if I'm going to compute the cost of equity, अगर मुझे वो निकालना ही है, डिविडेंड भी निकालना है मुझे, सर नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस होगा.
और जो लास्ट में बचेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिससे मेरा ईपीएस निकलेगा। अपने से बहुत सम्स किए सेम, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। 30 लाख में से 30 लाख में से अब डिविडेंड को माइनस करेंगे। अपना डिविडेंड 1 करोड़ के ऊपर 12 मतलब कितना होता है सर, ये होता है 12 लाख, ये होता है 12 लाख। सर कितना पैसा बचेगा आपका, सर आपका पैसा बचेगा 18 लाख रुपए। कितना बचेगा, 18 लाख। कहना से वन थिंग, ये जो 18 लाख रुपए है ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। समझ में आ रहा है सर, ये क्यों निकाल रहे, क्यों कर रहे हैं अपन, अरे भाई साहब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ईपीएस निकालें, और जैसे आपको ईपीएस निकलता है आप उसमें से डिविडेंड को निकाल सकते हैं। दैट इज आपका जो टारगेट है वो ईपीएस का रहना चाहिए। ओके, तो ईपीएस कितना आएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, सर 18 लाख डिवाइड बाई, ये तो आपका अर्निंग्स हो गया ना भाई, 18 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60 लाख डिवाइड बाई 10 कितना, 6 लाख आता है, तो 18 लाख डिवाइड बाई ये कितना आएगा, 6 लाख। सर कहना इसे इट इज 3 रुपए, तुम्हें सॉल्व करून दाखवणार 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख कितना आता है भाई साहब, 3। एवरीबडी डन, 3 रुपीज, यस और नो, सर 3 रुपीज इज देयर। अच्छा एक काम करेंगे, अगर वो 3 रुपए आपका आता है, वो 3 रुपए अगर आपका आता है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें से तुमको डिविडेंड निकाल के देना है। आपको ईपीएस से डिविडेंड निकालने, सर कैसा जादू है, कैसे कैसा निकाल के देंगे सर, अरे पब्लिक तुम्हारे पास यहाँ पे रिटेंशन रेशियो कितना दिया है, 75%। अगर वो कंपनी 75% रिटेन कर रहा है तो बैलेंस क्या कर रहा है फिर, सर बैलेंस डिविडेंड पे आउट कर रहा है। सो 25% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। मैंने शायद से ऊपर ही आपको एक लाइन लिख के दिया था, लाइन टू दो, लाइन टू लाइन टू लाइन भाई साहब दूसरा पाना के लिए लाइन क्या लिख के दिया था मैंने आपको, पता है क्या, याद है आपको, लाइन ये लिख के दिया था मैंने आपको कि भाई साहब ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डिविडेंड पर शेयर। सो भाई साहब कहना है इसे, ये 3 रुपए में 3 रुपीज को इन 25%, is your dividend 0.75, is your dividend 0.75, is your dividend 0.75, and now please pay attention, everybody ले फोकस कर सकते प्लीज। सर आपने जो अभी किया ना वो हमको समझ में आया, वो झेपा हमको थोड़ा सा। आपने क्या किया सर, ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो किया, डिविडेंड पे आउट रेशियो किया, और बाहर क्या निकला, डीपीएस निकला, बराबर है। ईपीएस तुमने निकाला था 3 रुपए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% था, तो डिविडेंड कितना आता है 3 into 25%। And now the main confusion in the entire world is this. I hope मैं क्या बोलने में आपको समझ में आ रहा है। सर ये D0 है, ये D1 है, ये D0 है क्या D1 है सर, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है, इसकी वजह से आप अजम्पशन डाल सकते हैं। सुनो, अगर ये लोग ने एक्सपेक्टेड कुछ लिखा है क्वेश्चन में, कहां पे भी अगर एक्सपेक्टेड लिखा है तो वो D1 है, कुठे पण तुम्हाला जर एक्सपेक्टेड सापडलं नहीं तर वो 100% वो क्या रहने वाला है, D1 रहने वाला है, पर इसमें एक्सपेक्टेड है ही नहीं, तो ये D0 है, ये क्या, ये D, दिस इज D0, ये D0 है। अगर ये D0 है तो आपको D1 चाहिए फॉर्मूला में, क्योंकि गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन K माइनस G। तो 0.75 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितनी है 16.5%। So can I say one thing, is it 0.87375, यही किती होतं 0.18 माइनस 0. Please give me an answer fast. Give me an answer fast. What is the answer, boys and girls? What is the answer? What is the answer? 58.27 आया क्या आंसर, 58.27, 0.87375 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.165 कितना आता है ये 0.015, कितना आंसर आता है इसका 0.87375 डिवाइड बाय 0.015, इज इट 58.25, किसका आंसर आया क्या रे 58.25, एवरीबॉडी गेटिंग 58.25। अगर नहीं समझ में आया तो पता है कि मैं आपको 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा, तो टेंशन तो लोड मत लो उसका कुछ है। एवरीबॉडी गेटिंग दिस, हैव एवरीबॉडी गॉट दिस 58.25, हैज एवरीबॉडी गॉट दिस 58.25, यस और नो, हैज एवरीबॉडी गॉट 58.25,
एक बार वापस एफएम संपवायचा आहे, एफएम आपको तोड़ना है, एफएम खत्म करना है, ठीक है? लोड मत लो, ग्रुप 2 विल बी योर लाइफ सेवर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ओके? आपको इससे बहुत मार्क्स मिलेंगे ग्रुप 2 से, जो सेट ऑफ में आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू काम योर हेड, please try to bang on in group 2. It's very simple. Do smart study, wrap it up, do past examination question, do RTV, you are sorted. Okay? 58.25 सबका आंसर आ गया. चला हे झाले का? चला 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 सर 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 इथं वॉल्टर पण विचारले या लोकांनी, इन वॉल्टर भी पूछा है, तो कोई बात नहीं, दे देंगे उनको वॉल्टर भी अपन. We will give them Walter also, big deal. Walter, Walter, Walter. Walter का फॉर्मूला क्या है? अरे वो बड़ा वाला फॉर्मूला अपना जो अपन ने किया था अभी. D प्लस E माइनस डी. सॉल्व करा लवकर, चला. IRR अपॉन के होल डिवाइड बाय के. चला चला लवकर. डी कितना आ रहा है? डी कितना आ रहा है? सर 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 अभी तो अपने जस्ट निकाला डिविडेंड. डिविडेंड कुठे गेलो? 0.87375 प्लस अर्निंग्स कितना है? 3 रुपया माइनस 0.87375. एक काम करतो, इथे कर लिहितो मी, कॉपी पेस्ट. हाँ, इसमें से यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ ना मैं. हाँ चलो, हे पुढे काय होतं? इंटू IRR. कितना है IRR? कितना है भाई साहब? IRR कुठे गेलं? 22%. 22% अपॉन 0.18. विषय समाप्त. 0.18. Can you give me an answer please everyone? Has anybody got the answer of Walter? Walter का आंसर है किसके पास? उसका चेक करेंगे आंसर कितना आ रहा है. What is the answer of Walter? Walter. ओए होए होए होए, मैंने 0.873 लिया गया यहाँ पे. अरे रे पब्लिक यहाँ पे डी है ना सिर्फ, ये डी है सिर्फ. इधर डी है ना रहा है. सी वन सेक, सी इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. When I got messed up over here. 0.75 आएगा क्योंकि डी वन है, सिर्फ डी है वहां. So यहाँ पे 0.75 and now see what is the answer. 3 minus 0.75 into 2 divided by 0.18 plus 0.75 0.18. 19.44 क्या आपका आंसर आया क्या? 19.44. Make sure you don't do the same mistake in the examination. Very important. Because in Gordon's it is D1, in your Walter it is simple D. Okay, that is D0. Okay, चलो. Everybody got the answer? रुतिका एक बार वापस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप. चलो, have you got the answer? 58.25 and 19.44. 58.25 and 19.44. Have you got the answer? Yes or no? Has everybody got the answer? Give me yes or no, please. So we can go ahead. So that we can go ahead. Everybody. चला लवकर. सगळ्यांना आले का? Everybody is getting these answers. Yes or no? अच्छा, by the way, if you remember this one question which was there in the module, just put it a bookmark. That Walter का question था, and in that they had already given you the price. 42 rupees का question है, 42. So they give you the price, and you need to find out the dividend payout ratio. Okay, so that question is important. I think if I'm not wrong, 52% उसका आंसर उसका आता है, ठीक है? So please mark that question as very very important. Okay, चलो. Okay, one last question which I think is important. Everybody ready for this? Everybody ready for this? Rutika, very good. Chalo, fast. Okay, it's a beautiful question. I want everybody, before we break for tea coffee, I want everybody to pay attention. Okay, so everyone, total earnings 4,50,000. Okay, number of equity shares 25,000. 100 रुपए का एक है. Retention ratio 40%. Dividend payout 60%. Market price per share 198. Simple plain formula. Applying what model? Walter. So in your mind only this should be one Walters. Okay. Analyze whether the company is following an optimal dividend policy or not. Remember one thing. If this question comes, whether the company is following optimal policy or not. So for that, remember it's a theoretical question. आपको पूछ रहे हैं कि वो ऑप्टिमल है क्या नहीं है. ऑप्टिमल है क्या नहीं वो चेक करने के लिए you need two factors. One is IRR and one is K. So if you have these two things, then only you'll be able to what? Compare. Okay. So can you please tell me how much is IRR from this and how much is your KE? How much is your KE?
सर वी थिंक बोथ आर वेरी डिफिकल्ट सर, कैसे निकालेंगे सर इसमें केई वगैरह, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन वी डू इट? दैट इज व्हाई दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ओके चलो, सबसे पहले सर आपने अभी जस्ट बताया कि अगर ऑप्टिमल है क्या नहीं, तो दो चीजें चाहिए सर, एक तो IRR चाहिए और एक तो के चाहिए। अगर ये है देन ओनली आई कैन फाइंड आउट वेदर इट इज ऑप्टिमल और नॉट। बट इन दिस क्वेश्चन सर बोथ सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट सर, कैसे करना है सामने IRR? कैपिटल बजटिंग का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, स्टार्ट रेट प्लस एनपीवी स्टार्ट रेट ना, वो नहीं है भाई, वो थोड़ी आप यूज करेंगे। अच्छा तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे आप सर? यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा है सर, एक चीज ये दिख रहा है कि टोटल अर्निंग 4.5 लाख है। प्लीज, टोटल अर्निंग 4.5 लाख है। अच्छा मुझे एक बताएंगे, ये 4.5 लाख रुपए आपको कब मिला? आपको तभी मिला जब आपने इतना कैपिटल डाला उसमें। कैपिटल कितना डाला अपनी कंपनी में सर? 25,000 इंटू 100 रुपए, 25,000 इंटू 100 रुपए, 25 लाख रुपए का कैपिटल डाला। कितना लाख डाला है? 25 लाख का कैपिटल डाला है, और उसके ऊपर तुमने कितना कमाया है सर? 4.5 लाख कमाया है। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? Yes, I want the answer from you. Can you please tell me what is the internal rate of return? If you understood my logic, if you understood the logic, IRR सर ये कैपिटल डाला है मैंने, ये कैपिटल है और उसके ऊपर मैंने इतना कमाया है, तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताएंगे प्लीज, जल्दी बताएंगे सर। हमको ऐसे लगता है, हमको ऐसे लगता है 4.5 लाख रुपए मिला है 25 लाख रुपए डाल के, इसका यही मतलब है कि 18% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। हैव यू गॉट दिस? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हिडन वाला एडजस्टमेंट है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट सर। एक नंबर सर, अगर ये हो गया है तो अपन अभी के ही निकालेंगे सर। के के तुमने कितने फॉर्मूले लिख के दिए सर? वो डिविडेंड वाला दिया है, डिविडेंड ग्रोथ वाला दिया है, ईपीएस वाला दिया है, अरे पीई वाला दिया है, वो सीएपीएम वाला भी दिया है। इसमें क्या यूज करेंगे सर? इसमें पूरा ब्लैंक ही है हम लोग, इसमें यूज क्या करते हैं हमको सर? बॉयज एंड गर्ल्स अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, इफ यू सी वेरी इन दिस वी हैव टू यूज पी वाला फॉर्मूला सर। कैसे? तुमको एमपीएस यहाँ पे दिया है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था, क्या फॉर्मूला मुझे बताओ? के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है। अरे सर बट ये फॉर्मूला के लिए आपको पी चाहिए, तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको वो भी निकाल के दिया है, स्टार्टिंग में वही लिख के दिया मैंने आपको, क्या कि अगर आपको अगर आपको पी निकालना है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये आपका फॉर्मूला है। उसमें एमपीएस तो ऑलरेडी आपके पास है, कितना एमपीएस? कितना? ये 198, ये 198 है। अब ईपीएस आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले फिर टोटल अर्निंग्स कितना दिया है? 4.5 लाख रुपए दिए। अच्छा आप मुझे बताएंगे इसका ईपीएस कितना आता है? एनीबॉडी? हाउ मच इज द ईपीएस? हाउ मच इज द ईपीएस ओवर हियर? आई होप यू आर गोइंग राइट। ठीक है सर, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, 18 रुपए का ईपीएस आता है, 18 रुपए का ईपीएस आता है। तो पी कितना आता है? 198 डिवाइडेड बाय 18, इज इट 11? क्या 11 है? अगर ये 11 आता है तो आपको यहाँ पे काम हो गया सर, आपको यहाँ पे काम हो गया। कितना आता है सर? दिस इज अप्रोक्स 9.09%। हैव यू गॉट दिस? यस और नो? क्या आपको ये IRR और के आया है क्या? यस और नो? क्या कंसेप्ट समझ में आया, स्टेप सब समझ में आ गए? मुझे बताओ, हैव यू गॉट ऑल ऑफ दिस इन योर हेड? यस और नो? हैव यू गॉट ऑल ऑफ दिस इन योर हेड? गिव मी यस और नो फास्ट, फास्ट बताएंगे सर, फास्ट। IRR के आणि पीई, अपने पीई के फॉर्मूला से के निकालना है, एंड देन अपने को दो ही चीज चाहिए ना बॉस, we wanted IRR and we wanted KE, that's what we have got over here, and then you can compare now. Have you got this? Please tell me, क्या तुमको ये समझ में आया कि वो पहले बताओ? क्वेश्चन भारी वाला है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? Have you got this? Yes or no? Because if you have got this, if you have got this, if you have got IRR and if you have got KE, boys and girls, your work is very simple. Sir, 18% is greater than 9.09%. बात भाई, तो इसका मतलब है अगर this is the case, if IRR is greater than K, you only tell me what is the optimum dividend payout policy as per Walter? Sir, 0%. अरे भाई 0% is the optimum dividend payout policy, but
कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमल, सर कैसे तुमको पता चला इज नॉट फॉलोइंग? यहाँ पे लिख दिया वहां पे, अरे भैया यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है रिटेंशन रेशियो 40% है, इसका मतलब है ये बाबा क्या करना है पता है क्या, ये डिविडेंड पे आउट करना है 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो। दिस मींस व्हाट, द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट पॉलिसी एज पर ऑल्टर। असूल बघा हे बघा, हेच त्यांनी केलं, आपण जे केलं सगळं कारभार, आज कारभार सगळा इथं केलाय, वही किया इन लोगों ने यहाँ पे, hence it is not having an optimal dividend payout policy as to ऑल्टर। 60% है ना उसका। Have you got this? Have you got this everybody? Did you understand everyone? खतरनाक। चला अभी सेकंड क्वेश्चन बहुत पांचट है, दिखता है बहुत डिफिकल्ट बहुत इजी है, बट ठीक है। अच्छा फर्स्ट टेल मी whether you have understood this or what, first tell me whether you have understood this or what, then only it makes sense for me to go ahead, then only it will make sense for me to go ahead। कंप्यूट द पी रेशियो, ठीक है, अभी तो अभी जस्ट कंप्यूट किया था, वापस बोलेंगे, एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर एंड आल्सो कैलकुलेट द एनपीएस एट सच पी रेशियो। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो ना तुम 2 मिनट, वो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा बताओ कि भाई साहब डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट नहीं होगा। देखो ये एक होता है सिनारियो, ये सेकेंड होता है कि IRR लेस देन के, पर भाई साहब तीसरा भी तो हो सकता है ना, जहां पे IRR इज इक्वल टू के। अरे भैया आप मुझे बताओ अगर वो इक्वल टू के ही है तो विल इट हैव एनी इंपैक्ट? सर नो सर, अगर दोनों से तो इंपैक्ट ही नहीं होगा तो खत्म हो गया ना भाई। इसका ये मतलब है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये 18% है तो केई पण 18%च पाहिजे, केई पण 18%च पाहिजे, मगच ते इफेक्ट होणार नाही, वही उनका क्वेश्चन है। अभी तुम मुझे बताओ, लक्ष्य द्या, अगर केई मुझे 18% चाहिए तो फिर पी कितना रहेगा, तो फिर पी कितना रहेगा, लवकर 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 भाई, अगर केई चाहिए 18% कुठे गेलं तो पी कितना रहेगा? तो बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है सर, के इज इक्वल टू 1/p बोला ना आपने, तुम बोल रहे हो कि के 18% चाहिए तो कोई बात नहीं, 1/18 कितना आंसर आता है सर? ये आता है 1/18, 1/18, ये आपका आंसर आएगा नया वाला पी 5.56 टाइम्स। क्या तुमको ये झेपा है क्या मुझे बताओ, ये तुमको झेपा है क्या मुझे बताओ, यस और नो? Rutika, I'll tell the theory part. Pay attention, pay attention. So what I want to tell you is that this question is the second question. See what they are trying. Compute the P ratio at which the dividend policy will have no effect on the value of share. What is the meaning of no effect? Because they don't want greater than or less than. They don't want that. They are tell us that P ratio at which it will have no effect. अरे बाबा no effect कब होगा? No effect तभी होगा जब ये वाला fulfill होगा, the third category. When IRR will be equal to KE, this will have no effect only on the outer part. So for that, for this to happen, for no effect to happen, my KE should be equal to IRR. And what is my IRR? 18%. So if I want to bring my KE as 18%, how much should be my P? You have the relationship. KE is equal to 1/P. तो मैंने 1/18 कर दिया, तो मुझे KE ये मिल गया, 1/18 करने के बाद मुझे P मिल गया, कितना मिल गया मुझे? 5.56 times. Did you understand this? Did you understand this? Rutika, did you understand this? If so, this is your new P ratio 5.56. Are Baba, if this is your new P ratio, can you please compute the new market price? Sir, PE is equal to MPS upon EPS. How much is the new P ratio now? So it is 5.56. MPS we need to find out, right? EPS कितना दिया हम लोगों ने अभी? हम लोग तो EPS 18. This was 18. How much is the answer? 18 into 5.56. Is your answer? Is your answer new MPS 100.08 approx? इतना आपका आंसर आता है, ये आपका सही आंसर है। 100.08 is your answer. Yes or no? Have you got 100.08? This is the new market price per share according to new PE ratio. According to new PE ratio. समझ में आया क्या भाई? Yes or no? जल्दी बताएंगे. Yes or no? Have you got this? First question is bundle. वो बहुत easy है पहला question. Second question में दम है थोड़ा, ठीक है? तो क्या आपको आंसर मिला है क्या? 100.08. Is this answer in your book? Is this answer in your book? Rutika, everybody actually. 100.08 खतरनाक खतरनाक खतरनाक, ठीक है? थर्ड वाला भी बहुत इजी है यार। थर्ड वाला क्या पूछा है? Will your decision change if the P ratio is 4.5? Obviously, your decision is going to change. The P has changed, okay?
सो इफ रेशियो इज 4.5, आपका क्या होने वाला है सर? तो सबसे पहले आपका के चेंज होगा, बिकॉज दैट विल बिकम 1 डिवाइड बाय 4.5 विल बिकम क्या, कितना आता है? 22.22%। बिकॉज इफ दिस इज चेंज, अगर के चेंज होता है आपका, सो आई आर आर इज लेस देन के। दिस वाज 18%, 22% इन दिस केस, 100% डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा आपको। सो वही लिखा इन लोगों ने यहाँ पे, optimal dividend policy of the firm should be distribute everything. What is everything? 100%. As the value of share would be maximum at that point, thereby maximizing the wealth of the shareholder. As the three questions born in your head. Give me a yes or no. क्या तुमको तीनों भी क्वेश्चन दिमाग में आ गया? वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत भारी क्वेश्चन है। Please understand the second question is important. They will ask you the second question. They will ask you the second question. Everybody yes or no? ठीक है? एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ ठीक है, I'll take that. Oh my god. Oh my god. One second. Come back at 4:50 p.m. ठीक है? Capital wording है. Inform all your friends that we're starting with cap budge. Okay, very important, and we're going to bang on the placement. ठीक है? चाय कॉफी कड़क पी के आओ, मिलेंगे अपन, ठीक है? जल्दी।
Chalo, everybody. Tell all your friends that we are live. Please let me know my voice एकदा सांगा मला बरोबर आहे का, and then we will start immediately. Everybody, I hope everybody is very fresh now. Sorry. So let everybody come. Then we'll start in a minute. Please inform all your friends that we are live again. The second session. Okay. Clear है, clear है, clear है. Okay. Salah. Chalo. Okay. Without wasting any time, we'll start with capital budgeting, the most important chapter of CA Inter FM curriculum. Okay. Now, I'll take the entire concepts, okay, because I'll not rush to the questions. Immediately मैं rush नहीं करूँगा उसके ऊपर, because I'll take time in this chapter. So just for the students who just joined in now, you just got this link somewhere to all your friends. We have already completed 2 chapters. एक बार ये मैराथन होने के बाद ये वीडियो वैसे ही रहेगा. It will be there on YouTube only for some time, like till your examinations. And you will get the timeline also. Timeline as in what? The chapters का आपको ये भी मिल जाएगा. तो आपको कौन से chapter में कोई problem है, you can click on that and then you can start watching. Okay? So now we will be starting with capital budgeting. First concepts के ऊपर एकदम ये कर देंगे, आपको एक refreshment मिल जाएगा capital budgeting का. Then we'll start with the big question. Okay, I have taken only and only replacement question. Okay, तो बाकी के ये छाछूट question है एकदम simple वाले, वो payback period निकालो, वो NPV निकालो, I think I'll manage it very well. But replacement we'll do it together. Okay, simple. Now going ahead, capital budgeting, boss, also called as investment decision, because इसमें आपको decisions लेने होंगे. Okay, pay attention please everyone. Capital budgeting has nothing to do with budgeting and all. Okay, it is basically investment decision whether to accept or reject a machine or a proposal. Okay, while doing this, please listen to me, I'll go very slow also. Okay, while doing this, there are lots of techniques which are used in capital budgeting. I'll repeat myself again. There are lots of techniques that are used in capital budgeting. Okay, so payback period, pay attention everyone, payback period, next discounted payback period, next net present value, next profitability index, also called as desirability factor. एक एक डिस्कस करो आपण यातलं, मी तो लिहायला लागलोय, ठीक आहे. नेक्स्ट IRR, internal rate of return. You have ARR, accounting average rate of return. Next you also have something called as EAV, that is equivalent annualized value. Okay, next you also have capital rationing, okay, and there are lots of other techniques. Okay, there are few techniques which are not there for you right now, those are there for your CA final in AFM. Okay, जो अपन risk analysis बोलते हैं, जो आपको AFM में है, जो मतलब uncertainty and all that is there. Okay, not now. Right now in Inter, the complete focus is on basics. Okay, अगर आपके basics strong है, आपको final level में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगा capital budgeting. ठीक है, चलो. Now having said all of this, in capital budgeting, let me give you or let me write for you a few tricks I think you should write. Okay, सबको प्लीज ध्यान देना है. Everyone needs to pay complete attention. Okay, now in capital budgeting, boss, you need 4 things to reach to a conclusion. Listen to me very carefully. Yeah, you need 4 things. सर क्या क्या चाहिए अपने को? सबसे पहले sir, we need outflow, that is also your initial investment. Second, sir, we need inflow. अच्छा, what is inflow called, by the way? It is called as CFAT. Full form क्या है? Cash flow after tax. Okay sir, no problem. Third, you need life of what? The proposal, the machine, whatever it is.
And fourth, the most important you need is the discounting factor. These are the four pillars of your capital budgeting. इसमें अगर एक भी नहीं है ना, आपको दिक्कत आने वाली। तो एक भी नहीं तो आप कुछ निकाल एनपीवी निकाल नहीं सकते। अच्छा अच्छा, इसके बाद the most important in capital budgeting, apart from these four factors, is to compute CFAT, that is cash flow after tax. Okay, a lot of you are in a very comfortable position to do CFAT, but the question which I have taken today is quite tricky. तो उसमें आपको CFAT निकालना थोड़ा सा ये होगा, तो आपको प्लीज ध्यान देना है। तो CFAT निकालते समय तो आप जितने भी आपके अर्निंग्स रहेंगे वो आप लेंगे, लेस एनी एक्सपेंसेस, लेस your depreciation. Next you will get something called as PBT, you will get PBT. Next आप टैक्स माइनस करेंगे, इसमें से आपको इसमें आ जाएगा पैट, एंड लास्ट में you will add back depreciation, and after this you will get something called as CFAT. Very simple. It is okay, I'm just giving you an overview. Okay, we'll slowly build up the concept and then I'll go to replacement. Okay, now after this, sir, after replacement, the most important point from my point of view is this. Now everyone pay attention please. Second, please lecture them proper. Sir, whenever we are computing NPV, everybody knows how to compute NPV. You know the formula also. Present value of cash inflow minus outflow. और वापस repeat करता हूँ मैं. Present value of cash inflow, the money which I'm going to receive after 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, that I need to bring down in my today's value, that is 0th year. इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, बोले तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने का वो फिगर्स. We do not discount the today's value, that is your initial investment. Doesn't make any sense. Okay, now the point is I want you to write everything. सबसे पहले whenever you will prepare the NPV statement, उसमें कैसे होता है स्टेटमेंट भाई साहब आपका? सर, it is here, pay attention please. Next you have your particulars, next you have your cash flow, next you have your discounting factor, और लास्ट में होता है आपका DCA. This is your normal. this हमेशा स्टार्टिंग में आपका जीरो रहने वाला है, ये हमेशा आपका स्टार्टिंग में आउटफ्लो रहने वाला है. पे अटेंशन, आई नो दिस इज वेरी सिंपल, बट लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. दिस इज गोइंग टू बी इन माइनस, ये आपका हमेशा 1 रहने वाला है, और ये भी आपका माइनस में रहेगा. नेक्स्ट ये स्टार्ट विद द ईयर. लेट्स से इमेजिन करो 5 साल इसमें, सो ये 3, 4 और 5, तो इसमें आई विल राइट CFAT over here in everywhere, and all these figures will be in positive mode. Now comes the most interesting part. Now pay attention please. If in your question you have working capital, so boss, you need to add working capital in the 0 year, and also working capital is always recovered back in capital budget. So it is assumed that working capital जितना पैसा आपका recover हो गया working capital. ठीक है, तो भाई साहब ये पांचवें में आपका आएगा working capital recovered. Pay attention please. Working capital recovered. Sir, is it an inflow? Yes, ये inflow है. सिर्फ जो आउटफ्लो है वो मैंने ऊपर एक में ही माइनस में डाला. ओके सर, और कुछ आता है लास्ट? यस सर. 5th ईयर में अगर आपका स्क्रैप है तो वो स्क्रैप भी आएगा यहाँ पे आपका scrap. All this money is coming in. It's a inflow, so it's a positive, it's not negative. Okay, and the most important which many students will they will forget in the examination, and that is tax shield on loss, that is tax savings on loss. ये तभी आता है, pay attention very carefully. So if you have a machine in your block, it is being sold, and they've also given you the scrap value at the end of their life, so you need to check. आपको पहले उसका depreciation निकालना होगा. Listen to me very carefully. You need to compute depreciation. You need to compute the book value, the WDV on that day. जो उसके 5 साल के बाद करेगा ना, तो वो फिगर आपको चाहिए, और ये चेक करना पड़ेगा आपको कि वो कितने पैसों में बेचा है. If they want you to compute this, it will हमेशा this sale value will be always less. ये लॉस ही आएगा यहाँ पे. अगर लॉस आता है तो भाई साहब को टैक्स का एडवांटेज मिलेगा. तो टैक्स का एडवांटेज मिलेगा, वो टैक्स का जो फिगर है, टैक्स का सेविंग, वो यहाँ पे आएगा एज इनफ्लो. These 3 things जो मैंने जानबूझ के पिंक कलर में लिखा है, तो वो आपको ध्यान रखना है. क्या होता है, वो 3 घंटे के फ्लो में you make the entire NPV table and you forget to put this in your statement. वर्किंग कैपिटल, ऐसा एक मेंटालिटी होता है कि वर्किंग कैपिटल अपन पहले डालते ऊपर,
तो अपन ऐसे बोलते हैं डालने पहले क्यों डाल दिया, नहीं, वर्किंग कैपिटल इज रिकवर्ड बैक, राइट दिस डाउन समवेयर। सेकंड, स्क्रैप दिया है वो तो अब डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया है, वो अच्छी बात है, आपको इसमें भी लेना पड़ेगा, वो इनफ्लो है। जहां पे पैसा अंदर आ रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। The last most important point is tax savings, also called as tax shield, and that will only come if it is a capital loss. I hope this is very clear from my side. ये आपको समझ में आया क्या भाई साहब? लक्षण आहे तुमचं? अरे कॅपिटल बजेटिंग असलं भारी करूया ना की त्याच्याला काही पण विचारू दे, काही पण विचारू दे, कन्सेप्ट तुमचे व्यवस्थित पाहिजे. तो ये आपका यहाँ पे मस्त पैकी आएगा एनपीवी, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस, ओके. चलो, कैन वी गो अहेड स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन भाई, स्टेप बाय स्टेप, पे अटेंशन. एंड नाउ to the most important, which I feel कि यही पूछेंगे ये लोग एग्जाम में, रिप्लेसमेंट. ओके, प्लीज एवरीबॉडी ध्यान है आपका. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट सर, एंड व्हाई इट इज दैट कि मतलब व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट और हेवी. सी, रिप्लेसमेंट के जो स्टेप्स है इट गोज वेरी लेंथी, बट अंडरस्टैंड द मीनिंग कांसेप्ट ऑफ दिस, पे अटेंशन. इन रिप्लेसमेंट व्हाट हैपेंस इज इट बेसिकली बायबैक, अपन बायबैक करते हैं कि रिप्लेस करना है कि नहीं वो सोच रहे हैं. सो भाई साहब, replacement is always to be solved by something called as incremental method. इसका मतलब क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, यो लिखता हूं मैं यहाँ, न्यू माइनस ओल्ड. मतलब आप एनपीवी तक टिल योर लास्ट स्टेप आपको यही करना है, न्यू माइनस ओल्ड. इट माइट बी आउटफ्लो, इट माइट बी सीफैट, कुछ भी रहने दो वहां पे, आपको न्यू माइनस ओल्ड ही करना है. ओके सर, नो प्रॉब्लम. अच्छा सर, और क्या करना है इसमें, पे अटेंशन प्लीज. सो योर फर्स्ट स्टेप विल बी, आपको सिर्फ एक वर्ड अटैच करना है उस पर, वो वर्ड क्या रहेगा, इंक्रीमेंटल. सो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, ये आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा रहेगा. अच्छा, आप मुझे बताएंगे सर ये स्टेप अपन कैसे लिखेंगे. सर व्हेन आई विल राइट दिस स्टेप, यू नो व्हाट आई विल डू सर कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, जो भी रहेगा इसका कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, लेस सेल वैल्यू ऑफ existing machine as of today. अरे भैया, अगर मैं नया मशीन ले रहा हूं, जो ओल्ड वाला मशीन है वो भी मैं वहां पे रखूंगा क्या, नहीं सर, तो मैं दे दूंगा उसको. तो आपको चेक करना पड़ेगा, प्लीज पे अटेंशन, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसका जो सेल वैल्यू है वो आज का होना चाहिए, ना कि 2-3 साल बाद का. वो आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे वहां पे कि सेल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू दिया 5 साल के बाद का, नहीं. कंसेप्ट इमेजिन करो, मैं नया मशीन लेने को जा रहा हूँ, वो ओल्ड वाला मशीन मेरे इसके पीछे पड़ा है, तो वो मैं उसको देने वाला, तो आज का मुझे उसका सेल वैल्यू चाहिए. तो वो आपको पूरे, क्योंकि रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, पैराग्राफ्स आर वेरी बिग, जान मुझ के बड़े होते हैं ताकि आपका टाइम उसमें ये हो वेस्ट हो. तो आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको वहां पे ही क्लिक होना चाहिए, हाँ बाबा ये स्टेप्स में करने वाला हूं आगे जाके, और ये उसका फिगर है. मेक श्योर यू डू दिस. ओके सर, ओके. ये स्टेप आपका माइनस हो जाएगा, और फिर आपका नेट अमाउंट आएगा. क्या आएगा आपका, नेट इंक्रीमेंटल अमाउंट आएगा. ये आपका हो गया पहला स्टेप. ओके सर, सेकंड स्टेप क्या रहेगा सर, सेकंड स्टेप मेरा रहेगा, सेकंड स्टेप इंक्रीमेंटल सीफैट. अच्छा, कभी कभार क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्टली वो रेवेन्यू देते हैं जो नेट इंक्रीमेंटल होता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर उन्होंने खुद ही दिया इंक्रीमेंटल तो भाई ले लो, बट अगर नहीं दिया है तो आपको न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा. अच्छा, और एक बात, इंक्रीमेंटल सीफैट के लिए पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्रीमेंटल सीफैट के लिए तुमको भाई साहब डेप्रिसिएशन निकालना होगा, बिकॉज सीफैट का टेबल डेप्रिसिएशन के बिना तो होने ही नहीं वाला है भाई साहब. सो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे अपन सर, डेप्रिसिएशन भी हमको इंक्रीमेंटल ही निकालना पड़ेगा. इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. नाउ प्लीज पे अटेंशन, हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. In incremental depreciation, by some capital budgeting chapter में we follow something called as what? Block of asset concept. We follow block of asset concept, जो आपका इनकम टैक्स का एक फ्लो बना रहे हैं अपन. मेक श्योर आप फॉलो कर रहे हो इसको, ठीक है. मैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं इसका. ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट अपन यूज करते हैं. क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है सर, अरे ब्लॉक में अपन जितने भी उसके मशीन है वो ट्रीट करते हैं. अच्छा, और एक बात सुनो, जब तुमको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है, मेक श्योर कि वो दोनों भी मशीन है वो सेम ब्लॉक ऑफ असेट को बिलोंग करते हैं.
अगर वो दोनों भी मशीन सेम ब्लॉक ऑफ असेट को बिलोंग करते हैं, आपका काम बहुत इजी हो गया। क्यों? बिकॉज पे अटेंशन, दिस इज शॉर्टकट ट्रिक। जो भी आपका स्टेप 1 का आंसर रहेगा, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, in your examination if replacement comes, if both the machines belong to same block of asset, आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकालेंगे? जो भी आपका ये वाला जो अमाउंट है ना स्टेप नंबर 1 का, आप उसके ऊपर क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ब्लैंकली निकालो, बिंदास निकालेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम ब्लॉक ऑफ एसेट। सर एक मिनट सर, if they do not belong to same block of asset, then what we will do then your life become a much more complicated। आपको थोड़ा और टाइम डालना पड़ेगा उसमें, बिकॉज आपको कुछ स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या बनाना पड़ेगा? न्यू डेप्रिसिएशन, ओल्ड डेप्रिसिएशन एंड न्यू माइनस ओल्ड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये कब होगा पता है क्या? जब वो मशीन डज नॉट बिलोंग टू सेम ब्लॉक ऑफ एसेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या चालू है? एवरीबॉडी लिख भी सकते हैं आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सम्स तो करेंगे आप, बट ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बॉस। ओके सर, ये समझ में आ रहा है। मतलब आपका ये मतलब है कि अगर दोनों भी मशीन सेम ब्लॉक ऑफ एसेट को बिलोंग करते हैं, हमारा जिंदगी बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टेप 1 का फिगर उसके ऊपर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकालेगा, और वही डेप्रिसिएशन का फिगर कहां पे जाके चिपकाओगे? आपके सीपैट के टेबल में। सिंपल। ओके सर, डन डन। अब इसके बाद सर क्या करना है? इसके बाद अच्छा, और एक बात सर, आफ्टर दिस ये झालं, हे तिसरं होतं, हे चौथं। आफ्टर दिस आपको ये भी चेक करना होगा कि उन लोगों ने आपको स्क्रैप का कुछ तो दिया नहीं है, इंक्रीमेंटल स्क्रैप। आई होप यू रिमेंबर वी आर टेकन दिस क्वेश्चन जेके इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, आपको याद रहेगा जेके इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसमें जानबूझ के आपको 2 स्क्रैप दिए थे, एग्जिस्टिंग मशीन के ही 2 स्क्रैप थे। स्क्रैप का मतलब आज का भी वैल्यू दिया था और 5 साल के बाद का भी दिया था। भाई साहब, जब मैं स्क्रैप निकाल रहा हूं तो उसका भी इंक्रीमेंटल निकालना पड़ेगा मुझे। सो न्यू मशीन का स्क्रैप और ओल्ड मशीन का स्क्रैप, अरे ये दोनों एट पार होने चाहिए, मतलब मुझे 5 साल के दोनों स्क्रैप चाहिए, वो यहाँ पे आएगा न्यू माइनस ओल्ड। ओके, और लास्ट में आपका आएगा लेडीज एंड जेंटलमैन इंक्रीमेंटल एनपीवी। अगर ये 0 है या उससे ऊपर है तो आप उसको सिलेक्ट कर दोगे। वेरी वेरी सिंपल। आई होप यू हैव गॉट दिस, आई होप यू हैव गॉट दिस। ओके ना सर, आपने शुरू कहां से किया ये कैपिटल बजटिंग? आपने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स लिखी सबसे पहले, फिर आपने ये बताया कि ये 4 पिलर लगते हैं, उसके बिना नहीं होगा एनपीवी। उसके बाद आपने सीफेट का कुछ ये बनाया स्टेटमेंट। इसके बाद आपने एनपीवी का शुरू किया। मैंने आपको ये भी बताया कि एंड ऑफ लाइफ में आपको क्या करना है, वो विदाउट इवन कुछ भी आपके दिमाग में ये नहीं चाहिए कि सर ये कैसे ऐड करेंगे, आपको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन कहाँ पे जंप किए? रिप्लेसमेंट में। मैंने आपको पूरा एक फ्लो समझाया कि रिप्लेसमेंट म्हणजे काय। ठीक है, अच्छा और क्या बाकी इसमें? पे अटेंशन, पे अटेंशन। अजून 2 गोष्टी मला सांगायच्या, 2 थिंग्स आई हैव टू टेल यू व्हिच आर व्हेरी इंपॉर्टंट. नाउ sir, if your question starts with XYZ Limited is an existing company, XYZ Limited is an existing company, और आगे वो क्वेश्चन कंटिन्यू होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, क्यों दिया है, इसका क्या रिलेवेंस है सर? सर रहने दो ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो लाइन से क्या फर्क पड़ने वाला है? भाई फर्क पड़ता है। अगर एग्जिस्टिंग मशीन है, इसका टैक्स का जो इफेक्ट है वो अलग होता है। कैसे होता है? इफ पे अटेंशन प्लीज, if it's an existing company, it is always assumed that they have a lot of other companies. वापस रिपीट करो, आई रिपीटिंग माय सेल्फ अगेन। इफ इट्स अ एग्जिस्टिंग कंपनी, बड़े अक्षर में वहां पे लिख के आया एग्जिस्टिंग कंपनी, इसका यही मतलब है कि इस कंपनी के और भी कुछ कंपनीज है, एंड अगर टैक्स में आपको अगर लॉस होता है तो वो जाके कैरी फॉरवर्ड वो अदर कंपनीज में करेंगे और सेट ऑफ करेंगे, अदर कंपनीज में जाके क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे, और ना कि इसी कंपनी के अगले साल। Did you get this? Did you get this? Now, if there's one more thing, XYZ Limited is a newly incorporated company, is a newly incorporated company. अहो दादा लक्ष द्या प्लीज, अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, the assumption what we take in financial management is that this company is completely new and it does not have any other companies. If this is a situation, then any loss is carried forward in the coming years, in the coming years. मतलब उसके अगले ही साल में आपको लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, और जितना पैसा बचता है सेट ऑफ करने के बाद आप उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करेंगे।
ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या फंडा भाई? ये आपको फंडा समझ में आया क्या? प्लीज गिव मी अ यस और नो। एग्जिस्टिंग कंपनी का फंडा और न्यूली इनकॉर्पोरेटेड का फंडा समझ में आया क्या? एग्जिस्टिंग और न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, एंड if you are thinking does it make any sense of these two words, it makes a very big sense, okay? But if you are very fortunate enough, they will put in the question, वो लिख के देते नीचे कि भाई साहब आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करके उसका सेटअप कर दो। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन? चलो सर, everything is all okay, everything is all okay, and last concept before I move on to the question, last concept मुझे आपको ये बताना है भाई साहब, सुनो। if there are two machines X and Y and the life is 5 years, life is 7 years, so please compute EAV, because in this scenario NPV will not give you a proper answer because they are not at par. Also one more important thing, they will not give you spoon feeding है बच्चा एक काम कर EAV निकाला, ऐसा कभी नहीं होता है, doesn't happen that way. You need to understand there has to be very quick कि अरे यार इसके 2 साल अलग अलग, इसका मतलब है NPV is not the final answer, EAV is the final answer. By the way, EAV का फॉर्मूला आपको पता रहेगा, it is NPV divided by cumulative discounting factor for life of the project. I hope you know this, okay? जिसका EAV अच्छा है, जिसका EAV अच्छा है, that अच्छा है मतलब जिसका ज्यादा है, वो आप उसको select करोगे. Gayatri, what you want me to repeat? Please tell me. Gayatri, what you want me to repeat? Please tell me. Important. These are all important concepts, huh? These are all finishing points where you can go wrong in your capital budgeting. This is what we have done, okay? Before I jump on to the questions, okay? अच्छा, one more thing. EAV का हो गया concept, और एक बात सुनो. Sir, अभी एक फटाक से गो थ्रू करते सर फॉर्मूलास का पेबैक पीरियड। सर पेबैक पीरियड का आंसर इयर्स और मंथ्स में आएगा, एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज वेरी कंफर्टेबल ओवर दैट। इन पेबैक पीरियड यू नीड टू वॉच टू थिंग्स, वेदर इट इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो और नॉट। कांस्टेंट अर्थ क्या है कि भैया 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपए मेरा इनफ्लो आ रहा है, तो 2 साल में पैसा रिकवर होगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट कैश। 5 साल में मतलब 2 साल में 5 लाख रुपए आएंगे, बट इफ द कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट, आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट, ओके? आई एम नॉट गोइंग टू दैट। Next is discounted payback. That is more sensible method rather than your normal payback period. Okay. Next NPV, present value of cash inflow minus outflow. Deciding criteria is 0. उसके ऊपर होना चाहिए. Next comes your this profitability index. Important, huh? Present value of cash inflow. Present value of cash inflow upon outflow. Pay attention, please. Okay, sir. Profitability index is also called as desirability factor. ये भी लिख सकते हैं आप, शायद से लिखा है आपने। This is also called as desirability factor because at one point of time they asked desirability factor, everybody went blank. तो समझा नहीं इसका मतलब क्या? उसका मतलब PI है. Don't get confused over there, okay? अच्छा, one more thing, sir. Profitability index का और एक फॉर्मूला था जो आपने लिख के दिया था, वो भी हमको प्लीज बताएंगे यहाँ पे। तो भाई साहब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे लिख सकता हूँ मैं? आई कैन राइट NPV प्लस आउटफ्लो, NPV प्लस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। प्लीज ये लिखेंगे आप, प्लीज राइट डाउन दिस, ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अच्छा गायत्री, आई टेल यू द कंसेप्ट। अभी 1 मिनट बोलता हूँ मैं, ये लिखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, so Gayatri wants this wala concept. I'll repeat it again. So Gayatri, pay attention. I'll tell you in a very short manner, quick manner, okay? If in the question, if they are mentioning it is a existing company, इसका यही मतलब है कि भाई साहब ये एक कंपनी है और भी कंपनी एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कंपनीज है, अम्ब्रेला ऑफ कंपनीज। सो व्हाट हैपेंस इज, अपन जिस कंपनी का एनपीवी निकाल रहे हैं, अगर वहां पे आपके सीफैक्ट के टेबल में अगर लॉस आता है, इफ लॉस इज देयर, ये जब हम पीबीटी करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें लॉस आ गया है, तो लॉस है तो क्या करने का फिर? तो भाई साहब आप अगर एग्जिस्टिंग है तो आप वो लॉस लेके दूसरे कंपनी में जाके सेटअप कर सकते हैं, और ना कि इसी कंपनी में। म्हणजे इथं काय हात लावायचं नाही तुमच्या स्टेटमेंटला, जिस साल का जो प्रॉफिट है आपको उसको टैक्स निकालना पड़ेगा। मतलब इसका एग्जांपल सुन भाई, एग्जांपल सुन। 1 2 3 4 आणि 5, ठीक आहे? मी सगळं सॉल्व केलं आणि माझं पीबीटी आलं। पीबीटी म्हणजे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके? यहाँ पे मुझे 20 लाख का लॉस हुआ, यहाँ पे मुझे 50 लाख का प्रॉफिट, 100 लाख का प्रॉफिट, 150 का और 250 का। नाउ सी व्हाट इज द पॉइंट, यानंतर मला टैक्स काढायचा असतं, पीबीटी के बाद टैक्स निकालना पड़ता है मुझे। अरे टैक्स के समय मेरा दिमाग किसे चलेगा? अभी एक काम करता हूँ, नेक्स्ट ईयर में मुझे प्रॉफिट हुआ है,
तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये तो मेरा ही कंपनी लॉस हुआ है मुझे यहाँ पे, तो मैं ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। मतलब मैं जो नेक्स्ट साल का जब टैक्स निकालूंगा तो 50 में से मैं 20 माइनस करूंगा, 50 माइनस 20 और फिर मैं टैक्स नहीं। ये कब नहीं चलेगा? अगर आपका एग्जिस्टिंग कंपनी है तो, अगर आपका एग्जिस्टिंग कंपनी है तो, अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, ऐसे अपन मान के चलते हैं कि ये लॉस जाके दूसरे कंपनी में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा और तुम नॉर्मल टैक्स निकालो यहाँ पे जो भी रहेगा। हाँ, अगर न्यू कंपनी है, तो उसमें ये यूज करेंगे कि ये जो लॉस है वो आगे जाके सेटअप होगा, म्हणजे जर न्यू कंपनी असतं मी काय केलं असतं, 50 मायनस 20 केलं असतं आणि मग मी टॅक्स काढला असता, समजलं? डिड यू अंडरस्टँड दिस बॉयज एंड गर्ल्स एवरीबॉडी? ये लिखा तुमने, ये कुठे गेलं, कुठे गेलं, ये तुम्ही लिहिलं का? ये लिहिलं का आपने, पीए वगैरह सब कुछ ऑल ओके? चला चला, पे अटेंशन एवरीबॉडी एवरीबॉडी. चला थोडंफार जरा, थोडंफार थोडेफार आपण काहीतरी करूया का, थोडंफार. चला, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आहे, खतरनाक. चला, can we start this, boys and girls? Everybody ready? Everybody ready? I want everybody to pay complete attention, full focus है, full attention चाहिए. और मैं आपको और एक सजेशन देता हूँ. सजेशन ऐसा है, whenever capital building question is there in your, which will be there only, please don't read 3-4 times. आपका टाइम वेस्ट हो रहा है and they want the same thing. So whenever you're reading ना, read it very properly. एक दो बार रीडिंग ठीक है, और जो 3-4-5 बार रीडिंग मत करो उसको. जब पहले बार रीडिंग करोगे ना, उसी समय आप क्या करो, उसको हाईलाइट करो और देखो कि उसको क्या क्या मल्टीप्लाई, ठीक है? So can we start please everybody? HCP Limited is a leading manufacturer of railway parts for passenger coaches and freight wagons. Due to high wastage of material and quality issues in production, the general manager of the company is considering the replacement of machine A. Oh my God, sir. ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, हाँ जी ये रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है. एंड एवरीबडी हैज टू बी वेरी मच इन द जोन. आपको जोन में रहने का, प्लीज ध्यान देंगे आप, एवरीबडी पे अटेंशन. विद अ न्यू सीएनसी मशीन बी, अच्छा वो रिप्लेस करने का भाई, न्यू मशीन लेके आने का बी का. मशीन है हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 4,80,000. वो मशीन बी का अभी का वैल्यू कितना है, 4,80,000, ठीक है. रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ इज हाउ मच, 6 years, नो प्रॉब्लम. इट कुड बी सोल्ड नाउ एट 1,80,000. ओ माय गॉड सर, एक मिनट सर, ये जो 1,80,000 आप बोल रहे हैं, 1,80,000 आप देख सकते हैं आपकी बुक में, ये 1,80,000 सर अभी का स्क्रैप वैल्यू है, अभी का मतलब अगर मैं उसका अभी बेचेंगे तो आपको 1,80,000 मिलेगा. सर उस ओल्ड वाले मशीन का लाइफ 6 साल है, बट 6 साल के एंड में उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है. यहाँ पे सीधा क्लियर कट मेंशन है, जीरो सैल्वेज वैल्यू एंड ऑफ 6 year. आई होप दिस इज गोइंग इन योर हेड, पे अटेंशन. The purchase price of machine B, that is a new machine, is 24 lakh rupees. यहाँ पे लिखूं मैं भाई साहब, यहाँ पे लिखूं मैं, cost of new machine, cost of, तुम्ही पण लिहू शकता, प्लीज स्टार्ट राइटिंग डाउन. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है सर, 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपीज सर, 24 लाख रुपीज. ओके सर, ओके. इसका भी लाइफ कितना रहेगा, अरे वो 6 साल रहेगा भाई, वो सेम ही रहता है, तो टेबल कैसे बनाओगे फिर. नेक्स्ट, it will require 1,40,000 for installation as per your AS10 PPE, property plant equipment, any expenditure, any cost with the fixed asset with the plant is to be capitalized. तो आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, 1,40,000 ऐड करना पड़ेगा. Add 1,40,000. I hope everybody is paying attention, boys and girls. And 60,000 for testing. काही विषय नहीं. Add टेस्टिंग का कितना रहेगा भाई, 60,000 रुपए, ठीक है. चलो, subsidy of 15% on the purchase price of machine B will be received from the government at the end of first year. End of zero नहीं बोला, end of first year. सर हाँ काय विषय है सर, सब्सिडी. अरे कोई बात नहीं, तुमको सब्सिडी, अच्छा सब्सिडी आउटफ्लो है क्या, इनफ्लो है सर, इनफ्लो है, पैसा आने वाला है सरकार से. तो ये कब मिलने वाला है आपको सर, फर्स्ट ईयर के एंड में. नो प्लीज पे अटेंशन, अगर आपका ध्यान है ना, 2 मिनट यहाँ पे देखेंगे आप प्लीज. आप इससे 2 एडजस्टमेंट कर सकते हैं. एक, आप जब स्टेप 1 में व्हेन यू विल कंप्यूट इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, आप तभी माइनस कर सकते हैं, बट माइनस करते वक्त एक चीज दिमाग में डालो, तुमको पैसा 1 साल के एंड में मिलने वाला है. तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, सर इसका डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा अपने को. हाँ, तो अगर आप स्टेप 1 में इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, आपको पता है अपन कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लेस ये क्या हो, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन और लेस सब्सिडी भी तुमको करना पड़ेगा. बट सब्सिडी का वैल्यू कौन सा रहेगा भाई, 1 साल के एंड वाला, डिस्काउंट करके आपको करना पड़ेगा. सिंपल यार, डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई, सिंपल विषय.
ये आपको नहीं करना है। जब तो ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, डायरेक्टली क्या करो, आपके एनपीवी स्टेटमेंट में 0 1 और एक 1 डालो, उसमें 1 डाल के रखो, इन्फो डाल दो उसमें अंदर। समझ में आ रहा है क्या आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी। सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर विल बी 3,20,000। ये किसका सैल्वेज वैल्यू है भाई? ये न्यू मशीन का सैल्वेज वैल्यू है। तो अपन जब वो स्टेटमेंट बनाएंगे ना इसका सीफेट का, उस पर इंक्रीमेंटल स्क्रैप रहेगा, तो उसमें 3,20,000 माइनस 0, बिकॉज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज 0 ओनली। ओके, चलो सर और क्या दिया? हो गया अभी क्वेश्चन, और कितना दिया इन लोगों ने? तो नेक्स्ट क्या है? जनरल मैनेजर एस्टिमेट्स। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन अभी तो तुमको रेवेन्यू का भी दिया है, सीफेट बनने के लिए तुमको रेवेन्यू चाहिए ना ऊपर। चलो sorry. The general manager estimates that the annual savings due to installation of machine B include reduction of 3 skilled workers with annual salaries of 1,60,000 each. क्या बात कर रहे हो सर? ये बहुत अच्छा बात है सर। तो ये बात कर रहे हैं कि जब नया मशीन तुम लेके आओगे ना, तो भाई साहब सैलरीज जो है, जो ये 3 स्किल्ड है, वो कम हो जाएंगे, बस मशीन काम करेगा ना। ये लोग घर को निकाल रहे हैं, किसको? ये वर्कर्स को। तो इनका सैलरी कितना था? 1,60,000 इंटू 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,04,000। सर ये क्या है 5,04,000? ये तीनों जन का सैलरी मिला के, ठीक है। 4,80,000 फ्रॉम रेड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड डिफेक्टिव्स। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4,80,000 हे माझे पैसे वाचणार है। एंड 3,50,000 फ्रॉम लॉस इन सेल्स ड्यू टू डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ परचेस ऑर्डर। 3.5 लाख का भी मुझे फायदा होने वाला है, बिकॉज जब आदमी लोग काम करते थे तो ये डिले होता था ऑर्डर में। अभी मशीन आने वाला है भाई, तो 3.5 लाख मेरा बचने वाला है, ठीक है। Operation of machine B will require the services of a trained technician with annual salary। अरे देवाओ, क्या बात कर रहे हैं सर? नया मशीन तो लेके आएंगे सर, अच्छी बात है, बट उसको मेंटेनेंस भी तो है सर। वो मेंटेन करने के लिए आदमी रखना पड़ेगा। वो आदमी का पैसा कितना देखो, सैलरी ऑफ 3,90,000, ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3,90,000। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। एंड द एनुअल ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 1,54,000। पक्का बढ़ना। कंपनी का टैक्स 30% है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%, जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। हाँ, क्वेश्चन आपल्याला टॉप टू बॉटम करायचा है सगळा, स्टार्ट स्टेप 1 से लेके एनपीवी के एंड तक आपका आंसर मैच होना चाहिए। वन फुल क्वेश्चन ऑफ रिप्लेसमेंट। Company follows straight line method of depreciation. Good. Ignore tax savings on loss due to sale of existing. Oh my God. क्या लिखा देखो यहाँ पे? ओए पब्लिक, लक्ष्य क्या लिखा है? इग्नोर कर रहे, वो बोले इग्नोर कर दो। अगर ये नहीं होता तो मुझे कंप्यूट करना पड़ता, फिर क्या सेविंग्स वाला कंसेप्ट। तो ये इसमें क्या बोलेगी भाई, वो तुम छोड़ दो, बाकी सब कुछ छोड़ो, कोई बात नहीं, कर देंगे। जब इन लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर देते तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, तुम तुम्हारे कैलकुलेशन मत करो। ओके, ये क्यों देते हैं वो लोग? ताकि एक आंसर में यूनिफॉर्मिटी रहे सब जगह। सर ये सब ठीक है, करना क्या है? कैलकुलेट एनपीवी एंड पीआई, दो चीज निकालना है आपको। अंडर व्हाट डिसीजन? दिस रिप्लेसमेंट। तो इंक्रीमेंटल मेथड से करेंगे, और लास्ट में क्या करना है आपको? डिस्काउंटेड पे। बात क्वेश्चन है, अरे भारी क्वेश्चन है, आई होप आप भी करेंगे मेरे साथ। कैन वी स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स? एवरीबॉडी रेडी? प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड द एंटायर क्वेश्चन? में बहुत स्लो गया है क्वेश्चन में, मतलब सब पढ़ा मैंने। आई होप यू हैव रिटन डाउन समथिंग, स्क्रिबल्ड डाउन समथिंग इन योर बुक। Everybody give me a yes or no, can we start this? मतलब आदो तो आपने लिखा है यहाँ पे कुछ कुछ, तो एक एक करेंगे, ठीक है। सर सर सर, सबसे पहले आपका आएगा स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, ठीक है, शुरू करेंगे अपन। एवरीबॉडी, हे लिहायचं आहे तुम्हाला, लिहायचं आहे, किती वेळ लागू द्या, आपल्याला लिहायचं आहे आज। पर्टिकुलर्स रुपीस, ओके एवरीबॉडी, ओके। चल कैसे करना है, आपने बहुत बार किया क्लास में। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल वैल्यू, ठीक है। चलो पे अटेंशन प्लीज। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, दैट इज वो बी वाला मशीन। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना कॉस्ट था भाई उसका? ढूंढना पड़ेगा अभी अपने को, कहाँ पे गया वो? 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपीज, 24 लाख रुपीज, कम ऑन एवरीबॉडी, 24 लाख रुपीज। अच्छा, जब मैं नया मशीन खरीदने जा रहा हूं, अगर मैं इंक्रीमेंटल मेथड यूज कर रहा हूं, तो व्हाट आई हैव टू डू? सर जो पड़ा हुआ है तुम्हारे यहाँ पे वो तो बेच दो ना उनको, वो क्या करोगे तुम लेके? तो हमेशा याद रखो, रिप्लेसमेंट के मेथड में ये स्टेप 1 यही होता है हमेशा। लेस सेल वैल्यू या स्क्रैप लिख सकते हो ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, सर कितना है? कुठे गेले ते,
हाँ 1,80,000 कितने का भाई? 1,80,000 का है, 1,80,000। तो जब मैं दुकान में जाऊंगा उसको कितना पैसा दूंगा मैं नेट? 24 लाख रुपए माइनस 1,80,000 कितना आता है ये भाई साहब? 22,20,000। क्या तुम्हारी आंसर आएगा? हम चेक करेंगे 22,20,000 क्या आपका आंसर आया है क्या? यस और नो, यस और नो। 22,20,000 का आपका आंसर आया है क्या? कॉस्ट कितनी है? ए टेलर स्विफ्ट, ए टेलर स्विफ्ट, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? कितना लिखा है यहाँ पे? 24 लाख रुपीज लिखा है। क्या लिखे वहां पे? 26 लाख रुपए। आहे ना सगळं ठीक? व्यवस्थित आहे ना सगळं? सर पण सर हमको ऐसा लगता है कि इसमें सर खर्चा भी है ना, और ये तो हो गया सर। अभी इसमें अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा? जब मशीन तुम लेके आओगे ये तो ठीक है, और उसका वो टेस्टिंग वाला खर्चा, इंस्टॉलेशन वाला खर्चा वो भी तो जाएगा ना, पैसा आउटफो है आपका। सो ऐड इंस्टॉलेशन, ऐड इंस्टॉलेशन प्लस टेस्टिंग, प्लस टेस्टिंग। अच्छा इंस्टॉलेशन कितना चेक करेंगे एक बार प्लीज? 1,40,000 और 60,000। सब लोग ध्यान देंगे प्लीज। 1,40,000 फिर 60,000। ये समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है आपको? ओ आंबेकर थांबा ना 2 मिनिटं, थांबा, करतोय आपण सगळं, 2 मिनिट्स। 1,40,000 एंड 60। ओके सर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट और क्या करना है अपने को? सर ये होने के बाद अपने को लेस करना है इसका सब्सिडी। आपको लेस करना है इसका सब्सिडी। और मैंने आपको क्या बताया? आई होप यू अंडरस्टूड सब्सिडी। सब्सिडी आपको मिलने वाला है 1 साल के बाद। तो उसका डिस्काउंटिंग करके जो ऑलरेडी दिया है उन लोगों ने डिस्काउंट, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप इसमें माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका माइनस में जाएगा। कितना है मुझे बताएंगे आप प्लीज? सर सब्सिडी यहाँ पे मेंशन किया इन लोगों ने, कुठे गेलं सब्सिडी? कुठे गेलं? सब्सिडी कुठे गेलं? सब्सिडी कुठे आहे? सब्सिडी ऑफ 15% ऑन द परचेस प्राइस ऑफ मशीन बी। एक बघू यांनी कशावर काढलंय। ठीक है, डायरेक्ट 24 लाख पर काट लिया लोगों ने। सब्सिडी कैसे निकालेंगे अपन? 24 लाख के ऊपर इंटू 15% इंटू इंटू वो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा ना। तो डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे दिया है उन्हें, कहाँ पे दिया है? ये फर्स्ट का डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 0.877। 0.877 मतलब we are discounting the value which is being going to receive after end of 1 year। 0.877 sala, can you please tell me how much is the figure? 24 lakh into 15% into 0.877, how much is this? 3,15,720। is this all okay? तो भाई साहब पहले 0 ईयर में तुम्हारे जेब में से कितना पैसा बाहर जा रहा है? 0 ईयर में तुम्हारे जेब में से कितना पैसा बाहर जा रहा है? आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू। ओके सर 24 लाख रुपए का वो था मशीन, माइनस जो कबाड़ खाने में था वो दे दिया उसको मैंने, प्लस उसका इंस्टॉलेशन प्लस 60,000 और माइनस 3,15,720 जो किसका मेहरबानी है? सरकार का। ये सरकार से आज बैठक है ना आजाद मैदान पर, सरकार से याद है मुझे। कितना है भाई? इज योर आंसर दिस? 21,04,280। 21,04,280। गिव मी अ yes or no if you have got this answer। मतलब पटकन yes किंवा no सांगा if you have got this answer। give me a yes or no fast। sorry, if you got this answer, everybody 21 lakh 4,280। has everybody got this answer? has everybody got this answer? fast। एक नंबर। अरे रिप्लेसमेंट असल्या तरी यांना झोपेत पण यायला पाहिजे, अहो झोपेत यायला पाहिजे, एवढं सोपं आहे। और हमेशा याद रखोगे ये सेम ही क्वेश्चंस है, सेम टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, एज एवरीबडी गॉट द आंसर, रेस्ट ऑफ द पब्लिक इज इट 21,04,280? आपको समझ में? व्हाट डिड वी डू एग्जैक्टली? सर वी हैव गॉट इट एकदम मक्खन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ कर लिया हमारा, तोड़ो। अच्छा फिर स्टेप नंबर 2 पिक्चर में आएगा भाई, स्टेप नंबर 2। अच्छा बताएंगे स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? स्टेप 2 में सर स्टेप 2 हमको इंक्रीमेंटल सीफैट निकालना है। बट वन सेक बिफोर यू इवन जंप ओवर देयर प्लीज कंप्यूट द डेप्रिसिएशन, बिकॉज जब आप सीफैट निकालोगे उसमें एक डेप्रिसिएशन का लाइन भी आएगा, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे अच्छा क्या करो, पहले डेप्रिसिएशन निकालो। फर्स्ट राइट ऑन डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल
डेप्रिसिएशन अभी कुछ दिया नहीं है उन लोगों ने, तो हम यही अज्यूम करेंगे वो सेम ब्लॉक ऑफ एसेट ही है। एंड आई होप दे हैव रिटन ओवर देयर व्हाट कंपनीज फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन method of depreciation. Company is following straight line method of depreciation. Now please pay attention. See, अच्छा इन्होंने क्या किया अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग मशीन कितने साल का था वो, उसका बुक करा था कितना 4,80,000। ठीक है वन थिंग, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में अगर मैं ओल्ड मशीन का निकालता हूँ, 1 सेकंड, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना था इसका, 4,80,000 divided by 6. This is 80,000. This is 80,000 depreciation. Okay. न्यू मशीन, अच्छा न्यू मशीन के लिए मुझे एज पर AS10 क्या करना पड़ेगा, एज पर AS10 आई हैव टू टेक द कॉस्ट द होल थिंग, बेसिकली मुझे ये सब कुछ देना पड़ेगा जो आपने जस्ट किया था यहाँ। तो क्या क्या था मुझे मतलब 24 लाख था, उसके बाद क्या ऐड किया था आपने 1,40,000 का इंस्टॉलेशन, 60,000 उसका टेस्टिंग था, इसके बाद सब्सिडी अपने को मिला था 3,60,000 का, और सैलरी होता 3,20,000, 19,20,000 का ये था। अच्छा बाय द वे आप जब डेप्रिशिएट निकाल रहे हो मेक श्योर कि उसमें आप डिस्काउंटिंग ऐड नहीं करते, आप सिर्फ स्टेप 1 में डिस्काउंटिंग ऐड करो, ना कि डेप्रिशिएशन। सो न्यू मशीन का आपका कॉस्ट कितना था, 24 लाख रुपीस था, इसमें ऐड किया तुमने इंस्टॉलेशन, दैट वाज कितना था वो इंस्टॉलेशन रे भाई साहब, 1,40,000 1,40,000 प्लस टेस्टिंग 60,000, फिर माइनस सब्सिडी एंड माइनस स्क्रैप, जो ग्रॉस फिगर है वही आपको लेने हैं, 15% ऑन 24 lakhs, दिस इज 3,60,000, दिस इज 3,60,000, 3,60,000, I was just crossing the figures, 3,60,000 और स्क्रैप कितना था एट द एंड 3,20,000, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं करना, इसमें डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। कॉस्ट कितना आता है भाई साहब, 24 लाख, 1,40,000, 60,000 माइनस 360 माइनस 3,20,000, 19,20,000, and the new machine also for 6 years, so 19,20,000 divided by 6 कितना आता है ये, 3,20,000, 3,20,000। जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे अपन तो न्यू माइनस ओल्ड, तो आपको जब सीफैट में करेंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी द लेस, कितना था इसका लेस, 3,20,000 माइनस 80,000, तो ये आता है 2,40,000। ओके ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेयर इज माय वर्किंग नोट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो देयरफॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने अज्यूम यही किया कि जो कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, so both the machines do not belong to same block of asset, please write down this line in your book, both the machines do not belong to same block of asset, incremental depreciation is equal to 3,20,000 minus 3,20,000 माइनस, मतलब आपने न्यू का निकाला ओल्ड का भी निकाला, 3,20,000 माइनस 80,000 कितना आ जाएगा रुपीस, 2,40,000 will be the incremental depreciation. Okay, now please pay attention, जब सीफैट बनाएंगे इंपॉर्टेंट है, यहां तक तुमको समझा के पहले बताओ मुझे, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन, डोंट जस्ट कॉपी डाउन व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आपको समझा है कि एवरीबॉडी एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा क्या वो बताओ, स्टेप 1 स्टेप 2, अभी स्टेप 3 करेंगे अपन इंक्रीमेंटल सीफैट, फॉर इंक्रीमेंटल सीफैट रेवेन्यू चाहिए जो ऑलरेडी अपन ने लिखा था साइड में, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, प्लीज गिव मी अ यस और नो फर्स्ट, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, गिव मी अ यस और नो, ये तुमको समझ में आ रही है ये सब स्टेप्स, फिर हम आंसर देंगे मुझे, देन आई विल गो अहेड, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर फास्ट, चला सगळ्यांनी लवकर उत्तर द्या, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड, गिव मी अ यस और नो, इफ इट इज अ यस आई विल गो अहेड इमीडिएटली, ओके सर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3 इंक्रीमेंटल सीफैट, अच्छा और एक बात, why does it not belong to same block of asset, Chitra Ambekar, it is not given in the question, even I assume the same thing in the first, मुझे भी लगा कि वो same block of asset है, when I saw the answer it was not like that, मैं वही बोल रहा हूँ, because अगर वो लिखने का था ना
तो लिखेगा तो वो लिखते हैं वहां पे सेम ब्लॉक ऑफ असेट। तो आई अज्यूम, लेकिन अज्यूम आप अज्यूम कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इफ यू अज्यूम दैट थिंग देन आपका डेप्रिसिएशन जो है ना वो इस पे आएगा, किस पे आएगा, 21,04,280 डिवाइड बाय 6, इट विल कम 3,50,713। मैं आपको वो भी लिख के दे रहा हूं यार, एक बार वापस रिपीट करता हूं। अगर आपको अज्यूम करना है सेम ब्लॉक ऑफ असेट, लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में कुछ अज्यूम ही नहीं है, देखो लिखा नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट बिलोंग टू सेम ब्लॉक ऑफ असेट, यू कैन डू इन दैट वे आल्सो। इफ दैट केस इज देयर, आपका डेप्रिसिएशन सीधा स्टेप 1 के अमाउंट पे आता है, एंड दैट इज हाउ मच, 3,50,713। बट इंस्टीट्यूट इज देयर, आई एम फॉलोइंग द इंस्टीट्यूट पैटर्न, तो उन्होंने यही बोला कि वहां पे कुछ लिखा नहीं है, तो हमने अज्यूम नहीं किया है कुछ। दैट इज व्हाई वी हैव कंप्यूटेड द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। यस और नो, यस और नो। Will they mention about machinery in same block? Yes, उनको mention करो, mention करेंगे वो, there is no problem there. Step number 3, incremental C fact. Incremental C fact. अच्छा, और एक बात सुनो, 6 years is the life, 6 years is the life. Don't make columns of 6 years. Pay attention please. This will save your time. अगर WDV method है, then only the columns will come. Because कैसे होता है, every year depreciation अलग अलग रहेगा भाई साहब, इसमें SLM depreciation ही है, every year it is going to be same, number 1. number 2, जो रेवेन्यू दिया ना वो भी एक ही है, मतलब सेम थिंग इज गोना हैपन फॉर 6 years. सो सीधा क्या करेंगे आप इंक्रीमेंटल सीफैट में, यू विल डू डायरेक्टली व्हाट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। आई होप यू हैव गॉट इट। तो आप क्या करेंगे पता है क्या, पर्टिकुलर्स और 6 साल बनाएंगे साइड में, मतलब आंसर बराबर ही रहेगा बट टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ में, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, पर्टिकुलर रुपीस। अच्छा प्लीज टेल मी वन थिंग, हाउ मच इज द सेविंग्स, शायद से आपने यहाँ पे बनाया, देखो ये सब कुछ किया आपने यहाँ पे। सर द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, reduction of annual salaries, you write it over here, where's my working note, reduction of salaries, reduction of salaries, it was I think 1,68,000 for 3, 1,68,000 for 3, 5,04,000, 5,04,000, 5,04,000, ओके ये होता है। उसके बाद क्या हुआ था भाई साहब, उसके बाद ये हुआ था reduce wastage of material, reduce reduction in wastage of material, ये कितना है, how much is this, this is 4,80,000, this is how much, 4,80,000, 4,80,000, I hope you're writing this, I hope you're writing this. Next, so और कुछ ऐड करना है इसमें, हाँ जी और भी ऐड करना है इसमें, if you go over here it is how much sir, loss in sales, reduction in loss in sales, reduction in loss sales, इसका फिगर कितना है, how much is this figure, 3,50,000, this is 3,50,000, 3,50,000, okay now और कुछ सेव किया इन लोगों ने, और कुछ सेव किया सर आफ्टर दिस, ये इनका ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी है, वन इज योर एनुअल सैलरी एंड द अदर इज एनुअल ऑपरेटिंग मेंटेनेंस, लेस 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 एनुअल सैलरी एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस, ओके ये कितना चेक करेंगे एक बार अपन, इट इज 3,90,000 एंड 1,54,000, 3,90,000 एंड 1,54,000, ये माइनस होगा 3,90,000 एंड 1,54,000, ओके आई होप यू राइटिंग दिस, आई होप यू राइटिंग दिस। तभी आपको समझ में आया वो कंसेप्ट, चित्र आपको समझ में आया वो कंसेप्ट, यस और नो, हैव यू गॉट दैट कंसेप्ट, यस और नो, चला 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 कुठे गेला आपलं टोटल, कुठे टोटल टोटल टोटल, चला हे किती येते बघा जरा भाई साहब, 5,04,000, 4,80,000, 3,50,000 माइनस 3,90,000 माइनस 1,54,000, 7,90,000, 7,90,000, ओके नाउ इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज हाउ मच, दैट इज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 2,40,000, 2,40,000, इसके बाद ये आपका आ गया पीबीटी, ये आपका आ गया पीबीटी माइनस 2,40,000, दिस इज 5 लाख
50,000. If this is your PBT, less tax, tax is how much? Tax कहाँ पे दिया है? 1 second. 30%. Tax is 30%. Tax at the rate 30%. कितना था चेक करेंगे एक बार प्लीज? 30%. 1,65,000. 3,85,000 is my profit after tax. इसका profit after tax. इसके बाद आप क्या ऐड करेंगे? Add back depreciation, that is 2,40,000. और मेरे हिसाब से आपका CFAT चेक भी करेंगे अपन इंश्योर के आंसर के साथ, वो आना चाहिए 3,85,000 प्लस 2,40,000, 6,25,000 आपका CFAT आना चाहिए आफ्टर द एंटायर वर्किंग नोट. 6,25,000 शुड बी योर CFAT. क्रॉस चेक करेंगे एक बार. और आपका आंसर एकदम राइट है. ये पूरे वर्किंग नोट के बाद आपका ये आंसर मैच हो जाएगा, दैट इज 6,25,000. ओके एवरीबॉडी डन. अगर आपका ये हो गया रहेगा, वी कैन गो टुवर्ड्स द NPV, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. चलो कैन वी गो? हैज एवरीबॉडी गॉट 6,25,000 इन द बुक? हैज एवरीबॉडी गॉट 6,25,000 इन द बुक? सबका ये आ गया क्या? 6,25,000 रुपए? यस और नो? As please give me a yes or no. और क्या तुमको समझ में आ रहा है क्या? क्या तुमको समझ में आ रहा है? By the way, ये सब RTP के क्वेश्चन है. Jan 25, September 24, May 24, everything I have taken. So please, if you are solving this, अगर समझ में आ रहा है, please feel confident. It's a very big question, but it's very simple. Lengthy है but simple है भाई साहब. इसको ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है? 6,25,000 आ गया. तो भाई साहब आपके पास आउटफ्लो है, आपके पास CFAT है, आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है, एंड आपके पास लाइफ भी है. Can we go to NPV? Yes. 4 पिलर मैंने आपको पहले ही बताया. 4 पिलर आपके पास है, then only can go towards what? NPV. तभी आप जा सकते हैं NPV के पास. ओके यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे write it over here. Step number 4. क्या ये भाई साहब? Step number 4. Statement showing incremental NPV. एकदम सिंपल, बट मेक श्योर कि जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो आपको यूज करना है. यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू, फिर आपका वो सब्सिडी, वो सब कुछ यहाँ पे डालना है आपको. ठीक है, पे अटेंशन प्लीज. चलो ठीक है सर, इसका अपना ईयर, फिर आपका पर्टिकुलर्स. आई होप सगळ्यांना लिहायला लागले. नेक्स्ट कैश फ्लो. डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? डिस्काउंटिंग फैक्टर इसका डिस्काउंट कुठे गेला? 14%. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 14%. भाई साहब उन्होंने ऑलरेडी दिए हैं आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. और लास्ट में आपका DCF. ओके चलो, लास्ट में आपका DCF. एक क्वेश्चन करा व्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित करा, काही घाई करू नका. यू विल ओनली फील मोटिवेटेड. तुमको ये एकदम मोटिवेशन आएगा. तो ये बड़े क्वेश्चन है भाई साहब. ठीक है चलो. ठीक है ईयर. अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज योर NPV स्टेटमेंट. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ईयर जीरो. दिस इज योर इंक्रीमेंटल आउटफ्लो जो आपने फर्स्ट स्टेप पे निकाला. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द स्टेप 1? स्टेप 1 21,04,280. 21,04,280 ये 1 रहेगा. 21,04,280. एवरीबॉडी डन. फिर अच्छा, जो और एक चीज बताएंगे इसके बाद आपका ये कितना था? 1 to 6 आपका इंक्रीमेंटल CFAT कितना निकाला अपन ने? वेरी CFAT 6,25,000. 6,20,000 ये आपका इनफ्लो है. 6,25,000. तो 6 साल का आपको क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए. कुछ गलत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है उन लोगों ने, तो आपसे प्लस करना है. 0.877 प्लस 0.769, 0.675, 0.592, 0.519 एंड 0.456. 3.888. देखो आया क्या आपका? 3.888. कैसे होता है? कभी कभार अपन जब क्लास में करते हैं तो मेनी पीपल टेक 2 डिजिट 3 डिजिट, उसमें आंसर फ्लक्चुएट होता है, पर इसमें आपका नहीं होना चाहिए बिकॉज आपके डिस्काउंट फैक्टर सेम है. ठीक है 6,25,000 इंटू
6,25,000 into 3.88. 6,25,000 into 3.88. 24 lakh 30,000. 24 lakh 30,000. 24 lakh 30,000. Everybody 20 सबका आगे चेक करेंगे एक बार प्लीज. 24 lakh 30,000 everybody. फिर 6 ईयर में स्क्रैप भी आया है. अच्छा बाय द वे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये भी आपका इंक्रीमेंटल स्क्रैप है, बट डोंट गेट कंफ्यूज. मैं आपको पहले बताया वो जेके इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन भी अपन ने किया. इंक्रीमेंटल स्क्रैप इज न्यू मशीन का 6 ईयर का स्क्रैप माइनस ओल्ड मशीन का 6 ईयर का स्क्रैप. बट इन दिस क्वेश्चन ओल्ड मशीन का 6 ईयर का स्क्रैप दिया नहीं उन लोगों ने. दैट इज व्हाई वी आर ओनली टेकिंग द न्यू मशीन का स्क्रैप. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. इंक्रीमेंटल स्क्रैप कितना है भाई साहब? स्क्रैप कितना है? 3,20,000. Salvage value is 3,20,000. 3,20,000. Please take the discounting factor for the 6th year. कितना है भाई discounting factor 6th year का? 0.456. 0.456. 0.456. देखो कितना आता है इसका? 3,20,000 into 0.456. 1,45,920. Everybody okay till here? Is everybody okay till here? सबका यहाँ पे हुआ है क्या? Yes or no? बताएंगे मुझे आपका एनपीवी कितना आता है? 24,30,000 प्लस 145,920 माइनस 2104,280 4,71,640. 4,71,640. एवरीबडी गेटिंग दिस? एक बार क्रॉस चेक करेंगे अपन उनके साथ. हाँ वही आंसर है, तो वही चेक कर रहा था. 471,640 सबका आंसर आया क्या? एक बार यस और नो, यस और नो. 4,71,640. एवरीबडी यस और नो, एवरीबडी यस और नो. प्लीज गिव मी अ कमेंट वेदर यू हैव डिड यू गेट. सबको आंसर मिला है क्या? 4,71,640. क्या सबका आंसर आया है क्या? Has everybody got the answer? 4,71,640. But remember one thing, question में एक चीज पूछा नहीं है, 3 चीज पूछा उन लोगों ने. Okay, now if at all, अच्छा, has everybody got 4,71,640? Now if you have got 4,71,640, boss आपको PI निकाल के देना है. PI इसमें से निकलेगा. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे अपन, निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्लीज कंप्यूट PI and give it to me. Please compute PI and give it to me. Profitability index is equal to what? Is what? Sir, present value of cash inflow. Present value of cash inflow upon outflow. Present value of cash inflow तो सर यहाँ पे निकलेगा 24,30,000 प्लस 145,920. ये कितना आता है? 25,75,920 divided by outflow कितना है? 21,04,280. Can you please tell me what is the answer? 21,04,280. Sir 1.22 ऐसा आता है. जो तुम्हारा आया क्या? 1.22 everyone. Is it 1.22 everybody? Yes or no? Is it 1.22 everyone? अच्छा, what do you mean by this यार? What do you mean by 1.22? I think मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन नहीं किया था. 1.22 का मतलब यही होता है for every 1 rupee of outflow. For every 1 rupee of outflow, 1.22 inflow is coming in. For every 1 rupee of outflow, 1.22 is coming in. So it's a very good thing, boss. So as per see, there are lots of techniques in capital budgeting, and in every technique, your answer will differ. Every technique में आपका आंसर डिफर करेगा. So 1 point इस टेक्निक से अगर आप जाओगे PI के मेथड से, तो ऑब्वियसली आपका आंसर है C, because it is more than one. It is more than one. Are you understanding this? Everybody understand the logic of that? Okay. So we watching the answer the this institute. वही निकला. चलो खत्म हो गया. चलो अभी एक लास्ट है जो मैं आपको ही बताऊंगा, लाइक आपको ही बोलूंगा सॉल्व करने के लिए. ओके चलो, व्हाट इज दैट? एंड दैट इज वो आप होमवर्क को कर सकते हो. डिस्काउंटेड पेबैक तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर सकते हो. डिस्काउंटेड पेबैक के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको भाई साहब? डिस्काउंटेड पेबैक के लिए वेयर इज माय दिस, इतना वर्किंग नोट किया है, मस्त करे ना फोटो कहीं ले लेंगे. हाँ यहाँ पे, हाँ डिस्काउंटेड पेबैक के लिए. अच्छा तो निकाल दिया, अभी सब कुछ किया है अपन ने, वो लास्ट निकाल देते मिस करते हैं. डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक
द प्रॉब्लम क्या पता है इसमें, वैसे इंस्टीट्यूट कैसा है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इजी है, ये बहुत ही इजी है, बट आपका वो टाइम खाएगा, देखो टाइम कितना खाएगा ये, दैट इज वाई मैं आपको मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ, मैं आपको वही बोलूंगा कि मेक श्योर इफ कैपिटल बजटिंग इज देयर यू सॉल्व द एंटायर पेपर, बाकी सब पेपर सॉल्व करो, लक्ष द्या माझ्याकडे सगळ्यांनी, सगळा पेपर सॉल्व करा आणि शेवटी हा प्रश्नावर या कैपिटल बजटिंग पर, बिकॉज इससे आपको बोलता हूँ क्या होगा, अगर आप ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे ना, ये वाला एग्जाम में, आप 1 घंटा तो इसमें रहोगे, मैं आपको ओपन बोला, ओपन कितनी प्रैक्टिस के लिए आंसर, मतलब टाइम जाएगा भाई इसमें, आपको आएगा आंसर, तो फिर लास्ट में आपका पैनिक होगा, अरे यार वो लास्ट में क्वेश्चन मुझे आता था, आपको उल्टा ही करना है, आपको पहले बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है और लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से करो ये सॉल्व, काही प्रॉब्लेम नाही, स्टेप मार्क में तुम्हाला भेटेल, अर्धवट सोडला तरी, म्हणून मी म्हणतोय इसमें टाइम जाएगा, अभी देखो डिस्काउंट पे बैक पूछे, वो पे बैक भी पूछ सकते थे तुमको, और क्या पूछे डिस्काउंट पे बैक, अभी उनको पता है, उनको क्या पता है क्या, कि तुमने ऑलरेडी सीफैट सिर्फ 1 ही साल का निकाला है, अब तुम उसको डिस्काउंट भी किया नहीं है, बिकॉज तुम डिस्काउंट कैसे किया उसको लास्ट में ग्रुप में किया है, तो आपको ये डिस्काउंटेड पेबैक निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल ईयर का डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम जाने वाला है, समजून लागले का तुम्हाला, इनचे टॅक्टिक्स कसे असतात या लोकांचे, तो करूया आता, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भाई, 6,25,000 डिस्काउंट फैक्टर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 6,25,000, 6,25,000, 6,25, I light it, okay. डिस्काउंट फॅक्टर कुठे, डिस्काउंट फॅक्टर पट 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 सांगा मला, 0.877, 0.769, 0.877, 0.869, 0.769, सॉरी काय 0.769, 0.769, त्यानंतर काय भाई, तिसरं काय 0.675, 0.675, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 0.592, अच्छा पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करके आउटफ्लो प्रपोर्शन निकालना है, सो प्लीज स्टार्ट, नो वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी टू डू इट, 25,000 इनटू पॉइंट, फिर डिस्काउंट भी चले ना, डिस्काउंट तो करना पड़ेगा पहले अपने का, फिर क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा उसका, 5,48,125, और इसका बाद में क्यूमुलेटिव 125, 6,25,000 इंटू 0.769, इसका कितना आता है 4,80,625 प्लस 548,125, 10,28,750, ये मत भूलो कि आपका आउटफ्लो कितना है, तुम्ही त्याच्या पुढे जाशील, आउटफ्लो कितना है आपका, पुढे आउटफ्लो 21,04,280, 21,04,280, ये तो लिहून, दिस इज ओनली फॉर माय रेफरेंस, ओके, so that we need to know ना where to stop in that table, चलो इसके बाद 625,000 into 0.675, ये कितना आता है भाई साहब, 4,21,875, प्लस कर देंगे इसको 10,28,750, कितना आता है 14,50,625, 14,50,725, नेक्स्ट 6,25,000 इंटू 0.592, ये कितना आता है 3,70,000, 3,70,000 प्लस 14,50,625, how much is this, 18,20,625, so do we need to go ahead, obviously yes, 21 लाख का आपका आउटफ्लो है, तो भाई और भी लिखना पड़ेगा आपको, 6,25,000 इंटू डिस्काउंट फैक्टर कितना है इसका 519, ये है 519, कितना आता है ये 6,25,000 इंटू 0.519, सॉल्व करो प्लीज, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आंसर रेडीमेड है वहां पे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ये ऐसा ऐसा करना है, पर मैं नहीं दिखा रहा आपको जानबूझ के, आपको अभी तक वो समझ में आना चाहिए बात, जितने भी आंसर्स है सब कुछ रेडी है वहां पे, आई कुड हैव जस्ट टेकन द पेन, आई कुड हैव जस्ट स्टार्टेड चेकिंग, ये देखो ये आंसर है, उसमें मजा नहीं आता है, उसमें से आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ ये सब इजी है तो अपन कर लेंगे, नहीं, आपको सच में करना पड़ेगा, आपको ये समझ में आएगी कितना टाइम जा रहा है, कितना तुम लोगों को मास्टरी किसमें है, आपको कहां पे आप गलती कर रहे हो, ये तभी समझेगा जब तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, 3,24,375 प्लस 18,20,625, 21,45,000, आता मला एक सांगा तुम्ही, शुड आई गो अबाउट 5 इयर्स, कुछ गरज नहीं, लिख सकते हैं पर कुछ गरज नहीं उसका,
बिकॉज ऑलरेडी आपका आउटफ्लो अभी कवर हो गया यहाँ पे। तो कैन आई से वन थिंग, आपका आंसर कहाँ पे इसके बीच में है? तो अपन जो नॉर्मल करते हैं भाई साहब, 12 मंथ्स में 3,24,375 कोरडे व्यवस्थित करा चुकतेच दरवेळी 2104 280 माइनस पिछला वाला करने का 18 20 625 कितना आता है? 2,83,655 क्वेश्चन मार्क इंटू 12 डिवाइड बाई 324,375 10.49। कैन आई से योर फुल आंसर कितना आ रहा है आपका? 4 years 10.49 months। I hope this you have got in your book। या आपल्याला आपल्या पुस्तकात हे उत्तर पाहिजे। क्रॉस चेक करते बराबर आहे का नाही, उड्या मारायचो बरोबर आहे। चला, अरे तो माती खाली का आपण? माती खाया है क्या कहाँ पे? 18 26 25 बरोबर है। एक मिनट, 2104 280 माइनस 18 20 625 divided by 12 divided by 324 4 years 10.94 10.4 months। Everybody getting the answer please? Yes or no? Has everybody got the answer? Yes or no? Has everybody got the answer? Give me yes or no। क्या आपका आंसर आया है क्या? फास्ट लवकर सांगा प्लीज मला, that we can go ahead, we can go ahead। wonderful question, beautiful question for you to revise the place। by the way इसमें अपन ये लिया नहीं है tax laws and all that because खुद ही नहीं बोल रहे थे, इग्नोर बहुत हम लोग। please tell me have you got the answer? Please tell me have you got the answer? Yes or no? Everybody? Yes, everybody getting the answer? Everybody getting the answer please? Yes, no? चला 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 लवकर लवकर, फटाफट फटाफट। चलो, we'll do one more question please, pay attention। So everyone लक्ष्य दे सकेंगे please। इसके बाद like after this capital building we will take working capital। okay, मैं working capital लूंगा इसके बाद, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? क्वेश्चन भारी वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, it's a very very interesting question, pay attention please। can I start reading everyone? I start reading, everybody has to be super active। okay, चलो। A company is considering the proposal to take up a new project which requires investment of 850 lakhs। okay, no problem, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया आउटफ्लो, एंड 150 lakhs इन वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या है सर? मैं 0 ईयर में उसको ऐड कर दूंगा और लास्ट में लाइफ के एंड में मैं उसको रिकवर कर दूंगा, ठीक है? Project is expected to yield the following cash flow before tax and depreciation over the next few years। very very important। इसका ये मतलब है कि टैक्स भी माइनस नहीं किए और डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं किए। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा ना, फिर टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और वापस एड बैक क्या करना पड़ेगा हमको? सर डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, चलो आगे जाएंगे अपन प्लीज। सर ये आपको क्या दिए? कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया है। Desired rate of return is 14%, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया। Assets must be depreciated on 20% on WDV basis। जो पहले वाला सम किया था उसमें SLM बेसिस था, ठीक है? Scrap value at the end of 5th year is 140 lakhs, no problem। Income tax is 20%। This is the only asset in the entire block। इसका मतलब क्या? अरे अरे अरे, इसका ये मतलब है कि भाई तेरे पूरे ब्लॉक में वो एक ही है, वो बंद ही करना है आपको। अभी देखो
तो इसका मतलब क्या है, तुमको ये क्यों दिया पता है क्या लाइन, तुमको समझ में आ रहा है कि लाइन इसलिए दिया ताकि तुम लास्ट में क्या निकालो, टॅक्स का सेव्हिंग निकालो, कारण तुमच्या ब्लॉकमध्ये काहीच नाही आहो, तुम्ही विकणार आहे सगळं ते. सो कैपिटल गेन टैक्स कितना है, 15% है भाई साहब. नॉर्मल इनकम टैक्स 20% है, तो तुम टैक्स सेविंग्स निकालोगे उसका 15% है, वो मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग है. नो प्रॉब्लम. सर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है क्या, नहीं भाई रिप्लेसमेंट हो गया ऊपर, ये अलग क्वेश्चन, ये नॉर्मल एक ही मशीन है उसमें. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट and advise the management to take appropriate decision. Okay. Also calculate the IRR and desirability factor. अगं भाई ग काय करायचं मला सांगा दादा. सर एनपीवी निकालना है, पीआई निकालना है, मतलब डिजायबिलिटी फैक्टर जो बोला है उन लोगों ने, और आईआरआर निकालना है, जिसके लिए तुम्हारे पास दो डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, म्हणजे दोन एनपीवी तुम्हाला पाहिजे. एवरीबडी ओके विद दिस? ओके. क्वेश्चन बहुत भारी है, आपके सामने डिस्काउंटिंग का टेबल भी दिया हुआ है. ठीक है, शुरू करेंगे अपन. कैन वी स्टार्ट विद दिस? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अरे द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज कैलकुलेट द स्टेप 1, दैट इज आउटफ्लो. करेंगे फटाफट, उसके बाद डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे और फिर सी फैक्ट. एवरीबडी फास्ट. चलो कर लो, पट 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 पट. computation of outflow, computation of outflow. तो बहुत सिंपल है आउटफ्लो सर. particulars and rupees, particulars and rupees. कितना पैसा आ रहा है सर? प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये लैक्स में है सब कुछ, ये लैक्स में है. ये 150 है ना शायद, ना कितना, सॉरी कितना है वो, 850, माय बैड, 850. इसके बाद ऐड वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कितना, ये वर्किंग कैपिटल भाई साहब कितना दिया इन लोगों ने, 150. एवरीबडी सर, और कुछ दिया इन लोगों ने यहाँ पे, काही दिलं नाही. चला लवकर, 850 अधिक 150 कितना आता है सर, ये 1000 लैक्स हो गया. 1000 लैक्स. एवरीबडी डूइंग दिस सर. ये आपका स्टेप 1 हो गया. आपका क्या हो गया, स्टेप नंबर 1. अभी स्टेप 2 क्या करना है अपने को, स्टेप नंबर 2 सर क्या करना है, सबसे पहले इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, नॉट इंक्रीमेंट, सॉरी माय बैड, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ताकि आपको वो अमाउंट रेडीमेड मिले आपके सी फैक्ट के टेबल में. सो कंप्यूटेशन ऑफ depreciation, WDV basis. ओके चलो. और टेल मी वन थिंग, 850 का आपका है, उसके बाद कितने साल का, ये 5 years का है. ठीक है. सो व्हाट विल डू इज वेरी सिंपल. अपन जब क्लास कर रहे तो क्लास में मैंने आपको एक स्टेटमेंट करके दिया था, आपको याद रहेगा वो क्या था स्टेटमेंट, ईयर, ओपनिंग WDV, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग WDV. इससे क्या होता है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्लोजिंग में आपका कितना बुक वैल्यू बाकी, तो आप लॉस निकाल सकते हो लास्ट. एवरीबॉडी चलो, ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना है, 1000. हाउ मच WDV यहाँ पे, कितना WDV, 20%, 20%. ये हो गया 200 लाख, 800. सेकेंड 800, 20%, 160. 800 minus 160, 640. Next third, 640 in 20%. We solve this, 640 into 20%, 128. 640 minus 128, 512. Fourth year, 512 in 20%, 102.4. कितना आता है, 512 minus 102.4, 409.6. कितने साल का है भाई साहब ये, अरे कितना था फर्स्ट डेप्रिसिएशन मेरा, वन सेकंड.
Why on earth have these guys? एक मिनट वाला 1000 minus into one sec, one sec, one sec, one sec, one sec, one sec. अरे 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 so sorry, so sorry, extremely sorry. अरे यार डेप्रिसिएशन अपन ने पूरे आउटफ्लो पे लिया, उसमें वर्किंग कैपिटल भी है ना यार. दिस इज प्लांट एंड मशीनरी ओवर हियर. ओ माय गॉड, बिग ब्लंडर. देखो ब्लंडर कितना किया बड़ा मैंने. आपने भी किया रहेगा वही सेम ब्लंडर अभी. बराबर है ना. डेप्रिसिएशन से प्लांट एंड मशीनरी आना मांगता अपन तो यही होता है फ्लो में. चक्कर चक्कर देखो 170 850 माइनस 170 कर लेगा तुम्हारा क्या वैल्यू इसकी 680. 680 यहाँ पे आएगा. 680 इंटू 20% 136. 680 माइनस 136 544. 544 into 20% 108.8. 544 minus 108.8 कितना आता है ये 435.2. 435.2 into 20% ये कितना आता है 87.04. डेसिमल भी लो, लैक्स में फिगर है. 435.2 minus 87.04 348.16 पांचवा 348.16. now लास्ट में into 20% 69.63. 69.63 minus, sorry 632, my bad. 348.16. 348.16 minus 69.632 278.528. क्या आपकी बुक में ये दिख रहा है क्या 278.528? एवरीवन यस और नो. 278.528 क्या आपकी बुक में दिख रहा है क्या? दैट इज द क्लोजिंग WDV. ओके नाउ ये आपके फिगर्स रेडी हो गए. दीज फिगर्स आर रेडी नाउ. दीज फिगर्स आप लेके जा सकते हैं सीधा कहाँ पे आपके सीफैट के टेबल में. और ये जो है ना ये 278.5 ये भी आपको काम में आएगा जब आप ये निकालेंगे क्या आपका लॉस ऑन सेल. ओके सबसे पहले काम करते हैं. सबसे पहले काम करते हैं स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 अपन निकालते हैं सीफैट स्टेटमेंट शोइंग. स्टेटमेंट showing CFAT. Statement showing CFAT. ओके अच्छा will you do only particular rupees? No sir. इसमें अलग अलग डेप्रिसिएशन है तो इसमें क्या होगा अलग अलग क्या होगा आपके साल आएंगे. ओके सबसे पहले आपके इसमें वैल्यूज भी दिए आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि अलग अलग वैल्यूज है. ठीक है सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. सो लिखेंगे पहले पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 and 5. Okay 1 2 3 4 and 5. Pay attention please everyone. I hope everybody is doing it with me. Okay ध्यान देंगे सब लोग please. चला चलो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो दिया है वही आपको लिखना पड़ेगा. सब लैक्स में फिगर्स है. ऑल दीस फिगर्स आर इन लैक्स. ये वाला लिखता हूं मैं सब लैक्स में फिगर्स है. ठीक है चलो लेट मी स्टार्ट दिस. कुठे गेलं 290 320 360 290 320 वही है ना फिगर भाई 360 नेक्स्ट 390 and 270 and 270. Everybody okay till here? Everybody okay? सब लोग लिख रहे हैं. एक नंबर लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपके पास फिगर्स रेडीमेड है. इसी वजह से टेबल बनाने का एकदम आपका काम इजी हो जाता है. 170 136 next you have 108.8 next 87.04 next 69.632 मक्खन easy.
चला 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 स्केल कुठे गेली आपली स्केल. चला चला चला. हाँ, अभी इसके बाद 290 माइनस 170, दिस इज 120. नेक्स्ट 320 माइनस 136, 184. 360 माइनस 108.8, 251.2. 390 minus 87.04, this is 302.96. 270 minus 69.62, 200.368. everybody okay till here? Everybody okay? Sir, this is profit before tax. अब इसमें आप क्या माइनस करेंगे भाई साहब? इसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे. इसमें आप क्या माइनस करेंगे? टैक्स. टैक्स कितना है? टैक्स दो है क्वेश्चन में, एक वो लॉस के लिए दिया है और एक नॉर्मल टैक्स के लिए दिया है. ठीक है, कुठे टैक्स कुठे है? टैक्स कुठे है? टैक्स यहाँ पे ये टैक्स 20% नॉर्मल टैक्स है और ये 15% वाला आपका कैपिटल लॉस है. 20% आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. 20% आपको माइनस करना. टैक्स एट द रेट 20%. ओके, चलो 120 माइनस 20%, 96. 184 माइनस 20%, 147.2. 251.2 माइनस 20%, 0.96. 302.96 minus 20%, 242.368. 200.368 minus 20%, 160.2944. ओके, ये क्या है आपका सर? ये आपका पैट. इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड बैक, यू हैव टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन, यू हैव टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन, और फिर आपका क्या निकलेगा बाहर? सी फैट. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच इज इट? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच इज इट? चलो, डेप्रिसिएशन ऊपर ही है, 170, 136, 108.8, 87.04, 69.632. Everybody with the answer, please. Fast. CFAT 96 plus 170, 266, 147.2 plus 136, 283.2, 200.96 plus 108.8, 309.76, 242.368, 87.04, 329.408, and next 160.2944 plus 69.632, 229.9264. Everybody getting this? Yes or no? या है कि आपके आंसर चेक करेंगे एक बार प्लीज. आर दीज आंसर्स देयर इन योर बुक? यस और नो? फास्ट. चलो, डन एवरीबॉडी. चलो, ये हो गया आपका. अभी इसके बाद स्टेप नंबर 4 करेंगे अपन. स्टेप नंबर 4 लॉस वाला करेंगे अपन. लॉस वाला ये हो गया. दिस इज स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4. अभी आपको क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ tax savings. Computation of tax savings, also called as tax shield. Don't get confused over there. Computation of tax savings and tax shield. Please make attention. Make sure that whenever you're doing this, you are taking the दूसरा वाला tax का rate 15% वाला. ठीक है, अब ये कैसे करना है? How you supposed to do this? It's very simple, boss. Okay, so सबसे पहले closing WDV कितना है? Closing WDV. How much is it going to be, boss? अपन ने खुद ही निकाला ना वो 278.528. 278.528. I hope I got the figure right now. 278. हाँ बराबर. चलो लेस. अभी मुझे एक बताएंगे प्लीज, बेचा कितने में है? बेचा कितने में? स्क्रैप कितना दिया यहाँ पे इन लोगों ने? चेक करना पड़ेगा मुझे. स्क्रैप वैल्यू इज 140 लाख. स्क्रैप इज 140. स्क्रैप इज 140. अरे यार बहुत कम में बेचा है यार. 278 लाख का तुम्हारा डब्ल्यूडब्ल्यू दिख रहा है और बेचा कितने में? 140 में. सेल वैल्यू 140. तो लॉस कितना हुआ है भाई साहब? लॉस ऑन सेल 278.528 माइनस 140. जोरदार लॉस हुआ है. 138.
528 lakhs. जोरदार एकदम कडक लॉस झालाय, कडक. एक मिनट, हाँ चला. अभी मुझे एक बताओ भाई, अगर 138.528 लाख का लॉस हुआ है तो इसके ऊपर आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर इसके ऊपर हमको पहले टैक्स का एडवांटेज निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे? टैक्स सेविंग्स कैसे निकालेंगे? 138.528 इंटू, मतलब टैक्स का झालं भाई साहब, हाँ, इंटू 15%, into 15%. So how much is it, boys and girls? 20.7792. क्या आपका ये आंसर आया है क्या? वो चेक करेंगे. क्या आपका ये आंसर आया है क्या? प्लीज क्रॉस चेक. 207, 20.7792. Yes or no? 20.7792. Can you cross check with these people? With these people, where are these people? I think we have got it right. We have got it right. This is the answer. Okay. Chala, chala, chala. Okay. Now can we go on to the NPV, please? Everybody doing this? ये सबके सब working notes खत्म हुए क्या? All these working notes. We started off with this. We started off with this. ये शुरू किया अपन ने सबसे पहले. One sec. This we did. Next we went down to depreciation. अपन depreciation ऊपर गए. Depreciation में अपन ने इसका ये निकाला, अपन ने WDV निकाला. Depreciation column से अपन ने CFAT भी निकाला. CFAT अपना ये वाला आ गया. इसके बाद स्टेप 4 में अपन ने ये भी निकाला. क्या निकाला? टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस भी निकाला. ठीक है, चलो कैन वी गो अहेड नाउ एवरीबॉडी. सर स्टेप 4 के बाद, आपका लास्ट स्टेप बचता है. एक मिनिट, कॉम्प्युटर हँग झालाय माझा. 2 मिनिटं द्या मला. हे कुठं आलं मधूनच एकदम. एक मिनिट, और फाईल हेवी हो गया. हा चला, आलं परत. कुठे गेला आपलं क्वेश्चन? कुठे आहे भाई भाई भाई? इथे इथे आहे क्वेश्चन, इथे आहे क्वेश्चन. स्टेप नंबर 4 आणि स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5. ओके चलो, क्या स्टेप नंबर 5? स्टेटमेंट showing NPV. NPV, simple. Okay, chalo. Now I hope please don't get this wrong, okay, because there are a lot of adjustments we should do. Also your, this is also a tax savings is also there. Okay, here particulars, cash flow, discounting factor and DCF. Okay, discounting factor कितना दिया हम लोगों ने? Discounting factor is how much? 14% discounting factor. 14% discounting factor at 14%. Okay, can we start doing, please? Don't wait for me. Start it. I'll show you the discounting factor also. 0, ये आपका आउटफ्लो था. फिर 1 2 3 4 5 5, ये आपका CFAT. टैक्स सेविंग्स लेके लिखते हैं अपन नंबर. छोड़ो, आउटफ्लो कितना है भाई साहब? हाउ मच इज द आउटफ्लो? 1000. अच्छा, ये भी और भी आएगा ना, वर्किंग कैपिटल रिकवर. आउटफ्लो इज 1000. फिर CFAT कुठे गेला आपला? CFAT 266. 266 उसके बाद कितना आता है भाई? 283.2. 283.2 इसके बाद कितना आता है? 309.76. 309.76 इसके बाद 329.408. 329.408 and 229.9264. 229.9264. I hope that number is right. हाँ बराबर है. टैक्स सेविंग्स कितना किया भाई साहब तुमने? टैक्स सेविंग्स 20.7792. 20.7792. और वर्किंग कैपिटल कितना डाला था आपने? शायद से 150 लाख डालते, पर कंफर्म करता हूँ. ठीक है, वर्किंग नोट 150 बराबर. ओके, I hope you have got this. I hope you have got this, everyone.
एक चीज भूल गए अपन और वो स्क्रैप है. स्क्रैप स्क्रैप वॉज हाउ मच? 140. स्क्रैप 140 था ना. चलो ये हो गया. आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ. आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर. एनपीवी. ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी दिया है यहाँ पे. ये ऑलरेडी दिया है यहाँ पे. ठीक है. One sec, one sec, one sec. Screen is being this 0.88, 0.77. Wait is. ये एक हो गया. 0.88, 0.77. इसके बाद next 0.67, 0.67, 0.59, 0.59 and 0.52. 0.52 यहाँ पे भी वही आएगा. 52 यहाँ पे भी वही आएगा और यहाँ पे भी वही आएगा. ओके, आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू. आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर एनपीवी. एनपीवी के लिए आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर. एनपीवी, टेल मी व्हाट इज द आंसर एंड आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू आर राइटिंग. एनपीवी कितना आंसर आता है मुझे बताओ. एनपीवी का तो ऊपर तो 1000 आने वाला है. 6 into 180, 234.08, 283.2 into 0.77, 218.064, 309.76 into 67, 07.5392, 329.408 into 0.59, 194.35072, 229.9264 into 0.52, 119.561728, 20.7792 into 0.52, 10.81, 150 into 0.52, 78 and 140 into 0.52, 72.8. डन. अभी आपने इसका आंसर निकाल लिया. 234.08, 218.064, 207.5392, 194.35072, 119.561728, 10.81, 78, 22.8, minus 1000, 1 कितना सा था ये? 135.20. 135.20 is my answer. आप कितना राइट चेक करेंगे कभी? What is your answer? Very good. Gayatri answers right. Chitra, we'll just cross check with the institute. तो क्रॉस चेक करेंगे मतलब. And your answer, my answer, and the institute's answer is 135.20, which is absolutely bang on target. Okay, has everybody got 135.20? Please, can you please confirm? जितने भी लोग हैं, have you got 135.20? Please confirm. 135.20, everybody. Can everybody of you please confirm? Have you got 135.20? Everybody fast. 135.20 आपको आंसर आया है. ठीक है, चलो अब एक काम करेंगे. जो IRR है वो आप खुद निकाल सकते हैं. मैं आपको पहले बोल देता हूँ. अगर 14% पे, अगर 14% आपको पॉजिटिव आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं आप. यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्काउंट फैक्टर दिखे रखे. सो दिस ऑलरेडी यू हैव द आंसर. सो यू डायरेक्टली कैन टेक दिस 20%. इस पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, इस पे आपका पॉजिटिव ऑलरेडी आया है. एंड देन यू कैन कंप्यूट IRR. आई होप यू नो द फॉर्मूला फॉर IRR. ओके, क्या है फॉर्मूला IRR का? वो भी लिख के देता हूँ मैं आपको यहाँ पे. एक काम करेंगे, निकाला क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे निकाला उन लोगों ने. कितना आया देखो इनका? 29.75. 29.75 is a negative for 20%. So एक काम करते हैं, we'll just solve the answer. IRR is equal to start rate plus NPV at start rate, NPV at start rate upon
वन सेकंड, व्हाट हो गया, स्टाइलिश इज नेक्स्ट, एनपीवी एट स्टार्ट रेट माइनस एनपीवी एट एंड रेट इनटू एंड रेट माइनस स्टार्ट रेट. ओके, तो स्टार्ट रेट कितना था आपका भाई साहब, इट वाज 14%. हाउ मच इज द एनपीवी, वन सेकंड, Microsoft OneNote is not responding, restart the program, close the program, wait 1 second. देख 2 मिनिट थांबा जरा, हे झाले गरम, हँग झाले ते सगळं. You solve the answer in the meantime, don't wait for me, don't wait for me. हाँ, thank God. End rate minus start. Okay, start rate कितना है अपना सर 14% था. एनपीवी कितना निकाला अपन ने, एनपीवी कितना था अपना, आंसर कितना था एनपीवी का, एनपीवी अपना आंसर 135.20, 135.20 अगेन 135.20 माइनस इन्होंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो बाद में निकाल सकते हैं वो 20% वाला 29.75, 29.75. वापस हैंग हो गया, 29.75 ये प्लस होने वाला है, 9.75 इंटू 20% माइनस 14%. ठीक है, चलो निकालो आंसर एक बार प्लीज, इसका कितना आता है, 14% प्लस 135.20 on 64.95 into 6%. So 135.20 divided by 164.95 into 6 plus 14. Your answer should come to 18.91% approx. चेक करेंगे एक बार प्लीज, आपका आंसर ये आ रहा है क्या, यस वही सेम आंसर है आपका, खत्म. 18.91 चेक करेंगे आपका आंसर आ रहा है IRR. ओके, आपको सिर्फ बाद में क्रॉस चेक करना है वो 20% वाला, दैट विल बी वेरी इजी. ओके, चलो एवरीबॉडी डन विद क्लियर, यस और नो, सब पे यहाँ तक हो गए. द रीजन व्हाई आई डिड दिस बिकॉज इसमें आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा. ठीक है, अच्छा अभी प्लीज पे अटेंशन फॉर 2 मिनट्स, प्लीज पे अटेंशन फॉर 2 मिनट्स. ओके, नाउ I told you one concept which I did not take. The reason being मुझे ये खत्म करना था. Cost of capital में concept है, उसका नाम है YTM, उसका नाम है YTM. ओके, 2 मिनट जस्ट आपको एक डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज ये आपको आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, दिस इज बेसिकली YTM, दैट इज yield to maturity. ओके, yield to maturity. तो आपको एक पहले बोलता हूँ कि ये कहाँ पे आता है आपके एग्जाम में. ठीक है, सो प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन. कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में दे विल ट्राई टू कंप्यूट बैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपने पहले किया था फर्स्ट चैप्टर में जो आज शुरू किया, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ डेट जो केडी है, केडी निकालने के लिए आपको ये बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख के देंगे आपको कि प्लीज यूज YTM कंसेप्ट. नथिंग रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल. सिर्फ YTM के लिए आपको IRR ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए. दैट इज द रीजन मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया नहीं, बिकॉज ये कैपिटल बजटिंग के बाद अब जो खत्म किया आपने IRR उसके ऊपर ये कंसेप्ट है. ठीक है, I am just reading out the concept like question, please pay attention. Okay, simple है. Cost of capital मतलब क्वेश्चन आया, ABC's company equity share is quoted in the market at 25 per share. The company pays dividend of 2 per share and the investors expects a growth of 6% per year. Okay, calculate company's cost of equity capital. इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है मुझे, पर मुझे इंटरेस्ट इसमें है. If the company issues 10% debentures of face value of 100 each and realizes 90, what realizes अभी आज कितना पैसा मिला, 96 मिला, इसका मतलब NPA. While debentures are redeemable after 12 years at a premium of 12%. आप नॉर्मल केडी के फॉर्मूला से भी ये निकाल सकते हैं आंसर, I1 minus T and all that stuff, बट यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि आपको YTM से यूज करना है. तो थोड़ा फट आप ध्यान देंगे, इसका एक स्टेप्स है वो बहुत इजी है. ठीक है, केई नंतर काढा सोपा है, अपन केडी बहुत पढ़ा था. अच्छा, आपको अभी YTM सेम मेथड से केडी कैसे निकालना है, तो सिंपल है. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, IRR ये कंसेप्ट यूज करना है. अभी IRR इस कंसेप्ट के लिए सिंपल है सर, मुझे 2 एनपीवी लगेंगे, 2 चेन होंगे, एक पॉजिटिव और एनपी एक नेगेटिव. तो भाई साहब इसमें यहाँ पे डिबेंचर्स कितना था, आज आपको कितना पैसा लग रहा है, आज आपको कितना पैसा मिल रहा है सर, 96 मिल रहा है. ओके,
0 ईयर में आज मिल रहा है ना मुझे, जब मैं आज इशू करूंगा मुझे कितना पैसा मिल रहा है 96. ओके सर 12 इयर्स का उसका मैच्योरिटी है, तो एवरी ईयर मला त्या लोकांना इंटरेस्ट द्यायला लागणार. I have to pay them interest for every year. How much I have to pay them interest? Sir, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया इन लोगों ने 10% डिवेंचर्स. नो प्रॉब्लम सर. सो 100 रुपीज के ऊपर 10%, 10 रुपए आफ्टर टैक्स देना पड़ेगा मुझे. ठीक है. सो ये है 10% आफ्टर टैक्स, तो कितना हो जाएगा 50% का टैक्स रेट है. कितना है यहाँ पे 50% है, तो 5 रुपीज इज द इंटरेस्ट पार्ट. पे अटेंशन फॉर 12 इयर्स कंसेक्यूटिवली. और 12th ईयर में मुझे पैसा रिडीम करना पड़ेगा. कितना करना पड़ेगा सब प्रीमियम पे बोला था, 100 के ऊपर कितना बोला था 12% का प्रीमियम था, म्हणजे 112 रुपए मुझे वापस देने पड़ेंगे. ये मैंने वही किया है जो अपन नॉर्मल एनपीवी टेबल में करते हैं, 0, 1 to 12 और 12. समझना सिंपल है. लक्ष्य दें प्लीज. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. नाउ पे अटेंशन प्लीज. आपको दो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए जाएंगे एग्जाम में, वन विल बी योर पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव. तो आपको क्या करना है, दोनों का सिंपल एनपीवी निकालना है. लक्ष्य दें प्लीज. सी सबसे पहले सर 0, 1 to 12 और 12 ये 5% से जो स्टार्टिंग का रेट है, और एक हायर रेट से निकालना पड़ेगा आपको एक नॉर्मल. ठीक है सर 96 ये आपका, तो ऐसा माना जाता है कि जो पैसा मिल रहा है वो आपको नेगेटिव में डालना पड़ेगा. सबसे पहला नॉर्मल 1 to 12 प्लस मध्ये, लास्ट हम तुम्हाला प्लस में टाका लागणार. ओके उसमें वो कंसेप्ट यूज मत करो कि यार ये माइनस में क्यों है, तो आपका जो स्टार्टिंग वाला फेज है, स्टार्टिंग वाला वो आपको माइनस में चला गया. तो ये आपका एक पॉजिटिव एनपीवी आया और एक नेगेटिव एनपीवी आया. सिंपल है. वापस आपको बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट आप दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक आपका नॉर्मल फॉर्मूला और एक वाईटीएम की मेथड से यील्ड टू मैच्योरिटी. इसमें यही होता है कि आपको आईआरआर ये कंसेप्ट यूज करना पड़ता है. उसमें सबसे पहले तीन चीजें आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, आज कितना पैसा मिल रहा है, फिर एवरी ईयर तुमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी आफ्टर टैक्स, और लास्ट ईयर में तुम कितना रिडीम करने वाले हो. ये तीनों फिगर्स यहाँ पे जॉट डाउन करके रखे हैं. इसके बाद मैं क्या करूंगा, नॉर्मल एनपी निकालूंगा. नॉर्मल एक वाले ये थे आपके पास, दोनों भी आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कुछ नहीं है. फिर उसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला डालना है जो अभी जस्ट किया 5 मिनट पहले आपने, और ये आपका आंसर आ जाएगा 6.45. दिस विल बी योर केडी. एवरीबॉडी ओके? यस और प्लीज टेल मी. प्लीज टेल मी. क्या रॉकेट साइंस है, हमारा साइंस वेरी सिंपल. ओके एवरीबॉडी डन? यस और नो? फास्ट. चलो ओके नाउ पे अटेंशन प्लीज. वन सेकंड, फाइल हैंग हो गया. 2 मिनट, एक चैप्टर और करते हैं फिर मैं एंड करता हूँ. ये एक चैप्टर और एक करना है मुझे. रेशियो आई विल नॉट डू. रेशियो यू आर वेरी कंफर्टेबल. आई थिंक कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं. रेशियो अपन भरपूर केलेलं क्लास में. रेशियो नथिंग इज देयर इन दैट, बट चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन लिया जो इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर है, सबका मुझे ये चाहिए. आई वांट एवरीबॉडी टू कंसंट्रेट. वी आर स्टार्टिंग विद वर्किंग कैपिटल. वी आर स्टार्टिंग विद वर्किंग कैपिटल. एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज. वी स्टार्टिंग विद वर्किंग कैपिटल. ओके नाउ एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन. एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन. मुझे आपको एक क्वेश्चन भी दिखाना है और सॉल्व भी करेंगे आप. ठीक है, विल सॉल्व दिस आल्सो. पहले पे अटेंशन. ओके सर वर्किंग कैपिटल में मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक बताया था क्लास में. सर सबसे पहले आपको नॉर्मल स्टेटमेंट पूछेंगे, जो नॉर्मल वाले सम है वो आपको पूछेंगे स्टेटमेंट. ठीक है. सेकंड आपको ये पूछ सकते हैं वो टंडन कमिटी नॉर्म्स, जो भी बहुत सिंपल है. देयर इज नो बिग डील इन दैट. नेक्स्ट आपको और पूछ सकते हैं वो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कस्टमर को 10 दिन 20 दिन 30 दिन वो अपन सब करते हैं, वो भी लिया है मैंने आज. ठीक है. और एक पूछ सकते हैं आपको वो फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन. ठीक है, मतलब अगर आउटसोर्स किया है कलेक्शन, तो अगर फैक्टरिंग अच्छा है, इन हाउस वाला अच्छा है, तो ये सब कंसेप्ट कवर करना है. ठीक है. और एक बात, वन मोर थिंग, व्हेन वी आर डूइंग रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, उसमें एक और एक चीज आता है, आपको याद रहेगा. इसमें एक और एक कंसेप्ट आता है 1-10 नेट 30. याद है आपको ये कंसेप्ट? पढ़ा था अपन ने, अपने क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर. 1-10 नेट 30 का मतलब क्या होता है, अगर 10 दिन में पैसा दिया, तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर 10 डेज में पैसा दिया तो 1% का डिस्काउंट देंगे. समझ पाए? नॉर्मल कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, but if you pay in 10 days, it will be 1% discount. I hope you can recollect that. वही क्वेश्चन किया था अपने मॉड्यूल में. समझ में आ रहा है आपको?
तो ये सब कुछ आपको करना है, बट ये टैकलेस नहीं चाहिए। सबसे पहले you remember what when we started off with working capital, the first thing what we did was operating cycle, also called as working capital cycle। मैं बुक में पहले ही पेज पे देगा operating cycle। अच्छा, by the way, 2-3 points which I want to clear right now. Working capital, very simple. It is a capital required for daily needs, okay, because of some liquidity crunch, because आपका सेल तो हुआ है बट प्रॉब्लम ये होगी कस्टमर पैसा देना नहीं, दैट इज अब भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। दैट इज व्हाई आप बैंक के पास जाके वर्किंग कैपिटल लोन मांग रहे हैं। एज अ नेम सजेस्ट वर्किंग कैपिटल, it is your capital which is required for your working needs, daily needs, okay। second point, इसका एक सिंपल फंडा है, working capital is equal to current assets minus current liabilities, current assets minus current liabilities। पे अटेंशन प्लीज। सर ये तो सिंपल है, ठीक है। अच्छा, और एक बात क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इस बार के आरटीपी में क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटिंग साइकिल, ओके, बट इट इज नॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल ये तब ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सर इट इज द एंटायर प्रोसेस, इट इज द एंटायर साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टिल द एंड, जब आपका डेटा आपको पैसा देता है, जब कलेक्ट होता है। तो इसमें आपने, अगर आपको पता है तो इसमें आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी ऐसे लिखा था, याद है आपको। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, डब्ल्यूआईपी, फिर फिक्स्ड फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स माइनस योर क्रेडिटर्स, भी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, याद है आपको ये। अच्छा, बाय द वे, इसका जो आंसर है वो आपका, इसका आंसर किस में आएगा भाई साहब, इसका आंसर आपका डेज में आएगा, मला हे माहित पाहिजे, ठीक है। अच्छा, और एक बात है इसमें, पे अटेंशन प्लीज, whenever we are computing वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट भैया दो इसमें आते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल और एक होता है आपका कैश कॉस्ट बेसिस, एक होता है आपका कैश कॉस्ट बेसिस। ये आपका सेल्स पे होता है, नॉर्मल सेल्स पे होता है, और कैश कॉस्ट बेसिस आपका सीओजीएस पे होता है। तो डेटर्स भी आपको उस पे निकालना पड़ता है, तो आपको दिया रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, कैन वी कम टू क्वेश्चन प्लीज एवरीबॉडी, यस और नो। सेकंड प्लीज लक्ष्य दें, लास्ट चैप्टर है और टुडे, ओके। चलो, वर्किंग कैपिटल, आई वांट एवरीबॉडी टू रिमेन एक्टिव, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The information available for SK Limited for the year ended on 31st of March, okay sir। क्या क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ FG, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज, क्रेडिटर्स पेमेंट। इतना भाई ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट क्या है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, अज्यूम 360 ईयर। क्वेश्चन कैसे घुमाया देखो लास्ट में, आपको ये नहीं पूछा उन लोगों ने कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालो, आपको क्या पूछा उन लोगों ने कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काढा। आओ सर कसं काढायचं है, हम लोगों को तो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल पता है कैसे निकालना है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ, वो तो इजी है। अब इसमें क्या पूछा उन लोगों ने, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले एक काम करेंगे, दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यू, ठीक है। तो फिर मैं आपको अभी इसमें से दिखाता हूँ। सर आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है सर। इनफैक्ट इन लोगों ने खुद ही दिए आपको, देखो यहाँ पे, पे अटेंशन प्लीज, एवरीवन पे अटेंशन। सर रॉ मटेरियल स्टोरेज ये आपको ऑलरेडी दिए हैं, फिर WIP आपको निकालना पड़ेगा, फिर एफ, एफ कुठे आहे, एफ नहीं है, डी आणि सी पण दिले, ये डी है आपका और ये सी है, ओके। तो वो दो चीज निकालना पड़ेगा, क्या क्या निकालना पड़ेगा, WIP निकालना पड़ेगा और FG निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। किस निकालेंगे सर, सर 94,600 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, so 94,600 divided by cost of production per day, so 15,48,000 divided by 360 कितना आता है सर, ये 4,300 आता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 94,600 डिवाइड बाय 4,300, ये कितना आता है 22, ये कितना आता है 22। तो आपको W भी मिल गया, W भी मिल गया आपको। अभी F बाकी है, तो F के लिए क्या करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे 14,61,000 डिवाइड बाय 360 कितना आता है, ये 4058.33, 4058.33 कितना आता है, 60 आता है, ये कितना आता है 60 डेज, खत्म हो गया। तो अब ये इसमें डाल देंगे आप प्लीज, अब डाल देंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 120 डेज। आपको याद है कि आपने क्वेश्चन किया था, तो ये तो नॉर्मल हो गया ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब 120 दिन का आपका एक साइकिल है। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि पूरे साल भर में, पूरे ईयर में आप कितने ऑपरेटिंग साइकिल्स करेंगे, तो आपका आंसर कैसे रहेगा सर, बहुत सिंपल है, 360 अपॉन 120, तो इसका आंसर रहेगा 3 टाइम्स, इसका आंसर कितना रहेगा 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स आपको साइकिल को कंप्लीट कर पाएंगे आप पूरे साल भर। दिस वाज वन थिंग।
and the most important is this, most important is this. I request everybody, जितने भी लोग देख रहे हैं ना अभी और जो बाद में देखेंगे ना, पहले काम करो, चिट्ठी निकालो और ये लिखो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है बहुत. अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट आपको लगेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सायकल्स. इंपॉर्टेंट है, मी परत सांगायला लागलो, हे महत्वाचं आहे. लॉजिक भी देखो ना, वर्किंग अलग मतलब क्या है सर, डेली नीड्स के लिए कितना मुझे ये चाहिए पैसा, ठीक है, और साल भर में मेरा कितने साइकिल्स हो रहे हैं सर, तो मुझे कितना पैसा चाहिए सर, 14,61,000 प्लस ये कितना चाहिए मुझे, और 4,14,000, 4,14,000 यहाँ पे एडमिन एंड सेल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में सब कुछ आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एवरीथिंग इज कम, सीओजीएस प्लस योर सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट्स योर टोटल कॉस्ट व्हिच यू वांट, 4 लाख, तो ये आपका हो गया, डिवाइडेड बाय आप कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 6,25,000 will be the amount of working capital requirement. Very important, please update this in your book right away. अभी अपडेट करो, important है बहुत. Did you understand this everybody? Did you understand the amount of working capital? देखो उसमें 3 चीजें निकाली अपन ने, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, वो तो इजी है, जो डेज में आंसर निकलता है, फिर नंबर ऑफ टाइम्स कि साल भर में तुम कितने बार साइकिल रिपीट करोगे, एंड थर्ड अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो नॉर्मल कॉस्ट है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, which includes everything, cost of production also and all, COGS plus your selling expenses, तो फिर पूरे कॉस्ट आपको चाहिए रहेगी डिवाइड बाय कितने टाइम्स आपके साइकिल ये हो रहा है, ये 3 बार हुआ था, एंड 6,25,000 will be the total answer. I hope you have got that. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी क्लास में किया है, और एक बार फिर भी आपको एक गो थ्रू करता हूं मैं. दिस वाज द रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्वेश्चन. इसमें अपन ने क्या किया था सर, करंट डेज करंट 6 लाख रुपए, 30 दिन का करंट सिनेरियो है, तो इस भाई सबको इंक्रीज करना है, तो 30 और 10 40, फिर 50, फिर 60 करना है. इससे आपको एक काम क्या होगा, इससे आपका सेल्स बढ़ेगा, बट घाटा भी होगा, आपको बैड डेज भी होने वाले हैं. आपको याद है क्या, इसका स्टेटमेंट कैसे करते हैं अपन, तो इसका स्टेटमेंट अपन ऐसे करते हैं, सेल्स माइनस योर कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, योर फिक्स कॉस्ट, योर वेरिएबल कॉस्ट, फिर माइनस योर बैड डेट्स, माइनस योर बैड डेट्स, माइनस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसको क्या बोलते हैं अपन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब क्या, रिसीवेबल्स में कितना पैसा आपका अटका हुआ है, आप इतना पैसा कमा सकते थे, तो मैं कैसे निकालते हो, याद है आपको, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू द डेज इनटू योर परसेंटेज. तो भाई साहब अगर मुझे दिखाना है आपको, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे, इस पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करना है, तो 4 लाख प्लस 50,000 करना है, इनटू कितना डेज है पहला वाला, इनटू 30 डिवाइडेड बाय 360 इनटू कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक करेंगे एक बार, हाउ मच इज रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू 20%, तो आपको आंसर मिल जाएगा 7,500, 7,500. ये वही यहाँ पे आंसर डायरेक्टली मारा है. अंडरस्टैंड दिस, सिंपल, ये आपने किया ऑलरेडी, ठीक है, दिस वी हैव डन. ओके, मैं इसके बाद ये भी आपने क्वेश्चन किया है अपने इसमें क्लास में. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, व्हाट यू मीन बाय दिस 1-10 net 45, सर 1% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन में अगर पैसा दिया तो, ठीक है. तो ये क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन दिया था उन लोगों ने कि 50% एंड 80%, 50% लोग क्या कर रहे हैं, वो आपका डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, तो डिस्काउंट निकालना बहुत इजी था. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास. ओके, और एक बात आपको सिर्फ एक बोलना था, टंडन कमेटी के जो नॉर्म्स है, टंडन कमेटी नॉर्म्स, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, क्लास में किया है, फिर भी एक बार आई होप आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन. हाँ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, पे अटेंशन. अच्छा, बाय द वे, टंडन कमेटी नॉर्म्स क्या करता है, इट इज एमपीबी. व्हाट इज एमपीबीएफ, maximum permissible bank finance, maximum permissible bank finance, MPBF, my bad, MPBF by Tandon Committee norm. What is the first Tandon Committee norms, what is the first method, method 1 क्या है, anybody can tell me, method 1 क्या है sir, method 1 it is very simple, 75% of your working capital, CA minus CL, याद है आपको ये सब कुछ, 75%. सेकेंड मेथड क्या है सर, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 अपने सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का, 75% of CA minus CL. थर्ड मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या है, 75% of CA minus CCA, that is core current asset, जो दिया रहता है आपको एग्जाम में. वन सेकंड, नहीं हो रहा है, माइनस योर करंट लायबिलिटीज. सिंपल. चलो नाउ ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है टंडन कमेटी नॉर्म्स का, बहुत सिंपल है. इसमें एक चीज दिमाग में रखो कि आपको ये लेने का नहीं है, आपको ये 400 लेने का नहीं है, बिकॉज आपको वही निकालना है. बँक बॉरोइंग तुम्हाला काढायचे, करंट असेट 740 से माइनस 300,
तो 740 माइनस 300 इंटू 75% आपका पहले वाले का आंसर रहेगा 330। अगर वापस आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो बहुत जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वन सेकंड। सो ये वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको दिमाग में रखना है, आपको बैंक बोरिंग्स लेने का नहीं है सीएल में। भाई साहब आप वही चेक कर रहे हो कि बैंक बोरिंग्स ही कितना देना चाहिए, इसलिए आप चेक कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो उससे। तो मेथड वन का आंसर 75% ऑफ सीए माइनस सीएल, दैट इज 740 माइनस 300। ये आपका वर्किंग कैपिटल 740 माइनस 300, 440 आपका वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद आप मेथड वाइज आंसर दे देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट कितना रहेगा सर, 440 into 75%, your answer will be 330। but sir, when I get this answer, exactly क्या करना है, मतलब what exactly is the output over here? The output over here is you have to always compare with the bank borrowings। so भाई साहब टंडन कमेटी के हिसाब से 330 लाख आ रहे हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये लोग कितना लेके बैठे। तो भाई साहब ये लोग लेके बैठे हैं 400 लाख, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स्ट्रा है? हाँ। तो इसमें कैसे होता है, जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा है ना, वो आपको टर्म लोन में कन्वर्ट करना पड़ता है। टर्म लोन का मतलब क्या है कि भाई 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपको वो कन्वर्ट करना पड़ता है, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है। व्हाट वाज द सेकंड मेथड? सर सेकंड मेथड ये था कि 75% ऑफ 740 कितना आता है भाई साहब, 740 into 75%, दैट इज 555 माइनस 300। क्या आपका आंसर 255 है क्या? 255। 255 शुड बी योर आंसर, ओके। और लास्ट में यहाँ पे दिया इन लोगों ने कोर करंट असेट 190 लाख है। तो व्हाट इज द थर्ड मेथड ऑफ टंडन कमिटी नॉर्म्स? सर इट इज 740 माइनस सीसीए 119 into 75% माइनस 300, कितना आता है 112.5। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 112.5। समझ में आ रहा है आपको? गेटिंग दिस? चला, ओके। So this was that one question which I have taken just for your practice, okay? चलो, so जब भी आप वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, make sure one thing is very important कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें टाइम कितना है, 1 month 2 months वीक्स में है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी लिख देते कि 4 वीक्स मतलब 1 महीना, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, लेंदी है थोड़ा बहुत, ठीक है। रॉ मटेरियल्स करके दिए, कभी कभार कॉस्ट शीट पर यूनिट आपको निकालना पड़ता है, कभी कभार आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट, लेबर, आपको टोटल कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, ये दिया, ठीक है। एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक 1 मंथ, हाफ अ मंथ, डब्ल्यूआईपी अगर नहीं भी दिया रहता अपन वही अज्यूम करते हैं 50% इज कंप्लीट, 50% नॉट कंप्लीट, ओके। पे अटेंशन प्लीज, ओके। उसके बाद 1/4 ऑफ सेल्स ऑन कैश बेसिस, इसका मतलब बाकी क्या है वो किसके ऊपर है, आपके ट्रेड के ऊपर है, क्योंकि आपको वही चाहिए डेटास निकालने के लिए, ठीक है। लास्ट में आपको एक आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने कि भाई साहब डेटर्स आर टू बी टेकन ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है कि आपको सेल्स लेना नहीं, आपको कॉस्ट लेना है। कॉस्ट का मतलब आपका पूरा जो आपको एचजी को अलग होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा है? चलो, नाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन एवरीवन? चलो फास्ट में करेंगे एकदम, पट 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 पट। एक क्वेश्चन पूर्ण करा माझ्या बोला, चला लवकर। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपका करंट असेट्स, ठीक है। क्या क्या है इसमें? द पेटेंट आइटम्स है भाई साहब, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ एफजी, फिर डेटर्स, कैश और कुछ प्रीपेड रहेगा तो, ठीक है, और कैश, ओके। दीज आर द पेटेंट आइटम्स ओवर हियर, ओके। कैन वी स्टार्ट? रॉ मटेरियल कितना आएगा भाई साहब? रॉ मटेरियल कितना आएगा सर? यूनिट्स कितने हैं? इट इज 60,000, 60,000 इंटू 115 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 5,75,000 कितना आएगा यहाँ पे? 5,75,000। जब मैं डब्ल्यूआईपी निकाल रहा हूँ तो उसमें भाई साहब 115 तो आने वाला है, बट लेबर और ओवरहेड्स हाफ हाफ आएगा, तो इसका कितना आएगा? 40 आएगा, और 37 का भी हाफ ही आएगा, कितना आएगा? 18.5। तो मैं डायरेक्टली कॉस्ट काटता हूँ, 115 प्लस 40 प्लस 18.5 कितना आता है ये? 173.5। डब्ल्यूआईपी यहाँ पर 50% लेते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल 100%। सो 173.5 इज द कॉस्ट पर यूनिट इंटू 60,000 इंटू कितना डब्ल्यूआईपी का भाई साहब? इट इज हाफ अ मंथ, सो इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12 कितना आना चाहिए? 4,33,000, 4,33,750। सिंपल, ओके। नेक्स्ट
एफजी के लिए आप क्या करेंगे, एफजी के लिए यू विल अलोकेट टोटल कॉस्ट, आपके स्क्रीन के सामने ही है, 232 इंटू 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कितना आता है, 11,60,000, 11,60,000। ओके, अभी डेटर्स में सेल्स के ऊपर निकाल सकता था, पर इन्होंने खुद ही बोला है कि आपको कॉस्ट के ऊपर निकालना, वापस वही आंसर रहेगा आपका 232, 60,000 इंटू 232, डेट्स कितना है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12, इंटू 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे कितना लिखा है इन लोगों ने, अच्छा 1/4 आर ऑन कैश, इसका मतलब बाकी है किसी कॉस्ट के ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60,000 232 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 17,40,000। समझ में आया आपको क्या किया मैंने, 17,40,000, मतलब डेटर्स 232 कॉस्ट के ऊपर लिया, फिर 1/4 कैश के ऊपर है, 3/4 इज ऑन क्रेडिट बेसिस, तो तभी डेटर्स आएंगे पिक्चर में, तो मैंने 3/4 किया, और लास्ट मैंने क्या किया, जितने उसके मंथ से 2 डिवाइड बाई 12, कैश दिया है उन्होंने, कैश चेक करेंगे एक बार, कैश दिया है क्या, हाँ कैश दिया है 1,60,000, कैश कितना दिया है 1,60,000, ठीक है। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग इन करंट असेट, चेक करते हैं एक बार टोटल मैच हो रहा है क्या, 575 433 750 11,6 174 40 68 750, चेक करेंगे एक बार, डेटस हो गया, स्टॉक ऑफ एफजी, अच्छा वन सेक, टाइम लैग, क्रेडिट अलाउड, ऑटोमेटिक कर ले, टोटलिंग में गलत हो गया क्या मैं, 5,75 433 750, ये भी बराबर है, I mean this is right, 11,60,000 17,40,000 1,60,000 40 68 750, टोटल मार्क्स अलग है, ठीक है अपना बराबर है, 40 68 750 40 68 750, ठीक है। इसके बाद वी स्टार्ट ऑफ विद करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज बी पार्ट, करंट लाइबिलिटी सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, तो कैसा आपका कैलकुलेशन होगा भाई साहब, इसका 115 इंटू 60,000 इंटू कितना देखो रॉ इसका क्रेडिटर्स का 1 मंथ डिवाइड बाई 12, ये कितना आता है 5,75,000, 5,75,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आउटस्टैंडिंग, कितने आउटस्टैंडिंग देखो, लैख का मतलब आउटस्टैंडिंग है, जस्ट क्रॉस चेक करेंगे कितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग को क्या है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस ओवरहेड्स, पहले वेजेस का चेक करते हैं, इट इज 80 इंटू 60,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 2 लाख, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2 lakhs। नेक्स्ट थर्ड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इसका कितना अमाउंट, इसका अमाउंट कितना है, जवान से वापस बंद हो गया, अच्छा शुरू हो गया, 1 मंथ, और इसका पे भाई साहब 37 इंटू 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, कितना आता है 1,85,000, 1,85,000, ओके। चलो आई होप वी आर डन विद दिस, टोटल मारेंगे इसका एक बार, 575 प्लस 2 लाख 1,85,000 9,60,000, और लास्ट में आपका आएगा वर्किंग कैपिटल, वो कितना रहेगा 31,08,750, ठीक है डन, आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर, ठीक है। ओके नाउ ठीक है, ये वाला हो गया है अपना, चलो वी हैव गॉन थ्रू मेजर पार्ट्स, अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल खत्म किया, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विथ रेशियो,
लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मैं अगले सेशन में ये आई विल कंप्लीट दिस रेशियो, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. Leverage is simple. Leverage, I don't think there'll be more issue, but I'll see some questions if they're there out of the box. Okay, ratio, you all guys are very comfortable. In the next capital structure, I'll take in the next lecture. Okay. और एक बार, I'll also roll out my PDF for theory. ये तो आपको शेयर कर दूंगा मैं, theory भी आपको दे दूंगा, उसमें आपको उतना ही करना है, ठीक है. My next lecture is also lined up. Strategic management audit is also there. Please do attend those also. I hope आज का सेशन आपको पसंद आया. The only thing is what, please make the most out of it. आप बाकी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. Make sure कि in the next coming 2-3 days you are wrapping up with FM. FM का काही डाउट असेल मला विचारा, बट खत्म करो एक बार, वो FM से बाहर आ जाओ. And make sure you are doing it very fast. Don't start with ABCDs. सीधा आप ये कर सकते हैं. अभी मेन जो कंसेप्ट है वो तो मैंने खत्म किए आज. So let me know if you have any other queries. Okay. चलो. Has everybody written everything today? ठीक है सब कुछ? ठीक है? Everybody done? Can we call it? Can we call it a night? Can we call datus? क्या datus का क्या है? उसने एक ही वर्ड डाला datus. आगे क्या? चलो ठीक है, चलो एवरीवन बाय बाय. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. तन्वी को क्या डेटा में प्रॉब्लम क्या है, आपको कुछ डाउट है क्या वहां पे? हमें डेटा लिख के सिर्फ छोड़ दिया है, मतलब कुछ डाउट है तो मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूँ. क्लैरिफाइड राइट नाउ ओनली. मी थ्योरी पण की ना, काय टेंशन घेऊ नका, लोड घेऊ नका. थ्योरी भी ले लूंगा मैं. आई टेक द थ्योरी आल्सो. Where is she gone? She's gone or what? कोर्डे, तन्वी कोर्डे, व्हाट इज योर डाउट? आपने डिटेल लिख के छोड़ दिया वहां पे. Can you just please tell me what is it so we can go ahead? I can wrap it up. ग्राम एंड डॉट एक बार ये करो, वो इंपॉर्टेंट है. So we have done cost of capital properly. We have done dividend policy properly. Okay. Dividend policy में भी आपको वही लिटनर वाला, ग्राम एंड डॉट वाला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वो. एंड देयर विल बी फ्यू मोर क्वेश्चन आल्सो कमिंग, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो आपको पीडीएफ शेयर करूंगा. डन एवरीबॉडी. So I think the next lecture is we'll check the schedule. ठीक है, give me 1 sec, I'll just check the schedule. Where it is, where it is, where it is. यहाँ पे है. So भाई साहब 8 दिसंबर को, 8 को अपना क्या है, एसएम है. प्लीज डोंट मिस आउट ऑन 8 दिसंबर. पूरा 5 चैप्टर खत्म करेंगे, मतलब नॉट कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन वाइज. ओके. 10th को अपना ऑडिट है. प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस आल्सो. क्वेश्चंस करेंगे टॉप वाले. और फिर 12th को ग्रुप 1 शुरू होगा आपका, और वो आई स्टार्ट विद लॉ. ओके. दिस बेसिकली 1 मंथ पहले, ये 1 मंथ पहले कर रहे हैं अपन सब कुछ. तो आपको एक टेस्ट सीरीज भी अनाउंस कर दिया अपन ने, 15, 16, 17, 19, 20, 21. ओके. But right now your target should be only one, and that target has to be FM and SM. So by 8th, or by most probably by 9th of December, please mark this. By 9th of December आपका FM और SM अब इससे बाहर निकलने चाहिए. You should be out of FM SM till your 9th of December with everything, your RTPs, your past examination questions, same with SM also. Okay. उसके बाद सेम, उसके बाद अपन ऑडिट शुरू करेंगे. ऑडिट भी 1-2 दिन में आपको बाहर आना पड़ेगा. उसमें से we'll do concept wise क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड लास्ट विल बी लॉ. तो मेरा वही एजेंडा है. आज 5 तारीख है, तो टिल 9 एफएमएसएम बाहर, देन इन 2-3 days मोर आफ्टर दैट ऑडिट से वील गो कम आउटसाइड. दीस सब्जेक्ट्स आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम के समय लेने हैं. इन द मीन टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है. द मोमेंट आई फिनिश विद दिस,
यू विल ओनली कंसीडर ग्रुप 1, ठीक है। अब ग्रुप 1 कंसीडर करेंगे, टेस्ट सीरीज आप अटेंड करेंगे, यू अटेंड ऑल द टेस्ट सीरीज एंड देन जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा आप उसका पढ़ाई शुरू करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ योर चैनल, ओके, एज सिंपल एज दैट। I hope everybody is okay till here, but don't miss out on this, huh? ये important है because see SM everybody is done, but everybody takes it for granted. Like क्या SM में क्या करना है अपने को, पर अब एक चीज करेंगे, बैलेंस आउट 50-50 मार्क्स का वेटेज है। ऐसा नहीं कि 10-20 मार्क्स का वेटेज दिया SM को, 50 मार्क्स का वेटेज दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। Obviously, make sure that you are attending on 8th of December. Time will be 2 PM only, 2 बजे ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड जैसे अभी आपने आज कॉन्सेंट्रेशन किया वैसे सेम वे में SM भी करना है। इवन ऑडिट विल बी कंप्लीटली थ्योरी, examination question है कि I'll send you the PDF, you can take the printout also, okay? ये जो questions मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको top priority में रखना है, बाकी सब कुछ तो करना ही है, but this you have to keep it on top priority, okay? In the coming days after this schedule, एक schedule में एक दो दिन में एक दिन डाल दूंगा for FM, for the left out chapters and for the theory, okay? Done? हाँ वही MCQ के लिए ये क्या डाल रही है, datas MCQ वो amount per day आहे ना ठीक सगळं, ठीक है, चलो बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट